Prefer when I'm by myself. I don't wanna hang around y'all. Pray for good health. One day I'm really gon' ball. Fuck around and buy the whole mall. Breaking that cake. Flexing 700 in the bank. Not a superhero, I don't save. Look at my face. Look at my grades. Don't match up, no love. Fuck a date. I just fade. When I hit the jack, you can keep the pie. Every night I gamble, I stop. Yeah. When I check the cost, I was like, oh, that's expensive. Ay, rolling flex in my ear. You a fucking ock, you weird. Which way I'ma steer? Know the bags of money be near, but you don't really see it till it's here. That's all I do since I was 17. Cutting up tofu. All you lame soft don't speak. Fucking I don't know you. Yeah, get run through by my team. Dropping them hits like Blitz. I bought my cheese like Ritz. Fuck a vacay, don't trip. Y'all don't know people like this. 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 Dropping them hits like Bliss. I bought my cheese like Ritz. Fuck a vacay, don't trip. Y'all don't know people like this. 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 Said she 24 and she too old. Told her fuck that, I got a old soul. I need to treat my paper like origami and get that bitch going up twofold. All my shit ripped, need new clothes. The whole fit winners was blue nose. Stupid ass boy, IQ low. You say go fish playing Uno. Make these moves on the bus. I don't get stuck, always in a rush. Hidden gem, I'm the old man in the brush. Running out bare, I can hit the stairs. Getting elevated, so who the fuck cares? I don't want that. Hello boys, welcome back to another live stream. स्वागत है आप सबका एक और लाइव स्ट्रीम में PNC Day 3 final day. Will India make a comeback or will India end with the last spot in the leaderboard? देखते हैं आज guys, बहुत मजा आने वाला है, बहुत ही epic battles होने वाली है. India has got nothing to lose. I'm excited to see the gameplay. I'm 5 minutes late. I'm sorry guys. I'm sorry. माफ करना मुझे. यहाँ पे चालू हो रहा है ये? ओके अभी तक चालू नहीं हुआ है. मैं 1 2 3 देखा, मैं बोला भाई मैच चालू हो रहा है, तो मैंने जल्दी स्ट्रीम ही चालू कर दिया. जल्दी नहीं चालू किया, मतलब सॉन्ग पूरा नहीं होने दिया, मैंने ऐसे ही चालू कर दिया. जल्दी बोलूंगा तो फिर तुम लोग मुझे तोड़ोगे, है ना? But anyway. All right, fans, you saw it. We have the 10th I think we're ready to go here. Coming to PUBG. By the way, if you want to see that video again, I think we're ready to go here, boys. You want to go back and watch it, you can check out PUBG social media, and they will have links, and it will be available on. क्या हाल है लॉन्डो? क्या हाल है भाई लोग के? ये तो मैच तो ठीक है, चालू होने में अभी होगा, तो 1-2 मिनट लगेगा. तुम बताओ क्या हाल है सबके? Hydra current PC specs anyone? i7 13 Gen 3070 Ti 6000 MHz 32 GB RAM 790 Z790 motherboard and blah 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 blah. रुक जाओ. हेलो चुंगुस चंगस चुंगुस. What's up चंगस? बिग चंगस. बैंडाना पहनूंगा मैं बाद में. लेट है तू, चल 5 पुशअप कर. यार अभी खाना भी नहीं खाया मैंने ढंग से यार. तेरे को मेदू वड़ा लेके बैठा हो रे, मेरे को 5 पुशअप करोगे बिना खाली पेट पे हो अभी तुम लोग? यार कैसे लोग हो तुम? मेरा ख्याल ही नहीं रखते हो यार. थोड़ा ख्याल रखो यार मेरा. मेरे लिए 5 पुशअप करो. चलो रुको, कहाँ है? ओपन लॉबी नहीं जाना ना मुझे, स्ट्रीमिंग लॉबी में जाके बैठ जाता हूँ. फिर जिसे आना है वो आएगा, जिसे देखना है वो देखेगा. I think we're going straight into the game now. All right. Say like that, everybody. Yes, sir. Miramar, map number 1 here on the final day of PUBG Nations Cup 2023. And if you're one of these teams sitting in the top 8 spots, you want to start building that momentum right now. There are only 6 maps left to be played here in paper thin. We're talking about before this. You had a lot of coffee. Look at this plane path coming in. How far south this is? It's very here south. on Miramar. Yay, Salman What's taking even his weirder usual about drop today is now. A lot of people were buying the Lost. coffee. So this is just people encouraging it. Yeah, fans were buying it for me. Really exciting stuff for this first one. We got to see a couple northern planes. Now we get to see a southern plane path, which I think is pretty interesting to see how the teams are going to, kind of identify a new situation that we haven't seen in this event so far. इस बार इंडिया ने kind of for those vehicles. edge छोड़ के थोड़ा सा heading towards Vadodara. aggressive spot लिया है. Korea in Chumasera, our top team right now.
As we take a look, Drop is looking different the today. widespread drop. Of course, Hindi just wanna commentary make लगा. sure she gets some vehicles. Canada though. Coming in here with the Translucent भाई आपका लग थोड़ा गाड़ी में खराब ही रहा. Oh, 73 hit हो the गया. barrel, I think, hit that headshot there, so a bit of damage found. भाई ट्रांसल्यूसेंट भाई का लग कहना बहुत खराब रहा है भाई, तुम गाड़ी में मत बैठो. करना पड़ेगा तब जाके तुर्की अपना वो जो सपना है उसको पूरा कर सकती है. PNC 2023 के ट्रॉफी को उठाने का सदन फ्लाइट पाथ मतलब टीम्स लाइक इंडिया, कोरिया, आप जर्मनी की भी बात कर सकते हैं, इनफैक्ट यूके, इनके लिए कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी. कनाडा इंडिया के बीच में एक ड्रॉप देखने का मौका मिल रहा है. फिलहाल के लिए तो देखिए गाड़ी लेके बच के निकल जाते हैं. हमने मेंशन भी किया था आज की क्रिकेट टीम इंडिया में आज एक चेंज हमें भाई कास्टर भाई रिएक्ट तो करो. कोच को स्टेप इन किया है, देखना पड़ेगा उनके साथ वो कैसे आज जेल अप करते हैं. ये क्या हेलो कम से कम सर्कल तो मतलब पहले ही अपने ऊपर ही गोलियां मरती है यार. मतलब हाँ भाई हमारे ही गांड फटती है पहले. अरे वो भी ट्रांसल्यूसेंट ही भाई हमारे. एरिया वो रहता जरूर से है भाई इतनी बार उतरे ना रोटेशन. भाई यहाँ क्या चल रहा है? गाड़ी को दिक्कतों में डालने की कोशिश है. गोल गोल अरे फ्लैग मत होना भाई, छोड़ नहीं रहा इसे. गया और चाइना वर्सेस तुर्की की फाइट पर तुर्की का बैकअप आ चुका है और कहीं ना कहीं अब इस व्हीकल को लेकर के भाई पेड़ ही इस बंदे का सहारा है अभी. तो जो है जारी थी वहां पे टीममेट आ गया. वो बैकअप आया और गन मौजूद है ऑलरेडी. गन लेके आया है वो, सीधा फाइट ले रहा है. में आ सकते हैं शाओ. इंडिया बोलता है एंटी नेशनल भारत बोल. अबे हो गया क्या? पेपर पास हो गया वो. पड़ सकती है चाइना को. देखिए जोन क्या कौन सा? बिल्कुल सेंट्रलाइज्ड इंडिया को भारत कंट्रोल में है. कनाडा अब भी देंगे ओ ना. भारत वाला हो गया है क्या? आई डोंट थिंक सो. पता नहीं यार. क्या कि वो सदर्न पाउट पे चले जाए. पता I don't नहीं. think so. अभी तक नहीं हुआ रहेगा. बहुत बड़ा न्यूज़ आ जाता फिर उसके लिए. थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि मतलब बचपन से तुम एंटी नेशनल थे, अब जाके तुम हिंदू हुए हो. कोई भी टीम ऐसी नहीं होती, कोई भी प्लेयर इंडिविजुअली भी ऐसा नहीं होता कि यार एक गन है चलो योलो सोलो. जी नहीं, आज के दिन पे बहुत कुछ दाव पे लगा हुआ है. चाइना का परफॉर्मेंस भी कल हिंदू नहीं मतलब नहीं था. आज थोड़ा सा और बेहतर करके जरूर वो आगे बढ़ना चाहेंगी. लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये हो जाता है कि पोडियम फिनिश में नहीं होने वाला है. अरे तो जिस दिन हो जाएगा उस दिन कर लेंगे. अभी क्यों एंटी नेशनल कर रहे हो? कोई भी एंटर कर पाएगी. बिकॉज अगर एंटर नहीं कर पाते हैं तब कह सकते हैं कि देखिए उनका सफर उतना सफल नहीं था. लेकिन चाइना की टीम हाँ भारत हो गया है G20 में तो भारत करने के लिखा था. आप चाहे अरीना बोलिए, रेड हाउसेस बोलिए, पीपल विल स्टिल कॉल इट इंडिया आफ्टर नेम चेंज. हाँ जैसे बैंगलोर को बैंगलोर ही बोलता हूँ मैं, बेंगलुरु नहीं बोलता हूँ. भी तब भी जाके फाइट्स निकालने में उनको कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए. जर्मनी एक बार फिर से जो कल का उनका स्टैटिस्टिक्स था, जो उनकी स्ट्रेटजी से अब तक रही. म्यूट कर लेता हूँ भाई मैं डिस्कॉर्ड पे, नहीं तो देखते हैं कि माइक आपको हमारे HydraFlick भाई पक जाएंगे हमारी बातों से. आप खेलो ना इंडिया के लिए. यू आर द बेस्ट PUBG प्लेयर आई हैव सीन. भाई बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं ये लोग जो खेल रहे हैं अभी जाके. देखो ये भी बोल रहा है बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं हमारे इंडिया के. टीम जर्मनी से खेलते हुए FNS भाई ने देखा हुआ इंडिया के प्लेयर्स. वो पहला पायदान अभी मेरा माइक म्यूटेड है अनम्यूटेड है? जा सकते हैं, लेकिन हम बात कर रहे थे स्टैट्स की. अभी भी वही स्ट्रेटजी चलो अपनाती हुई जर्मनी एजेस पे 10 kills was our target. We are एज टू एज उनका मूवमेंट हमें ज्यादा देखने को मिलता है. कल के दिन पे थोड़ा बदलाव उन्होंने किया था जब पूरी तरीके से वो किसी से पंगा नहीं ले रहे, उनके ऊपर सबसे हाथ मिला के चल रहे. देख रहे थे कि एजेस से सेंटर की तरफ वो सीधे जाते हुए टीम इंडिया में कौन से प्लेयर्स हैं? टीम इंडिया में है भाई मैं थक गया बोल बोल के. सलमान, अनफॉरगिवन, टोरेटो, ट्रांसलूसेंट एंड टेक्सचर. देखने को मिल रही है. टेक्सचर इज द फिफ्थ मैन. ही इज नॉट जो पहला he has not played a single match. काफी बढ़िया गए थे उनके, लेकिन उसके बाद थोड़ी दिक्कतें आई थी और अभी के लिए सैंड स्टॉर्म के थ्रू सर्कल में अंदर जाने की कोशिश. ब्राजील का पहला दिन तो बहुत अच्छा था, लेकिन बाद में आके changing the name of a country is not a one day one week thing. It's going to take at least 15 years to change and at least 3 generations to change it fully. है जी ये तुम 15 साल कुछ ज्यादा ही नहीं बोल दिए. 200-300 मीटर के अंदर एक दूसरी टीम नजर आ रही है. शायद से वो वियतनाम के खिलाड़ी है. जी हाँ, वियतनाम के खिलाड़ी काफी नजदीक रहेंगे, लेकिन वियतनाम को भी ये चीज दिमाग में रखना पड़ेगा कि देखिए अगर वो आए हैं. This is India and Bharat both are official. They are encouraged to use धीरे-धीरे ही कदम आगे Bharat more than India. The Article 1 will change. कितने भी हाई ग्राउंड पे होल्ड क्यों ना करे मुश्किलों के अंदर. भाई फिर तो चक दे इंडिया को बैन करो बे. एंटी नेशनल मूवीज घोषित कर दो फिर चक दे इंडिया को. फाइट्स यहाँ पर चक दे भारत क्यों नहीं है? हो सकती हैं, लेकिन दिक्कत इसी बात की है कि हम हर बार देखते हैं कि लॉस इन और बड़े हरामजादे हो भाई. बाद एंड सर्कल जो है वो थोड़ा ओपन एरियाज की तरफ जाते हैं. चाहिए कुछ चाहिए भाई, सबको कुछ चाहिए. वेस्टर्न साइड और ऐसे में इस पे जाके रैंट करना है मुझे आज. इंडिया को हथियार लेंगे तो फिर अगर आज क्या टॉपिक हो सकता है तो वहां पर जो दिक्कतें हैं वो थोड़ी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी. सारी टीम्स कन्वर्ज होकर के आ चुकी है लॉस इन के अंदर और
बहुत सारे जो क्लस्टर्स है वो में फॉर्म होते हुए नजर आएंगे। बट ऐसे में एक चीज अच्छी होती है कि जब सारी टीम सेंटर ओरिएंटेड खेल रहे हैं तो एजेस क्लियर होती है करो, इंडिया और लिखा इस है। बात हाँ का बे फायदा मिलेगा जर्मनी को जो लेट रोटेट करके आएंगे, डेनमार्क यहाँ इसको बॉयकॉट करो, ये पीएनसी को बॉयकॉट करो। यहाँ पे भी इंडिया लिखा है, भारत के नहीं लिखा भाई। उनके पास एजेस रहेंगे। व्हाट्स अप गैलेक्सी, वेलकम टू द स्ट्रीम। ऑफ डाउट कि सर्कल का अगला शिफ्ट कहाँ जाएगा वो भी उनके फेवर में। देखिए जोन आने में अभी भी थोड़ा बहुत टाइम है। Are you playing Asus ROG Showdown PUBG? I might. ये जोन I might. 2 बनने के लिए, फेज 2 बनने के लिए। Your mic quality is too good, man. Thank you so much. जो भी टीम्स अभी भी एजेस पे खेल रही है उनको कुछ ज्यादा फिक्र करने की जरूरत है नहीं। थोड़ा सा और लूट कर लेंगे। यूटिलिटीज की बात करें, कंज्यूमेबल्स क्या चल क्या रहा है अभी मैप में थोड़ा ध्यान देते गाइस। एडवांटेज मिल जाएगा एंड सरप्राइजिंगली आप अगर Hyder, does Sensi change if you switch to a different PC? No, I mean DPI सेम है, माउस सेम है, गियर सेम है, सब कुछ सेम है, तो क्यों चेंज होगा सेंसी? हाँ, मॉनिटर जब तुम चेंज करते हो तो सेंसी चेंज होने के चांसेस होते हैं क्योंकि रेजोल्यूशन के वजह से सेंसी पे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है। Okay, we're gonna see China going up and close with Vietnam. Vietnam will be able to get one and I guess next one भी भाई गया है। वियतनाम ये चाइना के 2 प्लेयर्स ड्रॉप हो रहे हैं। उसके बाद थ्रोबल्स का भी बेहतर इस्तेमाल, 2 खिलाड़ी ऑलरेडी डाउन हो चुके हैं। Yes और sir. चाइना एक बार फिर से वो खराब शुरुआत हमें देखने को मिल रही है। China with a bad start. I think we can catch up on Canada and Japan today अगर boys play well. की बात करें ओपन में अगर वो ज्यादा आएंगे तो फिर मुश्किलें उनकी भी देखो बढ़ सकती है। कनाडा भी 30 पे है, जापान भी 35 पे है, इंडिया 10 पे है। तो ऑलरेडी हमें किल One chicken dinner with 10 kills करने के लिए आए थे बट वीकर लेकर के आए और will put us आए थे above Canada. इस गेम से बाहर। विदाउट इन्फॉर्मेशन अगर किसी कंपाउंड को स्काउट I करने guess. जाएंगे इनफैक्ट इतना Third ज्यादा दोनों के दूर 30 चले points जाएंगे तो होते ये हादसे होते रहेंगे। But can we get a किसी भी chicken टीम के dinner साथ with हो 10 सकता है kills? ऐसे Is that हादसे, लेकिन possible? अगर जापान की बात करेंगे एक अच्छा पोजीशन है। देखिए उनके पास कंप्लीटली नॉर्थ वेस्टर्न साइड का पूरा क्वाड्रेंट उनके कंट्रोल में रहेगा। उनके सामने मौजूद ब्राजील, यूएसए एंड अर्जेंटीना भी। How can India enter top 10? अभी तक 3 टीम्स हैं जिन्होंने जोन के अंदर कदम रखने का सोचा तक नहीं। 5 chicken dinners. डेनमार्क जो है वो बहुत लंबा एक रोटेशन लेके आ रहे हैं। Nah, just kidding. 5 chicken dinners नहीं। Actually, if India gets like 3 wins, yeah, top 10 finish possible. आजू बाजू आने के बाद डेनमार्क से मुलाकात नहीं 3 wins में तो ये लोग भी तो पॉइंट स्कोर करने वाले हैं। But yeah, 3 wins is very optimistic also. शायद कुछ इनिशियल उनके नाम किल्स आ It's not possible पॉइंट्स बहुत for India to get to top 10. वैल्यू ऐड करते हैं उनके ओवरऑल परफॉर्मेंस पे। It's not possible for India to do it. रिवाइवल वहां पर दिया जा रहा है Because these teams are also going to move ना यार, ये 65 पॉइंट्स पे थोड़ी ना बैठने वाली है। रिवाइवल तो इनिशिएट हो ही जाएगा क्योंकि अच्छे हार्ड इंडिया भले मूव करेगा बट ये टीम्स भी तो कंसिस्टेंटली थोड़े बहुत पॉइंट्स निकाल ही रही है ना, तो टॉप 10 तो आना नियर इम्पॉसिबल चीज हो गई। फाइट्स लेकिन एक बहुत फास्ट पेस शुरुआत हुई है इन टर्म्स ऑफ रोटेशन। हम देख रहे थे कि टीम स्कैटर होकर के उतरे थे और अब सारी टीम्स का जो जमावड़ा है वो लॉस एनोस के भाई इसकी टायर्स को क्या हो रहा है बगी के देखो आसपास ग्लिच हो रही है बे। सिटी में बहुत सारी टीम्स ऐसे में डेनमार्क हल्का सा लेट रोटेट करे। चलिए जर्मनी ने भी अपनी जो रोटेशंस है वो इनिशिएट कर दी है। कल के दिन पे हम देख रहे थे चलो सही है, डैमेज ले रहे थे पहले स्टेज में, जोन भी सही है, बहुत और लूट के ऊपर ध्यान दे रहे थे, उसके बाद सर्कल में जा रहे थे। लेकिन कम से कम आज के दिन के शुरुआत में वो स्ट्रैटेजी उन्होंने थोड़ी सी बदली। अभी के लिए ब्लू का डैमेज बिल्कुल भी अभी के लिए कोई भी प्लेयर गिरा नहीं है कोई भी टीम से एक्सेप्ट चाइना। चाइना के 2 प्लेयर्स डाउन हो चुके हैं, इंडिया के 4 प्लेयर्स खड़े हैं, लॉस के अंदर है। होपफुली नजर आएंगे लूट फूट हो चुका होगा, गाड़ियां कलेक्ट हो चुकी होगी। क्योंकि अभी के लिए टीम्स काफी ओह जर्मनी इज गेटिंग द ड्रॉप, जो लेवल 3 गियर मिल चुका है जर्मनी को। क्रेजी क्रेजी पहुंच चुके हैं लेकिन केयर पैकेज आएगा और जर्मनी बहुत यूजफुल होता है बे लेवल 3 गियर। दोनों हाथों में लड्डू। MK किसको नहीं ब्रो MK उठा रहे हैं क्या वो लोग? ब्रह्मास्त्र देखिए MK14 का एक फायदा होता है, ब्रह्मास्त्र है लो डैमेज तो आप बहुत ज्यादा दे पाते हैं मिड टू लॉन्ग रेंज में, लेकिन क्लोज रेंज पे आने के बाद अगर आपके पास एक एक्सटेंडेड मैग या फिर एक एक्सटेंडेड ब्रो नोबडी पिक्ड अप द MK। हेलो ये AR से भाई मैं होता तो मैं नहीं छोड़ता MK कि ये क्लोज रेंज के लिए परफेक्ट वेपन है। आप हिप फायर से भी अगर फायर करेंगे 3 बुलेट्स एंड व्हाई कांट वी जस्ट किल दिस ऑफ, वी गॉट नथिंग टू लूज। देखना पड़ेगा या लुक टीम इंडिया शूटिंग चाइना रो अपने गेम के साथ सिमिलर लग रहा है क्योंकि काफी ज्यादा चाइना बहुत रहते हैं। हां मैं सर्वाइव नहीं कर पाता हूं ड्रॉप लूप से 2 ही बंदे बचे और थोड़ी सी ट्रिकी सिचुएशन में है, वो लोग को रोटेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है। के मैप में ऑलरेडी देखा था जर्मनी का ऐसा गेम या और वो चीज उनके फेवर एंड चाइना इंडिया की आंखें है अभी कंसिस्टेंट गेम उसी तरफ। सैंडस्टॉर्म में हेल्थ नहीं जा रहा है रे, व्हिच मींस गुड टू मतलब यू कैन आई बीट डोंट दिस नो, सैंडस्टॉर्म। आई थिंक या यू लूज हेल्थ। देखिए लोग जो ड्राइव कर रहे हैं इनका थोड़ा हेल्थ जा रहा है। शिफ्ट आए और हार्ड जो ईस्टर्न शिफ्ट है वो हमें देखने को मिलता हुआ। हम बात कर भी रहे थे कि लॉस दिन उसकी कुछ तो सीन है सैंडस्टॉर्म का भी। मैं भी कल देखा कुछ जगहों पे मेरा हेल्थ जा रहा था, कुछ जगहों पे नहीं जा रहा था। अच्छा व्हेन यू आर मे बी इन द डीप और भी ज्यादा मे बी
maybe when you're in the center you take damage, but when you're in the outside you only lose your vision. के लिए ये गेम अच्छा शुरुआत Something नहीं like था। that. अर्जेंटिना के लिए ये गेम अच्छा शुरुआत नहीं है। क्योंकि फेफड़ा के अंदर गाइस घुस जाता है वो सैंडस्टॉर्म्स। और अर्जेंटीना ने रीड कर लिया कि वहाँ पे नहीं खेल सकते हैं। सीरीज में जाके होल्ड करना चाहे तो कर सकते हैं, लुकी। बट मैड के द्वारा क्या बेहतरीन प्ले है तुर्की के हर एक खिलाड़ी का। देखिए नॉकआउट कोरिया is number 1 and they lost a player. कुछ ही और पलों में मिल जाएगा उनको। That's bad. फाइनली द मैड ही है जो कि ये किल वियतनाम में ऑलरेडी भाई इसलिए मैं नहीं देख रहा हूँ, इसलिए मैं हिंदी कास्टिंग नहीं देख रहा हूँ भाई। ये बीटी हो रही है हिंदी कास्टिंग पे। कंफर्म करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद अगर हम कोरिया की बात करते हैं, वो भी काफी सेंटर में पहुंच चुके हैं। देखिए कोरिया का नेक्स्ट शिकार, पहला शिकार बन सकते हैं इंडिया काफी क्लोज। ऐसा चिपक के गाड़ियां चला रहा है। जर्मनी आ रही थी कंप्लीटली वेस्टर्न साइड से, एंड ब्राजील आ रही थी वेस्टर्न साइड से, जर्मनी आ रहे थे। इंडिया 6 चिकन टुडे लीक्स के लिए दोनों टीम्स में से थोड़ी बहुत एंगेजमेंट होना हमने हिंदी कास्टिंग का नेट अच्छा नहीं है। बट इस फाइट का रिजल्ट क्या होगा? क्या वो फाइट लेंगे या फिर डिसेंगेज? Honestly, I'm hoping क्या लगता है आपको? a chicken and eliminating a big team today, nothing else. हाँ bro, they got nothing to lose. That's what I said. They got nothing to lose today, भाई। आज फ्राइडे है, मूड में आ जाओ भाई। आज है क्या? संडे है, पर मैं बोल रहा हूँ फ्राइडे है। पहले पायदान तक का सफर तय नहीं कर पाएंगे, थोड़ा और भी ज्यादा अग्रेसिव उनको खेलना पड़ेगा और वो मूड के साथ खेलना पड़ेगा इन्हें। कि उस चीज के ऊपर एक रेजिस्टेंस जरूर से पड़ा है पिछले कुछ मुकाबलों में। Vegans on Indian team, so no chickens. और ये जो ईस्टर्न शिफ्ट आया है ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क। Guys, make sure to like the stream. 350 people watching. Let's go 300 likes at least. देखने को मिल रहा है जहाँ पे वो सर्कल के अंदर जाते हुए नजर आएंगे। और जर्मनी अभी 1 like equals to 1 support to Team India. ऐसे में फाइट हो सकता है देखने को मिल जाए। टी शर्ट तो सेक्सी है भाई, बहुत महंगी टी शर्ट खरीदी थी मैंने, कभी पहनी नहीं बाहर, क्योंकि बाहर पहनने जैसी नहीं लगी मुझे। ओपन में कोवो है, सिर्फ स्ट्रीम पे अच्छी लगती है, ये बाहर अच्छी नहीं लगती भाई। बाहर एकदम चोमटू लगता हूँ मैं। आप देखिए कि उतना ज्यादा हॉट, उतना ज्यादा जो फाइट्स हैं वो देखने को नहीं मिल रहे हैं। टीम्स उनका प्राइमरी फोकस है कि कैसे भी सर्कल के अंदर एक सेफ स्पॉट ढूंढा जाए। I look like a cool uncle. प्लेयर्स जो है डाउन एंड आउट हुए हैं। अर्जेंटीना ने एक स्मार्ट डिसीजन लिया है, उन्होंने इमरजेंसी पिकअप के थ्रू शायद कंप्लीटली जाके हिल टॉप होल्ड करने का डिसीजन लिया है। कैमरा पे अच्छी लगती है, ऊपर ऑलरेडी कार्गो के नीचे, कार्गो पहन नीचे। हां भाई अर्जेंटीना अगर यहां पे उतरते हैं उनके लिए बुरी खबर होगी, या फिर वो चाहे तो कंप्लीटली सदर्न पार्ट पे जाके लैंड करे साउथ ईस्ट के एरियाज में, तो शायद उनको थोड़ा सा ब्रीथिंग स्पेस मिल जाए। अच्छा तो लग रहा है। अरे यार पर ओवरसाइज नहीं है ना, कि अगर वो साउथ ईस्ट पार्ट पे जाके उतरते भी है, कितनी डीप और बॉडी तेरे भाई पे है नहीं। यूनाइटेड किंगडम उनके काफी नजदीक नजर आ रहे हैं। ओके जर्मनी तो ऐसा आर्म जैसे पतले लगते तो अच्छा नहीं लगता यार मेरे को। कंफर्टेबल कॉन्फिडेंट नहीं फील होता, समझ रहे हो? इसलिए तो ओवरसाइज टी-शर्ट्स बिकती है सालों। तुम किसी कोई भी ओवरसाइज टी-शर्ट पहनने वाला 90%, चलो 90% ओवरसाइज टी-शर्ट पहनने वाले अपने पतले हाथ छुपा रहे हैं। फिर से वो जो इनकंसिस्टेंट गेम प्ले हम जिस चीज की बात कर रहे थे, या तो अपना चौंकी हाथ छुपा रहे। सदर्न एरिया जरूर से रहने वाले जोन का एक सेंट्रल शिफ्ट टीम इंडिया अभी भी वो में सर्कल के अंदर देखने को मिल जाएंगे। यूएसए को अब एक बड़ा जो फासला है वो तय करना है। कनाडा की पोजीशनिंग बहुत ही ज्यादा बेहतरीन लग रही है। अगर हमें अर्बन सर्कल देखने को नहीं मिलता है, कनाडा के पास बहुत अच्छा कंट्रोल हमें देखने को मिल जाएगा। हम पे तो है ही ना। वियतनाम की बात करें, अभी भी एजेस को ही वो प्रायोरिटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रू ओवरसाइज में अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। इतने फैक्ट्स मत बताओ, ज्यादा फैक्ट्स हो गए क्या आज के लिए? बहुत सारी फाइट्स देखने को मिल सकती है। जर्मनी वर्सेस हाउ डू यू नो? बिकॉज़ आई एम कॉन्शियस राइट। मैं अपना ऐसा ये डिफरेंस है वो हमें मेरे को मेरे आर्म्स जब मैं से जिम जाता था, आई यूज्ड टू बी सो कॉन्फिडेंट। मैं बहुत ऐसे कुछ अलग वो टी-शर्ट्स पहनता था टाइट सी। दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जब मैं जिम जाता था मेरी बहुत अच्छी लीन बॉडी थी, बहुत क्रेजी लाइक फिजिक था मेरा, बहुत अच्छा लगता था मैं। अभी के लिए टेक डाउन ऐसे कोई भी कुछ भी पहन लूं। बट फिर जब मैंने जिम जाना छोड़ दिया और फिर मैं पतला हो गया है, तो फिर ऐसा समझ रहे हो मैं कॉन्फिडेंस लूज कर दिया। फिर मैं ओवरसाइज टी-शर्ट्स पे चला गया। तो मुझे पता है मैं गया हूँ, उसका मतलब बहुत सारे लोग गए ऐसे। तो रेंज कॉम्बैट में ये वेपन साबित होता है, लेकिन ब्राजील को ना सिर्फ जर्मनी से उनको तंग करने वाले हैं, अभी आगे से तुर्की भी तो जोन में एंट्री लेना मुश्किल। एक ग्रेनेड भी आया है। हेवन का ये नॉकआउट है, ये कंफर्मेशन में भी बदल और एक सिंगल पसली जाएगा। माइका भी अच्छा लग सकता है ओवरसाइज टी-शर्ट में, बचे हुए विनी द हैंगर नहीं लगता।
बढ़िया बढ़िया वो बढ़िया। ड्रॉप शोल्डर वाले लुक में। घटिया माइक लेके आ गए शैक के बाहर जाके खेल रहे हैं अभी तक। यहाँ बूट कैंप है यार। अरे इग्नोर नहीं कर रहे हैं अंकित भाई, कैसे हो? बूट कैंप पे अच्छा माइक लगवा लो ना। क्या कर पाएंगे हाँ यहाँ जी हाँ जी। अकेले सर्वाइव इस जगह पे? हाँ जी। Oversize equals to fake personality. Like, are you a rapper, bro? Are you a rapper? मुकाबला ब्राजील आगे तक नहीं जाते जो कि मोस्ट प्रोबेबली बैंडना भी रैपर्स ही पहनते हैं, अभी फेक पर्सनालिटी। डाउट है आप ब्रिटिश और बस खुशी। इंडिया मर गए, जिंदा है। हाँ कल क्या कुछ नहीं 6 रहा। महीने रुक जा, मेरी बॉडी बनने वाली है। हर्ष भाई तो रेगुलर जा रहे जिम, कैसे हो? और उन्हें चेंजेस लाए हम बात कैसे करेंगे। हो? ओ तुम चला गया था, अच्छा बाकी कुछ नहीं हुआ, सब मर गए सब मर गए। हाँ तो एक पॉइंट निकाला, एक पॉइंट निकाला। एक पॉइंट निकाला मेरे ख्याल बस। से एक बहुत ही मेरी भी है वो, मेरी भी इनसिक्योरिटीज है। साथ में let's 10 पॉइंट कर दिया, डबल डिजिट कर दिया भाई सिग्मा जी। देखो आते ही 11 कर दिया, आते ही 11 कर दिया। Let's go, 1 kill। और एक ले लिया भाई, तुम बनाओ। खलाना। किया ही है और देखो एक बार भाई, फिर से मैच चल रहा है भाई। तलाश करेंगे उस चिकन डिनर की। ब्राजील फिलहाल डीसी बॉयज ज्यादा है। आवाज नहीं आ रही कोई। ठीक ठाक कम कर दूंगा। ऐसा भी नहीं कि वो हेलो। बहुत ज्यादा नीचे है या फिर बहुत ज्यादा ऊपर हेलो। है। वो एक ऐसे पोजीशन पे है जो भाई, आज बात के दिन बताओ, पे ये मैप व्यू क्यों दिखा रहे हैं ऊपर से? उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ तो अभी मैप में बहुत सारी चीजें हो रही है, चेंजेस हो रहे हैं तो दिखा रहे हैं। ब्राजील कुछ कर पाती है। फाइट कहीं पे एक्चुअली हो नहीं रही है, इसलिए वो परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा ओ अभी एक्चुअली फाइट होने वाली है। टाइपे एंड डेनमार्क की फाइट है, यूएस भी इसमें ब्लंडर में। अबे एक अलग स्ट्रीम चल रही थी, बस मैप दिख रहा है। यहाँ पे देखिए चाइनीज टाइपे के ऊपर अच्छा वो मैच स्ट्रीम चला रहा होगा तुम। व्हाट द हेल कर दिया जाता है। शीश, टाइपे। टाइपे ये क्या है बे? बहुत टाइम हमने देखा है चाइनीज ताइपे ने ऐसे अच्छा ओ कोशिश ताइवान ऐसे डिफेंड उन्होंने करके Crazy दिखाया है। भाई। एंड एक Bro, और बार ताइपे। मिरामार के मुकाबले डेनमार्क में पर पहले बैठा है। Destroyed USA bro, destroyed अकेला USA। player। इंडिया के अगेंस्ट में आज यूएसए के नहीं। अगेंस्ट में Ooh। भी मिल के मारा है। फिनिश? विल यू गो फॉर द फिनिश? भाई में आखिरी खिलाड़ी वो बचे Or हुए is he हैं। feeling और edge इसके बारे में win? हमने बात की भी थी किस प्रकार से वो काफी Is he बेहतर feeling तरीके से edge resist win करते हैं, today? होल्ड बहुत अच्छे तरीके से करते हैं वो और फ्लैश तो अपने मुंह पे पटा कंपाउंड होगा। को बचाना First वो match जानते है, हैं, he can काफी take the उन्होंने risk। को यहाँ पे करके दिखाया है। लेकिन क्या ताइपे के प्लेयर्स को पता है कि भाई भी अभी के लिए कहाँ पर First मौजूद है। First ना? बात हाँ, ढूंढ रहे, not चलिए yet. फाइनली उनकी पोजीशन अब रिवील्ड आउट है। एक 1v2 भाई कल अश्विन क्या ही मारा था बे। आने वाला है। Oh, he's dead, he's dead. Oh, dead है भाई। वो आगे जाएंगे नहीं और इसी के साथ एलिमिनेशन By me, का भी हो जाएगा। Bemi, 14वें पायदान Anti में भाई। 13 टीम्स 40 खिलाड़ी देखने को मिल रहे हैं बट तुर्की मुश्किलें तो उनकी भी बढ़ रही हैं। कनाडा भी एक प्लेयर नॉक हो चुका है। कर चुके हैं। कोरिया का एक प्लेयर जा चुका है, अर्जेंटीना का एक प्लेयर जा चुका है, टर्की के 2 प्लेयर जा चुके हैं, चाइना के भी 2 प्लेयर्स अभी तक जिंदा है। जाके आप देखिए Somehow surviving। खेल रही है आज जोन के एज पे रहेंगे। इनफैक्ट सर्कल पूरा का पूरा एक हार्डशिप ले चुका है कंप्लीटली साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में। तो जो भी टीम साउथ में गई थी स्पेशली अर्जेंटीना का वो रोटेशन अभी बहुत ज्यादा उनको अच्छा लग रहा होगा। आई थिंक इंडिया को यहाँ बीच में मजे लेके पॉइंट्स बढ़ाने चाहिए और मैं भी जिस फॉर्म में खेल रही है मे भी करेंगे भी। हाँ वही करना है उनको, बढ़ रहे हैं उनको वही करना है। एंड Fight क्या करने वाला इंडिया का team क्या को लक है करना भाई, लॉस का ही सर्कल था और लॉस में ही इतना फाइटिंग्स हो गया। होने तो वाला है। लेकिन Yes, इसके that's अलावा और correct. क्या कर सकते हैं ये एक प्लेयर जिनमें से नॉकड आउट है साउथ बट इंडिया आई थिंक स्टिल अभी लॉस में ही फंसी हुई है। टीम को कंप्लीटली वाइप कर दे विदाउट लूजिंग एनी टीममेट। हाँ भाई भाई एक हाईलाइट बन जाएगा भाई, बढ़िया है मजा है। एक ऐसी पहला फाइट पायदान निकले ना उनके पास है और वो आज मजा आ जबकि जाएगा। teams That will be the highlight. आगे निकल चुकी है। गेम प्ले खेल रहे हैं लेकिन वो उनको सूट कर नहीं रहे उतना ज्यादा। देखते हैं कि क्या क्यों, वो सही सच बात में कही उतने कि नहीं ज्यादा हाइड्रा? लेकर के जा पाएंगे बट वियतनाम उनको तो सॉरी यहाँ पर बाजी, क्या kills सीन? निकालने हैं। ऑस्ट्रेलिया मैं के कह ऊपर रहा धावा हूँ बोला जरूर से कि गया। मैं चाहता हूँ खिलाड़ी एक को वहाँ पे फाइट हो instantly kill जिसमें किया टीम जाएगा और इंडिया अब ग्लोरीज किसी को आगे एक बढ़ते टीम नजर को आएंगे बट दोनों कंप्लीटली अंदर डिस्ट्रॉय कर दे चारों बंदे। ट्रांसल्यूसेंट को डाउन हाँ मैं तो बोल ही रहा हूँ ऐसे without डोमिनेंट losing क्लिप a चाहिए। हम तो डे 1 से बोल रहे हैं कि एक डोमिनेंट क्लिप दे दो, हम खुश है भाई। बस वही तो मांगता है। इंडिया का एक नॉक है by the way। निकाला जाएगा और I know वियतनाम they के will ऊपर allow ऐसे में जब डेनमार्क जो तीसरे पायदान की टीम है वो बाहर कहाँ हो knock चुकी है, हुआ है, ये वियतनाम नहीं बहुत दिखा। ज्यादा भाई, मुश्किलों में क्या है। चल रही है? तो भाई, लॉस में ही नॉक हुआ है, झालैंड लॉस वहीं का पे हिल्स खेल की रहे उधर हैं। हुआ। पास एक मौका है कि रेस हो को गया, बढ़ाया रेस जाए हो बट वियतनाम उन्होंने अपने बैक्स क्लियर नहीं करे सलमान और उसका खामियाजा यहाँ पे भुगतना पड़ेगा। काफी बढ़िया ऑफ गार्ड एंगल फेक्स कनाडा वहाँ पे का क्रिएट एक करा player और वियतनाम पूरी तरीके से प्रेशर डाल रहा है भाई। यूनाइटेड किंगडम एक बेहतरीन shit. एग्जीक्यूशन निकालते हुए एंड लग तो रहा है कि Oh. शायद से Translucent है। हमें उनका गया बहुत बरो जल्दी नहीं निकल जीतने रही का इंडिया मौका यहाँ मिल सकता है। से। अकेले एक Finish कर player दिया। है साकी बची Unless हुई है, they दिख रहा है अभी। take Zone down हो that जाएगा, centralized shift कीनन रहेगा। guy, अरे solo है, I think निकल अब सकती है। तो हिल बैटल ही सही।
कल की कहानियां दोबारा दोहराई अरे जा नहीं रही है। निकल सकती है, एक ही प्लेयर है कनाडा का जो ऊपर बैठा हुआ है, देख रहा है उन्हें। तो हमें भाई दो टीम देख रहा है यार, कैसे छोड़ेगा। हाँ 2 टीम देख रहा है, वो गारंटीड है, बट ये 2 प्लेयर्स किस तरीके से खेलना चाहेंगे। एक प्लेयर इंडिया के अरे, खिलाड़ी को जरूर नॉकआउट करते हैं, वेक्सिल पोलो को, से नॉक कर जो गया। आज उनके कोच अबे ये साहब आए कौन हैं, खेल रहा है, ये सलमान रक्सिल को कौन है? इंडिया के 4 खिलाड़ी बचे हुए वो हैं। तुम लोग बहुत आगे हैं क्या? कीनान अकेले पहले पड़ा है भाई। रिमेनिंग प्लेयर्स है वो अभी भी जोन के बाहर भाई है। डोंट टेल मी ये पांचवा सोलो जोन है, आप 3 इसमें को खा गया है। विदाउट हीलिंग तीन सर्वाइव knock नहीं कर कर दिया पाएंगे। अपने। ऊपर मौजूद What? अकेले कनाडा के कीनन कितना ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं इंडिया के ऊपर भी। और चाइना का प्लेयर देखो पुश कर रहा है। बढ़ सकती है, सर्कल के अंदर भी जाना है, वहीं वियतनाम के वो आखिरी Come खिलाड़ी on. आ सके, उनको भी बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। एक बचा हुआ एलिमिनेशन है। वियतनाम का भी एक भी प्लेसमेंट पॉइंट उनके पास जाएगा खत्म। नहीं। चाइना तो टीम दोनों ही जोन क्या के बाहर क्या वो फाइट रिवाइव कर तो रहे नहीं हैं। होंगे, रिवाइव तो नहीं होने वाले, जोन आ रहा है उनके अकेले ऊपर। player भाई बजा दी भाई मिल जाएगा पूरी 11वें टीम पायदान पे, हम प्रेटी श्योर। ओ ले गया जर्मनी का प्लेयर, सलमान को ले गया। इंडिया इज आउट सलमान को। अगेन। और एक भाई खराब मुझे एक बात बताओ, प्रदर्शन मात्र वेयर एक अंक आर के योर मुकाबले से कार्स, एलिमिनेट वेयर होते हुए इज योर 11वें व्हीकल पायदान पे। फॉर द देखिए टीम इंडिया को रोटेशन। थोड़ा सा और इंतजार करना था। जब अरे एक अगर बात थोड़ा बताओ, आगे आती हाँ। उस मौके का फायदा उठा के जोन आना चाहिए। ये उतरे लॉस में है, एक लॉस जोन लॉस गाड़ी का तो अपने पास रखना है यार। हाँ नहीं उतरे लॉस में है। कनाडा इनके स्टार्ट में साथ में थी आई थिंक, जर्मनी अभी सैंडविच्ड है। मैं आई थिंक स्टार्ट से ही साथ में थी। ठीक है। गाड़ियां नहीं, थी, नहीं, मैंने सही बोल देखा रहे था। हैं। कनाडा टेक्सचर loss टेक्सचर होते ने इनको टेक्सचर जब मारा था तब एक गाड़ी कुछ तो था, हाँ। पर रोटेशन आया ही नहीं, मतलब कहीं गए नहीं वो लोग, गए निकले ही नहीं। लॉस में बिल्डिंग टू बिल्डिंग खेल के आगे आए और लास्ट में वी डोंट हैव अ कार, वी हैव नो वे टू गो। ब्रो ऐसा एक सीन गाड़ी है। के भरोसे तो रह ही नहीं सकते ना, यू नीड एटलीस्ट 3-4 होगी गाड़ियां, बट जब फाइट्स, जब इतना ओवर क्राउड हो गया ना लॉस, तब निकलने का ऑप्शन नहीं था इनके पास आई थिंक। अरे पहले ही निकल जाना चाहिए था। थोड़ा सा रुक जाते हैं। हाँ मतलब जोन रीड करना था ऑब्वियसली, बट ठीक है। उन्होंने फाइनली आई थिंक वही उनका कॉल था कि लॉस में रहेंगे, थोड़ा फाइट करेंगे, ठीक है। कि टीम्स अभी लॉस के अंदर आने की ट्राई करेंगे, तो कुछ तो जैसे कोरिया आई, चाइना आई, टर्की आई, ये सब आया ना लॉस के आसपास से अंदर आए। सब आए बट उन्होंने ऐसी पोजीशन ली। हाँ पर वो आके निकल गए, हाँ इंडिया वहीं लैंड करके वहीं रह गई, वो सीन हुआ है। सर्वाइव कर रहे हैं, बट वहीं देखते देखते कनाडा उनका एलिमिनेशन में देखने को मिल जाएगा। सर्कल के अंदर आने की कोशिश वो देखो की जरूर, जर्मनी और मार काफी के ज्यादा जोन मुश्किल के साथ में साथ देखने आगे को मूव मिले, कर बट रही है। अभी के लिए आनंद That is what किए matters. जाएंगे। कोरिया भी होल्ड कर रही थी हमें, जर्मनी भी होल्ड कर रही थी। आई थिंक कनाडा इज आउट। हाँ कनाडा ने भाई अपना काम कर दोनों दिया। ही टीम्स गेट वो कीप मार करते मूर नजर के आ रहे निकल हैं, गई। बट अभी के लिए अर्जेंटीना कम से कम भाई कनाडा ने लास्ट वो सेकंड लास्ट चल रहे भाई, उनका भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा। अंदर जाने की जद्दोजहद अच्छा नहीं चल रहा, but still they are, like, बहुत ही ज्यादा gaining लो slowly, एचपी ऑलरेडी slowly. हो चुके हैं। हील उनको करना गेनिंग पड़ेगा क्या, अपने 3 आप तो को। हमारे मारे, वहीं पे आइनोनिक्स वही को तो कैरी भाई। करके 4 पॉइंट लिए पूरे गेम में, 3 हमारे मारे उनने। रिवाइव करने की वो कोशिश भाई, है, point जरूर लेने से सकती है, और मतलब है आप भाई, देखिए अब कितना जिसको भी मारे बेहतरीन क्या कर तरीके से सकते हैं भाई। एग्जीक्यूट करा गया उस प्लान को, बट सर कोरिया को देखा भाई, डॉट एचपी में लेके अंदर आए, रिवाइव भी कर दिया। और अब इंडिया टीम कैंपिंग करके क्वालीफाई हुई थी क्या? नहीं भाई, बहुत डोमिनेंट गेम प्ले था इनका। अर्जेंटिना का रोटेशन याद आ रहा भाई है, जिस थाईलैंड तरीके के से प्लेयर्स को उन्होंने देखो emergency कैसे pickup होल्ड कर रहे हैं भाई, लेके एक सोचा बंदा कि एक घर में, देखिए एक हम बंदा एक घर में। एकदम साउथ ईस्ट के कॉरिडोर में जाके होल्ड करेंगे। अभी सबसे भाई। ज्यादा फायदा उनके पास है, एंड पूरे के देखो पूरे भाई कहाँ प्ले बैठे हुए जोन में आप तीनों, देख एक सकते नेट हैं तीनों गए, सिर्फ एक नेट। 4 या 5 ही घर है, जिसमें से ओए, कोरिया not in a good spot, being the top team. एरिया में है तो थोड़ा सा अरे पर कोरिया क्या बच के आई है, वो देखा तुमने कंधे पे उठा उठा के। हाँ। अबे कोरिया फर्स्ट पे आ गई, अर्जेंटीना 4 प्लेयर्स हैं, फिफ्थ वो हो फिलहाल गई। के लिए तो अर्जेंटीना हाँ। का मैनेज कर रहे हैं, शॉट्स कनेक्ट हुआ अजी है ये कल के 3 जरूर। मैचेस में हुआ होगा लास्ट के 3, क्योंकि हाँ, जब मैं हाँ, छोड़ के गया था तो अर्जेंटीना ही कोरिया top पर। कंसिस्टेंटली निकाल रहा है गेम्स, लाइक टॉप में आ रहा है, सीन वो है। हाँ, हाँ, अभी भी आ गया, टॉप 7 में आ तो गया, बट हाँ। कोई गया अभी भाई, डिफिकल्ट चॉइस हो ये गया। उनके देश का गेम है भाई, तरीके से कनेक्शन एक दे हैव भी टू आ जाएगा, परफॉर्म भाई, दे हैव टू परफॉर्म। होम ग्राउंड पे भी ओए गया होम ग्राउंड टूर्नामेंट, होम ग्राउंड गेम। गया जोन का डैमेज भी बहुत है, हेवी है। गया, सियोल गया भाई। ओ, उसका जैमर पैक है, लेकिन ये शायद से नहीं गलती भाई, से आप टूट जाएगा, मुझे नहीं instant लगता टूट कि जाएगा। सोल यहाँ से survive कर टूट पाएंगे। गया, खत्म हो गया जैमर पैक। एलिमिनेशन हमें देखने मर को गया, मिलेगा, एक तो मात्र मर मैं जोन से मरा। एक अच्छा है, पॉइंट नहीं देने का। जाएंगे और साउथ कोरिया उनका एलिमिनेशन 7वें पायदान भाई पे इसमें देखने अभी को भी यही मिलता होता है हुआ। ना हाइड्रा अब मौका है की, जर्मनी अगर और बंदा कोई अर्जेंटीना नॉक के पड़ा पास हुआ है कि वो तो हमें जो उसको थोड़ा फिनिश और करेगा ऊपर उसको आते हुए किल मिल नजर आए, जाएगा। और अर्जेंटीना वो व्हीकल लेकर के वैसा ही तो होता है। अभी भी तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ तो फिर जो फिनिश करेगा उसको ही अगर मिलेगा। जोन से नॉक हुआ हो, किसी और बंदे से नॉक हुआ हो, गेम प्ले से आगे के जो गेम देखो, प्लान मैं बताऊं, Apex में ऐसा होता है, जरूर हो सकती है। इफ द प्लेयर इज नॉक ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड तो किंगडम जिसने नॉक किया है उसको पॉइंट मिलेगा, चाहे आप फिनिश करो। नहीं वैसा होता तो भाई, वैसा होता तो इंडिया के पास 12 तू पॉइंट तू होता। टीममेट्स का ही बोल रहा है कि लाइक यू आर टॉकिंग अबाउट द टीममेट्स या फिर टॉकिंग अबाउट अदर टीम? नहीं, जैसे मैं कह रहा हूँ, 2 टीमों की फाइट चल रही थी, ठीक है, सर्कल के बाहर एक टीम ने
एक टीम वाइप हो गई और दूसरी टीम का 2 प्लेयर नॉक है, जिनसे फाइट हो रही थी उन्होंने नॉक किया था, ठीक है, बट वो टीम वाइप हो गई। अब जो नॉक पड़े हुए हैं उनको कोई थर्ड टीम अगर फिनिश करेगी तो उनको ही पॉइंट मिलेगा, उनको ही पॉइंट मिलेगा। लाइक किल थर्ड टीम को ही मिलनी चाहिए ब्रो। हाँ बट एपेक्स में ऐसा होता है कि उनको मिलता है जो नॉक करे थे। वो तो मेरे को लेजिट नहीं लगता होते। क्यों नहीं लेजिट लगता भाई? नॉक बंदे का किल ले रहे हो आप। नहीं यार, मतलब if you are dead, you are getting the person out of the room means that is the person who should be actually getting the point, जो पूरा लॉबी से ही निकाले। बट इससे फिर ये होता है ना कि फ्लश हो जाता है, जर्मनी हो जाती है छठे हाँ मैदान में, करना पड़ेगा ना पॉइंट्स निकालने के लिए। बहुत ही ज्यादा अब बाकी टीम्स को ऐसा करना पड़ेगा, फ्लश होने से बचाना पड़ेगा। पहले पायदान को हासिल करने का सारे प्रतिद्वंदी उनके सामने से First तो गया। करके बाहर जा चुके और अब बची है मात्र टॉप 4 टीम। लुकिंग वेरी देखना ये कि क्या स्ट्रांग यूके भाई 4 बंदे अलाइव, जा पाएंगे। अर्जेंटीना 3 बंदे हाँ अलाइव, यार, मेरी जो प्रेडिक्शन जापान है 4 बंदे अलाइव, बट अर्जेंटीना भी बहुत अच्छा खेलता है, वो तो सही होने वाली थाईलैंड प्रीमैन है तो भी मुझे लगता है तीन कि मिलेंगे। मिलेंगे। ले लेगा। अब उनके सर्कल बहुत ज्यादा दूर जाते हैं। हाँ भाई, अरे बहुत पावरफुल टीम है, बहुत भरी भरी हरी फॉर्म में भरी चल टीम्स रहा है। थाईलैंड टॉप 4 में ये पहली बार हुआ है अभी कि सर्कल अर्जेंटीना पे थोड़ा जो दूर और अर्जेंटीना पे प्रेशर है नंबर 1 आने का, लीडर बोर्ड में ऊपर आने का वापस। थाईलैंड वाले अगर पिक करेंगे तो लेकिन एटलीस्ट टेक सेकंड। नहीं थाईलैंड, हाँ यूके वाले का ही कचरा है, थाईलैंड वाले तो कुछ नहीं कर पाएंगे, वो लोग तो ऑलरेडी जोन के बाहर है। दो प्लेयर्स ब्रो यूके So it's all on UK. 3 प्लेयर्स, एक प्लेयर उनके नॉक आउट है। लेकिन जापान की पोजीशनिंग आप देखिए, अर्जेंटीना ने एक बहुत ही बोल्ड मूव दिखाया है, वो जाके सीधा टीबून का कॉपी कौन है भाई? एक देशद्रोही कॉर्नर में बैठे हुए हैं। एक नेट 2 किल, हमारा हमारा टीबोन ही है गेम प्लेस का। होना हो चुका है चालू, 1 मिनट 30 सेकंड और समय रहेगा, सोचना पड़ेगा बाकी स्विफ्ट पिक्स। थाईलैंड ने डिसाइड किया है कि यूके के घर में घुस के And why is उनको nobody वहीं पे shooting मारेंगे, UK, bro? वही कोशिश चल रही है, लेकिन थाईलैंड बहुत ज्यादा ओपन में है। भाई यूके घुस के थाईलैंड को पेल गया। थाईलैंड की फिशूज को खत्म कर दिया जाता है। यूनाइटेड किंगडम कमिंग अप विद अ बैंगर ऑफ थाली में परोसा गया, वो खड़े-खड़े पेल दिया। अरे जापान ने तो किल, जापान ने तो नेट से ही ले लिया भाई अर्जेंटीना को। पलट रहा है यूनाइटेड टीम के द्वारा, किंगडम के द्वारा। ये सबसे बढ़िया गेम रहेगा उनका PNC 2023 पे। प्लेयर बचा है बहुत ही नेट से। बेहतरीन भाई, एरिया what if- मौजूद है। what if 11 UK comes back, dude? 13 किल्स का वो रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। डिफेंडिंग चैंपियन है ना। थाईलैंड काफी करीब वो ग्रेनेड जाएगा, हल्का सा स्प्लैश डैमेज भी आए और अब यहाँ पे सरवाइव कर पा वो गाड़ी नहीं होता ना, जरूर से रहेगा। यूके वर्सेस जापान 4v4 की कोशिश कर सकते हैं, रिवाइवल भी देना है, लेकिन एक परफेक्ट ग्रेनेड वहां पर आता हुआ यूनाइटेड बहुत रेयर किंगडम देखने को मिलता है वो ऐसा 4v4। अनस्टॉपेबल देखने को But मिल रहा है। और UK अब एक फाइनल बैटल Last जापान circle में। वर्सेस यूनाइटेड किंगडम्स की हमें देखने को मिलती हुई। They're all लेकिन set अगर bro. बात करें Everyone India's is दोनों टीम्स के पास set कुछ for a अच्छे areas हमें 4v4. देखने को मिल रहे हैं। टीबन बहुत वेट अच्छे। करेगा ना, टीबन वेट रहा। टीबोन बेट करेगा। हाँ जी। 4v4 फाइनल बैटल में जीतेगा कौन, वो एक देखने वाली बात। यूनाइटेड किंगडम्स अभी भी उनके पास एक मौका है कमबैक करने का। 13 किल्स वो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, अभी भी उनके चारों खिलाड़ी शेष और 78 से 109 कोई बहुत बड़ा फासला तो देखने को नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि वो भी यहाँ से क्लाइंब अप हमारे करके जाए और साथ-साथ चल रहे थे ऐसे कल में वाइट टर्की। एक चिकन डिनर बताओ। की सेट करता है, दूसरी तरफ जापान जो ओवरऑल स्टैंडिंग्स में कहाँ काफी निकले ज्यादा भाई? पीछे। वो होता है comeback उनका अगला actually। शिफ्ट आएगा एक सेंट्रल शिफ्ट। भाई सर्कल यूके का भी कमबैक हो अभी भी सकता है काफी अच्छा। थोड़ी सी बढ़ सकती है। देखिए अभी भी जहाँ यूके पे जाकर अगर अर्जेंटीना जीती होल्ड कर रही थी, top 5 आ जापान के जाएगी। पास वो एरिया नहीं, का top एक्सेस 5 तो रहेगा, नहीं। एक शैक वहाँ पे मौजूद है। Close to उस top शैक 5, पे जाके 6 अगर तो आ वो जाएगी। चाहे तो एक I don't know अभी तक इसमें points add हुए हैं कि नहीं वो वाले। इसकी पोजीशन देखिए, कौन एपेक्स वाले? कंप्लीटली Position अलग point तरह add से हुए हैं है। अभी। I think हो गए ना? यूके के खिलाड़ी सिवाय टीबोन अभी खाली नहीं, जो लोग alive है उनका ऐड नहीं हुआ है, जो लोग उनका मरा ऐड नहीं हुआ हुआ उनका है, ऐड हो राइट चुका राइट। है। हाँ तो फिर जाएगा ना, ऊपर जाएगा एकदम बढ़िया। भाई यूके के 13 किल्स है भाई, क्या लेकिन थोड़ा है जापान भाई भी यूके स्मार्ट ने। है, वो बिल्कुल देखो। डाउन द ईस्ट वैली के बीचों बीच रास्ते भाई एंड साहब, इस हिल का अगर जो जीत वैली गए तो बना बहुत है points वहां से वो मिलेंगे, आगे 13 बढ़ने की प्लस कोशिश कर रहे हैं। 3 और ये जाएंगे फोर्थ फिफ्थ पोजीशन पे चले जाएंगे। अगर निकाल पाते हैं यूनाइटेड किंगडम, इनफैक्ट सबसे बड़ा यूके के चिकन होंगे डिनर 17 होगा, किल विद क्योंकि चिकन डिनर। 13 किल्स चिकन डिनर चिकन एक डिनर के रिकॉर्ड 10 है। जापान तो वैसे ही बहुत नीचे है। चिकन डिनर भी एक रिकॉर्ड चिकन डिनर है, के 10 देखना पॉइंट? पड़ेगा कौन 10 सा पॉइंट। रिकॉर्ड या फिर दोनों ही हाँ, तो रिकॉर्ड्स 10 पॉइंट और 4 पॉइंट इनके। यूनाइटेड किंगडम या फिर नहीं। 27 अभी भी एक बहुत ही Holy shit. छोटे से एरिया में जो जापान के प्लेयर्स है वो हमें रिसाइड करते हुए नजर आ रहे हैं।
सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा, ऐसे में ओपनिंग नॉक वो निकालना बहुत ही ज्यादा जरूरी। भाई धीरे-धीरे कॉर्नर कर रहे हैं, धीरे-धीरे कॉर्नर कर रहे हैं यूके वाले जापान को। जापान के ऊपर आना धीरे-धीरे शुरू होगा, बट फेक्स का गेम प्ले कुछ प्रेशर अलग ही पड़ने लेवल वाला पे है आज के दिन पे भाई, देखने को टीमोन की मिला है। भाई ये स्प्लिट क्यों नहीं हो रही है? मैप के एक कोने में बैठ गए सारे। एक साथ एक भाई, जो लेफ्ट लोग साइड आगे कवर बढ़ना नहीं चाह रहे हैं, कोई हाँ, ऑफ नहीं लेफ्ट साइड कवर का तो ठीक है, बट स्मोक्स भी तो है इन पे। क्योंकि बहुत प्रेशर बनाने के लिए एक बंदा तो भेज सकते हैं। अभी भी यूनाइटेड किंगडम्स के पास एक अपर हैंड, एक अपर ये प्रॉपर 4v4 करने वाले सारे। सर्कल लेके बैठी है यूके, पूरा सर्कल लेके बैठी है। क्या उससे वो एक ओपनिंग नॉक निकाला जाएगा? क्योंकि अब फेस टू फेस जो नजदीकियां हैं, भाई ने स्पॉट कर लिया एक, वो बहुत ज्यादा ऑलरेडी बढ़ चुकी है। फेक्स 5 किल्स निकाल चुके एमवीपी अपनी टीम के। यूके ने हाँ लेफ्ट में तो बिल्कुल खेलने की जगह ही नहीं है। वार्ड का जो एंगल है वो पत्थर है, वो बहुत खेलने की गंदा जगह है। नहीं है। मैं बैड एक बेहतर स्ट्रेटजी अगर बात करें यूनाइटेड किंगडम्स की, तो स्मोक का वार्ड का एंगल बहुत गंदा है। उसके अराउंड जो गेम प्ले है वो बनाने की कोशिश, और ओ उसमें 3 लोग आ गए। क्लूलेस राइट नाउ। कुछ अच्छे ग्रेनेड्स का इस्तेमाल करते हैं, मुश्किलें बढ़ सकती है, लेकिन डैमेज उनके ऊपर आया है, करना पड़ेगा। बट जापान दे आर नॉट रेडी फॉर हनी बैजर। और यहाँ पर हनी बैजर भाई कल भी क्रेजी मार रहा था हनी बैजर भाई। की तलाश में कल आइवन हनी बैजर बहुत क्रेजी मार रहा है। नॉकआउट भी मिल चुका है आखिरी प्लेयर बचते हुए, एंड इट इज गोइंग टू बी यूनाइटेड किंगडम। एक 17 किल्स का विनर चिकन डिनर निकालते हुए, हाईएस्ट नंबर ऑफ किल्स विद चिकन डिनर, या फिर यूं बोलूं कि हर रिकॉर्ड में अभी सबसे आगे यूनाइटेड किंगडम। 17 किल्स, 10 पॉइंट्स चिकन डिनर का, 27 पॉइंट्स का एक जंप बैक की। कहां पर जाएंगे ओवरऑल स्टैंडिंग्स में यूनाइटेड किंगडम? अनबिलीवेबल गेम प्ले, अनबिलीवेबल गेम प्ले। 79 पॉइंट्स से उनके इससे पहले जब हमने देखा था, और उसके बाद ये 27 अंक टॉप 3 के अंदर कहीं ना कहीं वो हमें जाते हुए नजर आएंगे। और अब यहाँ से वो कहीं भी जा सकते हैं। बहुत ही ज्यादा बेहतरीन गेम प्ले हमें देखने को मिलता हुआ। जापान खैर उनके पास हासिल करने के लिए कुछ ज्यादा यहाँ से बचता नहीं है, बट स्टिल दे आर हैप्पी बिकॉज़ दे आर गिविंग देयर बेस्ट शॉट। लेकिन यूनाइटेड किंगडम जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। ऐतिहासिक जीत यहाँ पे हासिल की है, लेकिन देखना ये कि जिस प्रकार से शुरुआत की है, क्या उसको प्रायोरिटाइज करके वो आगे ले जा पाएंगे? क्या अंत भी इसी हिसाब से अभी तक का सबसे बेस्ट? क्यों हाइड्रा, हाँ क्या सीन है? क्या लगता है, क्या स्पेसिफिकेशंस है इनके पीसी की? I mean unbelievable, absolutely पीसी की unbelievable। भाई लगता क्या टॉप द लाइन ही होगी पे ये कमबैक करके लगने की क्या बात है? किसी तरीके से ट्रॉफी उठाती है। सेकंड 240 लेवल का ट्रॉफी रहेगा उनके नाम। अर्जेंटीना भी है रेस में, जरूर मेंशन करना चाहूंगा मैं ये। कोरिया भी अभी है, इंडिया का भाई है यूके। लेकिन जो गेम यहाँ दिखाया है डे 3 में आने के बाद यूनाइटेड किंगडम ने, यार कब देखने को मिलेगा एक टीम वाइब अमेजिंग अपने इंडिया 17 का। किल अभी भी सोचे तो थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है, लेकिन जी हाँ वो हो चुका है यहाँ पे। बट शुरुआत वियतनाम के साथ हुई थी, वियतनाम वर्सेस चाइना, जहाँ पे चाइना ने अपने 2 खिलाड़ी बहुत ही जल्दी गवा दिए थे। उसके बाद सर्कल के बाहर टर्की के साथ उनकी फाइट हो रही थी। वो फाइट वो जीते, लेकिन जोन को आउटरन करने में कामयाब हुए नहीं। बट टाई पे एक बार फिर से वो दिखाते हुए, दर्शाते हुए कि क्यों उनका जो रेजिस्टेंस है, जो कंपाउंड होल्डिंग स्किल है, वो सबसे ज्यादा बेहतर इस पूरी लॉबी में। जिस प्रकार से वो बार बार उस चीज को करते हुए नजर आए थे। के बाद BGLTN ने भी काफी बेहतरीन 2 नॉक्स निकाले थे, और साउथ कोरिया जोन को आउटरन करने में वो कामयाब हुए नहीं। थाईलैंड के द्वारा भी वो पकड़े गए, और फिर वहां से आगे का सफर उनका बना नहीं। बट टुवर्ड्स द एंड एक बेहतरीन फाइट हमें देखने को मिली, और ये जो ग्रेनेड्स का प्रहार हुआ था, जर्मनी बिल्कुल भी रेडी थी नहीं। एक बहुत ही ज्यादा छोटे से एरिया में वो मौजूद थे। व्हीकल भी बर्स्ट हुआ, वहां पे ब्लू जोन ग्रेनेड का भी इस्तेमाल किया गया। बट इट ऑल कम्स डाउन टू कि किस प्रकार से बेहतरीन गेम प्ले यूके ने दिखाया है, और होप्स अपने फैंस के लिए अभी भी बरकरार। अबे ये क्या है? ट्रांसलूसेंट टर्रेट और ये राइफल रैक्सियल इस तरीके से यूज हो रहा है अभी कॉम्पिटिटिव सर्किट में। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट तो मैं ये पहले दिन पे अलग टेक्सचर नाम क्यों पढ़ा था मैंने? ये A32 आजकल हो रहा है। 762 में हम हमेशा देखते थे कि AK या फिर M762 बैरल ही यूज होता है। हाँ आज इन लोगों ने ये किया है, ये लोग रैक्सियल को खिला रहे हैं। कंट्रोल है, जो रिकॉइल पैटर्न है उससे ज्यादा काफी ज्यादा इंस्टेड ऑफ टोरेटो। आई थिंक आई डोंट नो कौन बेंच किया है, मैंने नाम नहीं देखा। दिक्कत नहीं होती है। एंड साथ ही साथ रेंज पे हो, स्पेशली क्लोज टू मिड रेंज पे, तो क्लोज टू क्लोज मिड रेंज पे ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। मिड रेंज पे हाँ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी इस गन का जो रेट ऑफ, पर ये 2 प्लेयर्स का बहुत क्रेजी देखा मैंने गन प्ले। ये हनी बैजर यूके वाला, और वो H1 कल किया था 1v4 ही कर दिया था, ऑलमोस्ट 1v3 तो कर रहा था। यूएस वाला प्लेयर, 12 ऑस्ट्रेलिया के पास, दोनों का गन प्ले बहुत बढ़िया लगा था। मतलब क्लोज कॉम्बैट में बहुत अच्छा मार रहे हैं ये लोग। उनके पास अभी कौन चल रहा है जो कंटेंडर्स की हम बात कर रहे थे,
जर्मनी, रुक जाओ, वियतनाम। देखना पड़ेगा। के पास तो बस 3 ही पॉइंट्स कल तो दिखाए थे इन्होंने स्टार्टिंग में। हाँ अभी दिखाए होंगे स्टार्टिंग में। दिखाया होगा या वही देख रहा हूं। ये रहा, ये किंगडम इज रहा। बैक। जिस प्रकार से वो खेले हैं, फोकस पॉइंट की 3 अंक को लेके गए वियतनाम बहुत पहले। साउथ कोरिया की बात करें, अंक उनके पास नहीं, और ये जो शुरुआती टीम ये चल रहा है, आई थिंक यहाँ पे दिखाया है। देख रहा हूं इस प्रकार से साउथ कोरिया का फोकस पॉइंट की प्लेयर यही ना? नहीं, ये की प्लेयर है। टॉप पे ये क्या है? PNC 2023 2 times मॉम। मॉम 2 बार मम्मी बनाई है। क्या सीन है भाई इसका? करती हुई जा रही है उसका। मॉम का मतलब क्या हुआ? है अगर मेरे के खेल मम्मी है और क्या? वाह, अच्छा बहुत ठीक भाई। भाई कास्टर्स अपने ही पॉइंट्स बटोर रहे हैं यहाँ पे। वो दिखाया तो होगा कहीं ना कहीं। करना है। मैन ऑफ द मैच ब्रो, मैन ऑफ द मैच। क्या मम्मी मम्मी लगा रखा है? कल हाँ बताओ। क्या मम्मी मम्मी लगा रखा है? हाँ जी हाँ, सारी जो मैन ऑफ द मैच होता है गवारो। उस दिन के बाद खेला तूने CS2? हाँ ऑफ कोर्स मैं खेलता हूँ भाई। झलक दिखाया उन्होंने कब कि खेला भाई? हाँ वो स्ट्रीम क्या तो नहीं कर किया। सकते हैं। उन्होंने किल नंबर जरूर निकाले थे। 11 किल्स का एक चिकनर नहीं था, आई थिंक वो थर्ड अब ऑफ एलिमिनेशन स्ट्रीम था ग्राइंड उनका। कर रहे हो तो उसके बात बाद अलग आज है Day भाई। 3 में आके it was हमको तो really नहीं well, मिला है, but ठीक है, ये देख अर्जेंटीना लिया, हमको तो अभी नहीं 99 10 पॉइंट्स का डिफरेंस साउथ कोरिया के साथ एंड यूनाइटेड कोरिया किंगडम स्टिल लीडिंग 86 यूके पे आज 86 पॉइंट्स के भाई, ऊपर नहीं आती हुई। दिखाया भाई इन्होंने। कितना 14 देख रहा इधर हूँ, नौ नहीं दिखाया, दो टॉप और प्लेयर नहीं matches दिखाया। हैं। आई थिंक That's all they need। इनके और साउथ कोरिया के दो शुगर बड़ी मम्मी। teams, वो सीधा टेबल टॉप पे चले जाएंगे। देखिए जिस हेडर प्रकार कब से मॉम यूनाइटेड बनेगा? किंगडम से खेले, ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ से और भी मुझे टीम तो से मॉम बनना comeback है। कर सकती है। नेवर नो कि अगर इतना बड़ा मुकाबला भाई, अगर कोई और भी टीम मॉम निकाल बनते हैं करके ले हमारे जाए, land अभी भी बहुत सारे चेंजेस हमें ओवरऑल स्टैंडिंग्स में देखने को मिल सकते भाई हैं। कुछ नहीं भाई, $5,000 लेके आ रहे हैं हमारे बॉयज। लीड थी अभी वो हमें पहले पायदान पे देखने को $5,000 रिटर्न लेके आ रहे हैं बॉयज। एक 1,000 सब में बढ़ गया, हो गया, simple। 83,000 रुपीज पर पर्सन लेके आ रहे हैं फिर भी। 40% टैक्स कौन काटेगा दोस्त? 30% वैसे ना 30 समथिंग नॉट। हाँ 30% 30% होता है। 35 और समथिंग है। रुको 30% होता है। 30 32 अबे पर तुम वो नहीं जोड़ रहे हो भाई, इट्स इंटरनेशनल प्राइज मनी। के बाद जैसे उन्होंने देखा कुछ और भी फ्लिक हमें मेरा था इंटरनेशनल कितना आया था उसका कट? इनिशिएट होने के बाद वो सीधा सेंटर कटा था कुछ, लाइक कटा था कुछ तो कटा था। अगर इंडियन है तो 34 30 है। उनका एलिमिनेशन जो है 34 30 से ज्यादा है, इतना मुझे कंफर्म इज इट 34 गाइस? टॉप 7 पे आए थे। जो भी है जर्मनी वापस से अपने पुराने प्ले स्टाइल 30 और 40 के बीच में। मुझे 32 लग रहा है। अभी तक हमने देखा है कि जर्मनी 34 है भाई, 34 है। न्यू मैप टीज देखो, नया मैप टीज बट ये कब आया? कब हुआ बे? PNC पोस्ट नेट क्लैरिटी नया मैप टीज हुआ क्या? पता नहीं यार। इसका तो अनरियल भाई इंजन 5 17 किल। अपडेट आने वाला था। 17 कहाँ भेजा है? भेजा है क्या? वो भेजा है। तो भाई कल ये फर्स्ट डे पे ना जो टॉप 4 की टीम्स का दिखाया था यूटिलिटी, हाँ तो इंडिया का भी दिखाया था क्योंकि इंडिया टॉप 4 में थी ना फर्स्ट डे पे। टॉप 4 मतलब फिनिश किया था। तो इंडिया में नीड्स नहीं, फ्लैशेस नहीं, कुछ नहीं यूज किया, सिर्फ स्मोक्स यूज किए थे 12 नहीं सॉरी 16 स्मोक्स यूज किए थे कुछ। अच्छा मतलब टीम इंडिया सिर्फ स्मोक्स यूज करके खेल रही थी, ये दिख रहा था। बाकी सारी टीम्स ने फ्लैशेस नेट सब यूज किए थे। के साथ-साथ वियतनाम, हमें पता है वियतनाम का आई थिंक गेम का इनिशिएशन जो होता है वो टेगो आने के बाद ही होता है। वियतनाम वहां से ही अपने लॉस के बाद भी इतनी खुशी भाई। रहेगा कि वो क्या आज 80,000 कमा के निकल रहे हैं सारे पर पर्सन। नंबर्स अपने नाम लेके आएंगे because खुशी क्यों नहीं होगी उन्हें? आज because उनका पूरा गेम ही किल बेस्ड है। आप सोचिए वियतनाम के पास आई थिंक 70 के आसपास अभी किल पॉइंट्स है। तो अगर फ्लाइट टिकट का खर्चा वापस ले रहे हैं। अबे फ्लाइट टिकट उनको स्पॉन्सर्ड होती है। आपके टोटल पॉइंट्स कितना 79 फ्लाइट टिकट, स्टे, खाना पीना सब स्पॉन्सर्ड होता है PNC के थ्रू। फेज 1 से फाइट लेना पड़ेगा। लेकिन मैं एक और चीज के लिए जरूर एक्साइटेड द सिटी ऑफ ग्लोरी। आज क्या तू टैग करना, रिप्लाई करेंगे। कमिंग सून। लेकिन जरूर देखा मैच जो है रुको दिखा रहा टीम सिलेक्शन किस तरीके से हुआ? क्वालिफायर से हुआ था। इंडिया में आई थिंक 50-60 टीम्स थी। हूं। डीएम किया मैंने, डीएम किया देखो। क्या डीएम किया? नया मैप का टीजर। अर्जेंटीना भाई मेरे नहीं देखना यार, अब हमारे साथ भाई? जुड़ते हुए नजर आएंगे ओशन हम सीधा ये क्या खेलेंगे। HydraFlick को मैंने मैसेज भेजा, योर मैसेज कुड नॉट बी डिलीवर्ड, दिस इज यू डोंट शेयर अ सर्वर विद द रिसिपिएंट। वैल्यूज को ऐड कर क्या? पाएंगे। हाँ कैसे हो सकता है ये? अगर बात करें इस पर्टिकुलर पता नहीं भाई, तुम्हारा अभी तो सर्वर है, बैठ के मेरा हम- सर्वर है। वही तो एक सर्वर में तो बैठे हैं हम लोग। फ्लाइट बॉट फिर से किया, नहीं हो रहा भाई, मैसेज नहीं जा रहा। ओके इंडिया स्टिल लैंडिंग सेम स्पॉट, लॉस लियोनिस ले रहे हैं। ये इनका बेसिक स्पॉट है, सलमान खिलाता है वहीं पे। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए, एक्सेप्ट करो। हेडफोन पहले संभाल लीजिए आराम से वक्त लेके। हाँ। जी कैसे हैं आप? मैं काफी अभी फिलहाल इनका जोन देखने दो मुझे। इस तरीके से अभी यूनाइटेड किंगडम ने अपने लिए नंबर्स Oh, बटोरे nice. किल पॉइंट्स के अंदर।
वो बहुत ज्यादा बेहतरीन था। वो ये दर्शाता है, है मैच चालू हो गया ना, देखो ना, हाँ, लैंडिंग हो रही है चलो, भाई। उधर या गॉट इट। अगेन लॉस नहीं जोन आया नहीं अभी तक, लैंड जोन आया करा नहीं दे, है। लैंड करा दे भाई। वियतनाम को देखो क्या स्प्लिट खेल रही है। यप, ऐसे तो नहीं कि भाई हमारे ऊपर पेलने भाई के लिए उनको स्पिरिट खेल पता रहे है भाई यहाँ का फ्रैग उनको लेना है पता है, इनका हाँ। क्या। वही है, यार मतलब ये वही लोग तो रोटेट करेंगे, इनको पकड़ो भाई, इनको पकड़ो। कर चुके हैं खिलाड़ी और अब धीरे धीरे आगे जाएंगे जरूर। हाँ, आज क्वालिटी बहुत लो लग रही है YouTube पे। देखने को मिल रही है क्या सर्कल वापस से उनको फेवर करता स्ट्रीम हुआ की नजर क्वालिटी आएगा? वो भी एक देखने वाली बात। और यूनाइटेड मतलब ये किंगडम इन का लोग की गेमप्ले भी काफी मजेदार भाई रहा है। जिस YouTube प्रकार पे अगर से स्ट्रीम कर रहे हो वो तो अपनी you rotation listen to देते हैं। 2K bro, 2K is the benchmark। भाई ये 1080p कर रहे हैं। टीम से पिछले अरे मुकाबले में 6 किल तो उन्होंने 1080p निकाले, कर रहे हैं, लेकिन but करना तो सर्कल 2K की अगर हम बात करें to be honest। पूरी I think वो lag हो रहा था ना, इस इसलिए part कर रहे of the होंगे map को 1080p। फेवर करता हुआ ऑस्ट्रेलिया, ओ, zone देखो बे, पर इनका rotation हो सकता है। जर्मनी उनके देखो, पास south भी काफी rotation अच्छे लेंगे मेरे areas हिसाब से। रहने वाले हैं। रोटेशन तो हो सकता है भाई, ये जर्मनी बट सब अभी लोग भी सोचेंगे कि ये लोग पांचवें ज्यादातर मैदान आउट में रोटेशन देखने को लेंगे, मिल रही स्पेशली है। वियतनाम यूनाइटेड किंगडम 4 का किल लेने के लिए एक बैठेंगे तो भाई काफी दिक्कत बड़ी अरे हो देख रहे कोरिया निकल रहा है ऑलरेडी। बट अब यहाँ से कोरिया वही दिख रहा है rotation पे निकल रहा है। टीम्स हैं जिनको अर्ली लूट अच्छा, अभी कंप्लीट देखा। करके रोटेशन हाँ, they are already in the car, bro. इस पहले प्ले जोन से बाहर एग्जैक्टली They're already in the car, they're Already in the rotating। car। इस पूरी प्रणाली का, इस पूरे सीधा श्रृंखला वहीं का निकल ये गया। आखिरी लूट मिरामार। दिखाओ भाइयों पे। इसके बाद हमें मिरामार देखने को नहीं मिलेगा। लूट तो क्या है है? नहीं कुछ है, नहीं वो है। लोग पहले ही चले जा रहा है, चुम्मा टूर्नामेंट्स उनका में नहीं देखने को है। मिलेगा। और उसी के साथ साथ वो नए मैप का टीजर देख करके भी काफी ज्यादा मजा आया, जिस प्रकार से हमने देखा। स्पेकुलेशंस हैं, मार्च के समय से बनना शुरू हुआ था एक मैप, उसकी कॉन्वर्सेशन तुमने कभी शुरू LGS हुई के थी स्ट्रीम PUBG देखी के है? अंदर। और अभी तक नहीं। कहीं ना हाँ? कहीं हमें देखने को LGS मिला की 10वां मैप इस नहीं। पूरे गेम का। तो LGS तो में ऐसा काफी होता है, ज्यादा मजा भी आएगा। कोड नेम टूर्नामेंट नियॉन के है मेरे ख्याल हर से, प्लेयर का जहां पर्सपेक्टिव देख सकते तक हो। मुझे पता है। ओह, ओह, क्या है आप कहाँ पे? मतलब यूट्यूब हाँ पे? तो उनका नहीं, ट्विच पे क्या है, उनका प्लगइन होता है। वो प्लगइन से आप क्लिक करोगे और हर एक टीम, अभी के लिए वापस इस गेम की तरफ को हाँ, आते हैं। चारों का ऐसा ज्यादा split समय screen हो ढाई जाएगा ना। मिनट ज्यादा का समय पड़ा हुआ है, लेकिन सैंडस्टॉर्म टीम का आना शुरू हो उसमें चुका हर है। टीम का एक अलग हर टीम का कौन सा बंदे का पीओवी रहेगा? कोई भी एक बंदे का वो पीओवी चेंज ऐसा होता रहता है, वो चेंज होता हाँ, है। समझ गया। हाँ, तो that's nice ना, वो तो और इधर भी होता है। उनके इन गेम डिस्कॉर्ड, इन गेम कॉल्स भी सुन सकते हो तुम। ओह, नहीं, वो नहीं होना चाहिए। वो नहीं होना चाहिए, हाँ। Why? अपने How they play, you can watch people play, but you should not be hearing how they are doing it. कदम रख रहे हैं, उनको ये पता है कि ऐसा क्यों? स्काउटिंग करने के Why? लिए पहले देखना पड़ेगा। वही अरे उनका अपने स्ट्रेटजी है। That's स्ट्रैटेजी what they रिवील have होता है done. ऊपर से। ऊपर से मैं तो बोल रहा हूँ, आज इंडिया बोल रहा है, आज सलमान बोल रहा होगा फ्राइडे है, फुदिया फाड़ो, पैचो मारो करके, वो भी रिकॉर्ड हो गया तो सारी चीजें वहां तो एपेक्स में तो ब्रॉडकास्ट होता है भाई। अब वो लोग की बात अलग है कि क्या बोल रहे हैं, रिकॉर्ड हो गया तो भाई तो अपना सीन हो जाएगा। रखना है तो फिर कंसिस्टेंट भाई, उनको दोबारा से वो होना लोग भी तो पड़ेगा। कर ही रहे बट हैं। हाँ, आप आए हैं तो आपसे प्रेडिक्शन भी ले ही लिया जाए। आपको क्या लगता मजा है आता है वो कि कौन देखने सी में। टीम आपको लाइक लगती अपने है? मजा तो आता है। अभी Click click winning में है, PUBG PUBG सुनने में मजा आता है कि वो लोग कैसा, चाहेंगे कितना, कि कौन सी माफ पोजीशन करो में भाई, कितना मेरा कंपोज गेम है, काम है। माफ करो मुझे। आधी से सुनने में ज्यादा मजा टीम आता का तुमको समझ नहीं आएगा क्योंकि दे डोंट स्पीक। I'm not a good player anymore, माफ करो। कोई आप साउथ बोल एशियन सकते है, हैं वो होम तुमको ग्राउंड समझ नहीं आएगा। एडवांटेज एक तरीके से अच्छा खासा बना हुआ है। परंतु अर्जेंटीना एक ऐसी टीम रही जो बार-बार समय दर समय एक अच्छा गेम प्ले दिखाती रही है, और यही इस चीज की काफी अच्छी निशानी है कि ये खुद को टॉप 3 में रखे हैं। क्वेश्चन भाई फुल लेकिन मेरे हिंदी विचार में इस समय अच्छी इस वाली। गेम की बात करें अब ज्यादा हो रहा है, ब्रह्मास्त्र थोड़ा ज्यादा हो रहा है। बहुत मुश्किल है, एक अच्छा गेम आपको अबे मेरे को नहीं ये समझ क्या में करता है? आएगा। Sandstorm क्या करता है? बिल्कुल, और वो चीज सैंडस्टॉर्म विजन कट करता है, डैमेज देता है। मैदान और किसी का सगा damage हुआ भी? नहीं है। बहुत हाँ, सारी अगर It's in डीप the तुम center. उसकी सेंटर में है तो तुम्हारा सांस नहीं ले सकता, थोड़ा फेफड़ा जो है उसके अंदर सांस घुस जाएगा तो थोड़ा डैमेज दे देंगे हाँ, तुम्हें। और तुम्हारा तो तुम्हें जल्दी स्कोप में बाहर भी आना पड़ेगा। स्कोप में भी डस्ट जम जाएगा, सो तुम एडीएस करोगे तो बहुत विजन कट होगा उसमें भी। वही दिक्कतें डाल रहा है। और अभी हाँ, वो डिटेल अच्छा डाला इन लोगों ने। भाई कल ये खेल देख रहा रहे था हो, मैं। ये स्टार वॉर्स जैसा लगता है। ये देख रहे हो, बुलेट जो जाती है रेड कलर की, हाँ। ब्लू कलर की। काफी ज्यादा सही हाँ, ये अच्छी लगती है, Exactly. स्पेक्टेट में मजा आता है देखने में। हाँ। जब बहुत भसड़ चल रही होती है तब तो क्रेजी हो जाता है। तब भाई ऐसे भट 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 ऐसे निकल रही होती गोलियां। आसमान चलाते हुए देखो ना, आसमान जो चलाते हैं। वो कहीं ना कहीं ये कम देखो, हाँ, ये देखो, 2-3 टीम से एक साथ आसमान चलाते हैं में आसमान। चला रहे हैं। देखो देखो, पैराशूट इस मार रहे समय हैं। चाइना तो भाई तुम बहुत आगे हो रहे हैं और Oh उनकी shit. गाड़ी 2 पहियों पर, लेकिन भाई, अब भाई, जाकर भाई, के भाई, वो भाई, खुद को भाई, सेफ हर रखना तरफ से चाहेंगे। गोलियां आ कल रही के है, दिन चाइना bro। के साथ मल्टीपल टाइम्स हुआ था कि वो भाई, फाइट्स के कौन सी अंदर ले ली खुद को रख रहे थे, जर्मनी लेकिन ने? दिक्कत देखो। आ रही Then I थी। accept you as a gamer. आज उसको बदलना पड़ेगा और ओ इमरजेंसी भाई, रेड Try एचपी Sekiro. I've already played Sekiro on stream, bro. बच गया वो। Tingleton था भाई। ऊपर आ रहे खिलाड़ी पैराशूट से आसमान की ऊंचाइयां भाई नापते कोई हुए। दूर से थूक दो मर जाएगा ये।
लेकिन चलिए लैंड बट रेस हो जाएगा ना, पकड़े गए भाई रेस क्या गिर के मर जाएगा वो। ज्यादा है इनफैक्ट माइका के ऊपर मात्र 2 एचपी पे वो सरवाइव कर रहे हैं। अगर तुम मिड एयर मरते हो तो तुम जमीन पे गिर के मर जाओगे। खिलाड़ी देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ से नीचे कैसे जाएंगे? इन लोगों के पास और एक है क्या ये? इन लोगों ने कोई गाड़ी नहीं लिया, सीधा ऊपर आया है। पूरी गाड़ी भी गंदी होगी भाई। अगर शायद मैं म्यूटेड था अभी तक। सर्कल के अंदर नहीं रहा फिर दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ेंगी, बट हाइट को एडवांटेज से आप कम से कम बेहतर तरीके से। मेरा अभी आवाज आ रहा है ना? ये पक्का मिनी मैप देके चला रहा हूं, वो भी गंदा है। वो ऑक्यूपाइड पाजी उसके अकॉर्डिंग आप अपने आगे का गेम प्लान वगैरह बना सकते हैं। हेलो पता है कि जर्मनी के सारे प्लेयर्स एक साथ नहीं गए। कोवो हेलो पाजी, मेरा आवाज आ रहा है? हां आ रहा है, बोलो। ओके थैंक यू। इन अ वे सैंडस्टॉर्म का सहारा लेकर के इन अ वे जाते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं मैं बस देख रहा था कि मेरा कैप्स लॉक जब ऑन होता है तब माइक ऑन है या ऑफ होता है तब माइक ऑन है। ऑन होता है तब माइक ऑन है। भाई तुम भी ले लो मेरी तरह स्ट्रीम डेक पेडल। आपकी बात है कभी-कभी काफी हाँ 40,000 भेज देना मुझे। ओ लोडू 15,000 का है। काश आप समझ पाते। हाँ तो 15,000 भेज देना लोडू। ठीक भाई लेकिन समय अगर बात करी जाए तो तुर्की की तरफ से कोडमार को शॉट्स लेने की कोशिश अभी भी करते हुए। यार स्ट्रीम इज डिलेड। अरे ठीक है यार देख लो ना डिले में 5 सेकंड में कौन सा तुम थाईलैंड की अगर बात इंडिया को जीतता हुआ देख लोगे करते हैं, लेकिन 5 सेकंड लेट देखोगे मरते हुए तो दिल को सुकून भी मिलेगा कि अरे थोड़ा सा 5 सेकंड ज्यादा लेट मरे हाइड्रा की स्ट्रीम पे एटलीस्ट। वहां तो जल्दी दुखा गया था यार, लेट दुखा रहा। इजंट दैट गुड? यूके की अगर बात करी जाए तो अभी सड़क के सहारे खिलाड़ी अपनी गाड़ियां भगाते नजर जरूर आ रहे हैं। जोन के अंदर है नहीं टिक्की भाई, अब ज्यादा हो रहा है तुमसे। रोटेशन ये पूरे दक्षिणी भाग से इस पूरे मैप पे देते हुए नजर आएंगे, लेकिन इसी में इनकी पुश टॉक हाइड्रा। अरे पुश टॉक मेरा फिर माउस हिलाना पड़ता है मेरे को। इंडिया की राइवलरी बड़ी और मेरे को इतना नहीं पसंद हिलाना देख चुका हूं बार बार। भाई भाई स्प्रेस ट्रांसल्यूटर फेल दो, ट्रांसल्यूटर फेल दो हैं। ल्यूक मौजूद और अरे इंडिया भाई इस बार फेल दो भाई, थोड़े बेहतर नजर आ रहे हैं। अरे फेल दो भाई। कम ऑन ट्रांसल्यूशन, कम ऑन यूनाइटेड किंगडम कम ऑन। नया कुछ दिख रहा है मुझे यार, मुझे कुछ नया दिख रहा है इंडिया में अभी। पर एक फाइट होने की संभावना है। बट ये कर क्या रहे हैं? कि क्या टीम इंडिया अपनी प्रेजेंस यहां ये पर कर क्या रहे हैं? ट्रांसल्यूसेंट वो आगे मौजूद जरूर देख रहे हैं। वो इस रोटेशन को होते हुए स्पॉट किया प्लेयर को। फाइनली उन्होंने कुछ स्पेस देने की कोशिश की। सेंसी बढ़ाओ, सेंसी बढ़ाओ। बिल्कुल भी डैमेज HydraFlick से सीखो, सेंसी बढ़ाओ भाई। एचपी का एक डैमेज आया। माउस घुमाते घुमाते गाड़ी निकल गई तुम्हारी। भाई वहां पर सोचिए क्योंकि खिलाड़ी तो नीचे जा चुके थे, ट्रैकिंग डैमेज कहीं और से पड़ा है। यार तो और ज्यादा 2 प्लेयर खेल रहे थे ना इधर अंदर। 3 थे दो प्लेयर, 3 प्लेयर्स रोड को गार्ड कर रहे हैं। भाई वो देखो लियो की गाड़ी और बैंच 2 गाड़ियां निकल गई। यूनाइटेड एक पहली गाड़ी को तो आने दिया, गोली भी नहीं चलाई। बहुत एक गोली नहीं लगी। काफी बढ़िया रोटेशन है। इनफैक्ट टीम इंडिया की अरे ये लियो का तो बहुत बुरा लग रहा है। दूसरे खिलाड़ी जिन्होंने वो डैमेज दिया पलटी दे रहे गाड़ी। स्क्वाड अरे वो देखो भाई, देखो हम अकेले नहीं है जिनकी गाड़ियां पलटती है, ठीक है। हां चलो साथ ट्रैवल करवाना उतना बेहतर कियानो आसान रहता नहीं है। अपने टीममेट जापान का प्लेयर फुल पीक दे रहा था भाई अपनी। हेडर भाई आप चले जाते यार। भाई नहीं भाई, मैं तो जाता और बुरा होता सीन। तो अच्छा तुम ये देख पा रहे हो, मैं जाता तो तुम रो देते भाई। वहां पे डाउन किया जाएगा जो के लिए वो कंफर्म 3 किया बंदे जाएगा। अगर लिटरली स्प्रे कर रहे होते ना, सिंक कर ले हेडर कर रहा हूं भाई। और कर रहा हूं, शायद तुम्हें फिर लेट मरते हुए नहीं देखना है। फिर बात करते हैं तो दुगना लगेगा। तुम्हें जल्दी मरते हुए देखना है। घाटे में चला गया। हालांकि इस समय बात करें जापान की तो एक बड़े बवंडर से निकलते हुए, तूफान से निकलते हुए खिलाड़ी अभी के लिए जाते नजर आ रहे हैं। भवंडर इस समय अपने आपको बैंडेज लगा नजर आ रहे हैं। प्रति सेकंड 1 एचपी का डैमेज होता है उस सैंडस्टॉर्म के अंदर। लेकिन बात ये कि अगर आप जोन के बाहर है तो वो 1 का डैमेज 10 का बन जाता है, क्योंकि जोन का डैमेज अलग से आपको खा रहा होता है। हालांकि इसमें बहुत सारी टीम्स ऑलरेडी सर्कल पकड़ चुकी हैं सिवाय यूके हनी बैजर के और टीम इंडिया के खिलाड़ी और डेनमार्क के अलावा। तो बाकी जो टीम में सर्कल में है वो बस आराम से इधर-उधर देखेंगे और फिर अगर इससे ज्यादा भी रोना पॉसिबल है। हां वो भी एक बात है, वो भी एक बात है। थोड़ा और आगे चले जाएं उल्टी दिशा में तो उनका सामना होगा खुली बाहों के साथ वियतनाम के लिए। और वियतनाम इससे ज्यादा रोना पॉसिबल नहीं हो सकता, वो भी तो बात है। ओरिएंटेड गेम प्ले के लिए जाने जाते हैं, वो फाइट्स लेने के लिए बिल्कुल भी कतराते नहीं है। बट ये जो कनाडा का पुश पीछे से आ रहा है, वियतनाम का एक 3-1 का बहुत बड़ा स्प्लिट है और ऐसे में एक खिलाड़ी अकेले पकड़े जा सकते हैं। चलिए व्हीकल सही समय पे हेडर भाई आप जाते टीम इंडिया के तो 8 पॉइंट होते। नहीं भाई हम 35 पॉइंट्स लेके आए थे थाईलैंड में, नॉर्थ वेस्टर्न शिफ्ट है वो भी कम गेम्स में। थाईलैंड बिल्कुल सेंटर में और थाईलैंड के जोन हमने 35 पॉइंट स्कोर किए थे गाइस थाईलैंड में, याद करो। की बात करें तो उनकी मुश्किलें याद बढ़ करो सकती हैं क्योंकि वो 3-1 का एक बहुत बड़ा स्प्लिट है। और जितना मेरा कैलकुलेशन चलता है के बीच में थाईलैंड के 4 11 से खिलाड़ी बेटर अब आ चुके हैं। यूनाइटेड किंगडम कम से कम उनको ज्यादा मुश्किलें होंगी नहीं, बट अब ये स्टेज है जहाँ पे फाइट्स की पर अब तो भाई अब अगर हाँ आया और जाए ना दिक्कतें आई नहीं सर्कल के अंदर। बट रक्सियाल को उन्होंने तो गोली HydraFlick भाई वहां से कोचिंग करेंगे हैदराबादी हाइड्रास की। एक दूसरे को क्रॉस मूवमेंट के अंदर गाड़ियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और मैं वहां पे ब्लॉग बना रहा हूँ। और वहीं दूसरी तरफ बात करें जर्मनी
ओके ब्लॉग तो छोड़ दो, की तरफ से लाइव स्ट्रीम करूंगा मैं वहां से, टीम अप हो रहा है यहाँ पे। वॉच पार्टी Iconics। सीधा मरूंगा जाके, फिर बाजू वाले पीछे में जाके ठीक है, वॉच माइका पार्टी ने- चालू कर दूंगा। तो ब्राजील को आप कोरिया देखिए PNC वॉच पार्टी, लेट्स गो सपोर्टिंग माइका ने इंडिया। मुक्का मार के क्यों मारा इसको? पेंचोद खेलने जाना है। लेकिन ये वो दौर है, मुझे लगता है ये वो सर्कल है जर्मनी का ही बंदे को किल फीड में है। अप्रोच इन द सेंस उनको एक अच्छा घर ढूंढने की वो कोशिश कर रहे फटी, हैं, फटी, लेकिन फटी, ऐसे में अगर दो खिलाड़ी बार पकड़े गए तो गए। मुश्किलात बहुत ज्यादा हो जाएगी। कोरिया और के साउथ शो कोरिया भाई ये को जानती फिर है गए। कैसे अपने प्रतिद्वंदियों का देख रहे हो कहीं ना कहीं घुटन का सामना करवाया जाए और एक किल और अपने लिए बना सकते क्या लगता है, क्या जरूरत थी इम्प्लीमेंटेशन अभी करना साउथ चाहिए कोरिया टीम की इंडिया तरफ को बात अब करें। इस उतना ज्यादा बड़ा टाइम difference शो बोल रहा था, फाइनल सेफ डे। गाड़ी के पीछे सेफ में। उनको भी पता है थोड़ा कि अग्रेसिव थोड़ा जाना और चाहिए, step up थोड़ा करना है, खुल के अगर वो खेलना लेके चाहिए चलेंगे, भाई। ये लोग आखिरी डे के 1 से मैचेस खुल में के नहीं क्या खेल हुआ रहे है, ना कोई नहीं जानता। टीम भाई। बहुत ही गाड़ियां रास्ते में से unpredictable निकल रही, तरीके से कॉन्फिडेंस वो कहाँ है अपने भाई टीम drop में? clashes है, वो भाई लेके लास्ट डे, बहुत सारी व्हाट डू यू जो हैव, different क्या type है of तुम्हारे games पास शायद खोने वो के लिए देखने को अभी? मिलता है, क्योंकि आप और अभी भी देखिए पेंचो कि कुछ teams होंगी पिंक हो गया। जो यहाँ से सोच रही होंगी कि खोने हाँ, के अभी लिए वो क्या है? पहले उठो बाजार जा मारो, सकते हैं, और बाहर जा निकलो, सकते हैं, फक लेकिन इट यार, पर आखिरी थोड़ा के दो मैचेस में बॉल्स शायद वाला देखने गेम को प्ले ना मिले। दिखाओ। टीम इंडिया एक बार फिर से सलमान दिक्कतें मैंने उनकी मारा। बढ़ती हुई, एडम को। ट्रांसल्यूसेंट, अनफॉरगिवन और एक्चुअल तीनों ही यहाँ पर भाई। डाउन किए जाएंगे। ओए। और अब पहली स्क्वाड जो एलिमिनेट होगी इस लॉबी से वो बन अब दो टीम के बीच में कैसे फंस गए? कुल मिलाकर के 14 मुकाबले खेले हैं ओशन और 14 अंक भी नहीं हैं उनके। बिल्कुल 1 पॉइंट पर मैच का एवरेज अभी तक भी नहीं ये बन मुझे पाया। वापस देखना हो तो कैसे तो देखूं? कहीं ना कहीं सीन क्या हुआ? इस समय अगर बोला जाए जो एक्सपेक्टेशंस रखी गई थी तो अरे डिफरेंट टाइप ऑफ भैया। गेम्स हुआ क्या यहाँ पे? मिलता है, क्योंकि आप अभी भी देखिए कि कुछ टीम्स होंगी हुआ जो क्या? यहाँ से सोच रही होंगी कि हाँ अभी हनी भी वो बाजर पहले कहाँ से बार- घुसा How पहली is बार? that we are the first team getting almost eliminated? ब्रो सर्कल जा लेने So में इतना India rotation just में इतना India time just लग गया। slammed ये वाले Already बैठे कंपाउंड हैं पे। सब भाई, गाड़ी लेके आए, बूम बाम स्प्रे डाउन खत्म। ये लोग गाड़ी लेके गए इस कंपाउंड पे। कनाडा ऑलरेडी ऊपर से बैठा हुआ था, हनी बैजर अंदर बैठा हुआ था। कनाडा हनी बैजर के लिए बेसिकली स्काउट कर रहा था कि ये अंदर है, इसको मारेंगे। बट इंडिया फ्री में आया और 3-4 देके चला गया। आई थिंक क्या सीन था दो ये? मैचेस में शायद देखने को ना मिले, बट टीम इंडिया एक बार फिर से दिक्कतें उनकी बढ़ती हुई। बट फिर सलमान कहाँ से आया? सलमान पीछे से कैसे आया? डाउन किए जाएंगे और अब जा रहा है भाई टीम इंडिया। अरे दैया रे दैया, मोरे भैया। अच्छा इसलिए इसको नॉक किया था ब्रो, ब्रैक्सी को। ओके फंस गया है भाई ये तो। पहली फंस गया है squad इसलिए। जो एलिमिनेट होगी अभी lobby से, सिचुएशन देखनी है मुझे, वो बनती है क्या टीम हुआ क्या? इंडिया। कहाँ दिक्कत हुई? स्काउटिंग में दिक्कत हुई? सलमान वहां पे कैसे खड़ा है? तभी 3 मैं लोग सोचूं वहां पे। वहाँ ऊपर उसकी 1 HP कैसे हो गई? मुझे देखना है क्या वशिष्ठ क्या- जरूर क्या- बहुत क्या- ढंग जाओ से कर बाबा रहा है। ऊपर भाई। हमारी चलिए, अरे ध्यान से लेट जाइए ऊपर। अरे देखिए ऊपर एक बार, हेलो भाई हाथ दो। They are not serious about winning, bro. They are cashing in that बाद में 80,000 सब prize शुरू हो money per जाएंगे, लेकिन person, अभी के bro. लिए कनाडा के खिलाड़ी वापस से Bringing fight करेंगे, economy to क्योंकि हनी India. बैजर Let's जिनको go, ये baby. ओरिजिनली देख रहे थे जब टीम इंडिया से भिड़ंत हुई, उनको अब जाकर के फाइट के अंदर लेकर के आए। यूनाइटेड किंगडम के बाकी खिलाड़ी मूव आउट करना चाहेंगे, बट कनाडा चारों के चारों खिलाड़ी एक लवा रेडे तो नहीं होगा भाई, वैलो खेलो अभी सच। हाँ भाई वैलो खेलो भाई, सारे वैलो सरकी। खेलो। और वियतनाम ऐसे फाइट्स में थ्राइव कर जाती है, लेकिन वियतनाम पबजी प्लेयर्स में से सिर्फ पबजी पीसी प्लेयर्स में से सिर्फ एक पबजी पीसी प्लेयर है जिससे वैलो हुआ है, वो है वीजी। मतलब दो पबजी पीसी प्लेयर्स है जो रेडिएंट पहुंचे हैं, एक वीजी और एक मैं भाई। एडवांटेज है फाइनली उनके फेवर में, वो अब जाएगा। बाकी कोई शिफ्ट भी नहीं किया है। गोस्टली शिफ्ट किया था, गोस्टली बट बैक एंड फोर्थ जाता रहता कंफ्यूजन में। इस मुकाबले में बेहतर खेलना ही पड़ेगा, वरना वो दूसरा पायदान भी उनसे दूर जाता हुआ नजर आ सकता है। मैच बचते हैं, बट आई डाउट और कोई है जो रेडिएंट पहुंचा है वो टॉप ज्यादा रैंक पे देर तक यहाँ पे survive वैलोरेंट करना में पाए, पबजी क्योंकि पीसी already से। उनकी पोजीशन पता है थाईलैंड के डेथरिल प्लेयर्स को। ट्राई कर रहा था क्या? ग्रेनेड वहां पे कुछ आइडिया है दिया तुम्हें और जाएगा, किसी उसी के प्लेयर साथ का? एलिमिनेशन वियतनाम का दूसरा पायदान उनके पास मौजूद था। हटो भाई, अब मजाक नहीं रहा। पायदान पे अब तो मजाक बन चुका है। अब तो मजाक बन चुका है कि वो राइज अप कर सके। अर्जेंटीना ऊपर जा सकती है, डेनमार्क ऊपर जा सकती है, जर्मनी ऊपर जा सकती है। काफी सही बात आपने करी, लेकिन उनके सामने खिलाड़ी रहेंगे, फाइट्स रहेंगी। यूनाइटेड किंगडम का भी इस लॉबी से बाहर जाना तय हुआ जब उन्हें एलिमिनेट किया कनाडा के फिना ने एक बहुत फाइन गेम प्ले के साथ। चाइनीज ताइपे खिलाड़ी थोड़े लोअर ग्राउंड पर, और मैं पानी क्या पी रही, क्या इंडिया एलिमिनेट हो गई जा रही है। चक्रव्यूह में फंसाने की भाई अब मजाक हो गया है। पहले तो मैं वहां जा रहा था, मैं तो पहले बहुत सपोर्ट में था। लेकिन ब्राजील का क्या हुआ? थोड़ा बहुत बीच बीच में से ट्रोलिंग चलता है यार, इट्स कंटेंट, इट्स फन। थोड़ा मजाक हो गया भाई, 11 गिल पे बैठे हैं। फॉरेक्स का यूसेज ज्यादा दिख रहा है लोग का, मतलब 2-3 लोगों का मैंने स्प्रे देखा हूं नहीं, फॉरेक्स। कल के दिन पे भी नहीं दिखी, और आज के दिन पे तो खैर
वो चीज बिल्कुल ही आंखों से ओझल, बट टाइप और कितने मैचेस है? 4 और दर्दनाक मैचेस है कि आप कोशिश आज जरूर से कर सकते हैं। जर्मनी के पास अभी भी एक मौका है कि वो गेट कीपिंग कर सके, लेकिन इन सबसे दूर साउथ कोरिया वो 3,20,000 कैश एंड अभी भी वो सबसे ज्यादा ऊपर हमें देखने को मिल रहे हैं। 3 किल्स वो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और अगर इस मुकाबले में अर्जेंटीना, डेनमार्क और जर्मनी उतना बेहतर नहीं खेल पाए, साउथ कोरिया के पास एक बहुत बड़ा लीड बनाने का मौका जरूर से रहने वाला है। बट ताइपे सर्कल के अंदर जाने की कोशिश, वहां पे मुश्किलें बहुत ज्यादा उनकी बढ़ाई जा रही है, और जर्मनी वो कोशिश कर रहे हैं गेट कीप करने का, बट लियो वो टेक डाउन will you play Valo? हाँ, I will play Valo, but आज नहीं। आज I'll probably play some other game। आज इसके बाद मैं शायद कोई और गेम खेलूं, सेकिरो में क्यों ट्राई करूं मैं, who knows, देखते हैं आज कुछ और खेलने का मन है मेरा। अगर सही is it possible they gained only 11 points? How is it possible they gained only 11 points in so many matches? It's a difficult stage to play on। तो एटलीस्ट करना चाहेंगे, फुल बूस्टेड बार है, लेकिन अब तो कितना डिफरेंस से लास्ट रहेगा वो कैलकुलेट करो। स्नेकर्स भी किस टीम को हटना पड़ेगा, थोड़ा सेंट्रल है, थोड़ा क्या काफी सेंट्रल, बट थाईलैंड के पास वो डॉट सेंट्रल एरिया। हम कई बार देख रहे हैं कि थाईलैंड वो जोन के बिल्कुल सेंटर में रहते हैं, हालांकि क्या इंडिया 20 पॉइंट्स कर पाएगा बड़े मुकाबले वन मैजिकल गेम में भी? क्या उन्होंने स्पॉट नहीं किया प्लेयर भाई इंडिया टीम की जगह आप ही चले जाते लमाओ, एटलीस्ट ब्लॉग बना लेता यार मैं वहां जाके। यूएसए अर्जेंटीना काफी ज्यादा नजदीक, हाँ यार, के ब्रैक्स को वो वहां से निकल भी नहीं पाए। ऐसी परफॉर्मेंस करनी है तो मुझे भेज दो, शिकार वो बनते हुए नजर आएंगे। मैं मजे करके आऊंगा वहां पे। जाने की बारी रहती है, यूएसए अर्जेंटीना जापान तीनों ही टीम से एक दूसरे के बहुत नजदीक। भाई फिर तो किसी को भी भेज दो, कोई भी टीम को भेज दो, नजर आएंगे। क्वालिफायर ही मत करो, वही फैन फेवरेट वाला जो तुम कर रहे थे ना, वोटिंग वाला, वोटिंग करके भेज देते। करना जरूर से चाहेंगे क्योंकि कनाडा की टीम वो सर्कल के अंदर जाने की कोशिश करेगी, और उनके पास मौका है कि नेक्स्ट ईयर जाना भाई। तो हाँ भाई, लेकिन कोरिया के नए स्वाद ट्राई करके आऊंगा मैं। पड़ेगा अपने खिलाड़ी को। चलती गाड़ी से कनाडा का एक खिलाड़ी, स्ट्रीट फूड का पूरा कनाडा के पास मजा लेके आऊंगा मैं भाई, कोरियन नूडल्स का। से पहला जो फिनिश है, पहला जो खत्म हुआ खिलाड़ी, गेम तो सेकेंडरी है, हम तो कोरिया घूमने जाएंगे। लेकिन अब कनाडा के खिलाड़ी अपने आप को एक सेफ जगह पे पाएंगे। ये ग्रेनेड क्या सही है, थोड़ा सा दूर रह गया, लेकिन अभी के लिए एक अच्छा ब्रीदिंग स्पेस है कनाडा के पास। किमची हां भाई, इकलौते खिलाड़ी बचे हैं माइकल जो बहुत पहले ऊपर थे। बीजीएमआई वालों को भेज दो, व्यूज तो आएंगे। बात तो तुम्हारी भी सही है। दरवाजे पे दस्तक है चाइनीज ताइपे की, एक एयूजी के सहारे एक कहानी। बट वर्ल्ड वाइड गेम था, इट्स ओके टीम इंडिया। हां भाई हम ट्रोल तो कर रहे हैं, बट वी आल्सो नो डिफिकल्ट स्टेज है, मैं वही बोल रहा हूं, डिफिकल्ट स्टेज है भाई, वर्ल्ड स्टेज है, एशिया का नहीं है ये कोई, सिर्फ एशिया वाले ही नहीं खेल रहे हैं, पूरे वर्ल्ड के प्लेयर्स हैं। ये तो मैं कल बोल रहा था, पर आज मेरा मजाक करने का मूड हो रहा है क्योंकि मजाक हो रहा है। एक और प्रबल दावेदार वो अब नहीं बोल रहा मैं और कुछ भाई, पायदान पे अब नहीं बोल रहा हूं। 11 टीम्स अभी भी यहाँ पर शेष देखने को मिल रहे हैं। मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ती हुई, लेकिन इन सबसे सबसे ज्यादा खुश अगर कोई टीम होगी तो वो रहने वाली है साउथ कोरिया। उनके पास मैन एडवांटेज है, चारों भाई फिजिक्स, एल फिजिक्स भाई को मिल रहे हैं, 4 किल्स ऑलरेडी निकाल चुके हैं। और अच्छी चीज ये कि सर्कल के अंदर कपड़े की तार टूट जानी चाहिए, हमें देखने को मिल रहे हैं, टूट जानी चाहिए वो। आना पड़ेगा यहाँ से निकलने की, स्नीक आउट करने की कोशिश। वो एक तार की वजह से पूरा टीम वहां पर गिर गया, काफी देर तक बाहर थे सर्कल के, लेकिन वो व्हीकल बर्स्ट होगा और देखते ही बताओ भाई यूएसए गरियारी होगी भाई, एक कपड़े की तार ने हमारी खंड फाड़ दी। किक स्टार्ट बचे खिलाड़ी 75 एचपी उनके पास, उनको स्पॉट किया जा सकता है। चाइनीज ताइपे के लिए मुश्किलें बनाई जा रही हैं साउथ कोरिया के द्वारा। अबे ट्रोल कैसे कर रहा? कोरिया को जितना ज्यादा आप फाइट के अंदर मौका देंगे वो उतना ही मरोड़ते नजर आएंगे, और ये कर भी रहे हैं चाइनीज ताइपे खिलाड़ी। थोड़ा सा बचने की कोशिश हो सकती है, लेकिन निकलेंगे कैसे? भाई दिल पे पत्थर रख के स्माइल करने से अच्छा हंसी लो थोड़ा सा, है ना। साउथ कोरिया का एक खिलाड़ी तो जोन में रह सकता है जो बिल्कुल सदर्न साइड है, अगर जोन अब दुख में रह के क्या फायदा, मजे उड़ाओ। एंड यस एक खिलाड़ी जोन में, मतलब मजे करो भाई। सियोल नेट से आने जा रहा है, अच्छा है साउथ कोरिया नेट डालने जा रहा है, चौथ लावड़े लग जाएगा, 3 किल्ले वहां पे। घर में एक ग्रेनेड चौथ लावड़े लग गया, हो सकता है गया खत्म। Cooking with one. और ये पहली बार थोड़ी ना होगा। He throws it one grenade. Taipei is eliminated just by the nades. रिवाइवल वहां पे देने की कोशिश जरूर से वो कर रहे हैं, लेकिन वो ग्रेनेड और भी ज्यादा प्रिसाइज रहेगा। एक और खिलाड़ी वहां पे टेक डाउन किए जाएंगे।
सोल वो अपनी टीम के एमवीपी और देखते ही देखते चाइनीज टाइपे उनको भी पूरा बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। 3 जाते हैं सोल के पास और साउथ कोरिया अनस्टॉपेबल। ऐसा कुछ इंडिया करते हुए दिखता है ना भाई, बहुत मजा आता है यार। क्यों ना करे ट्रोल ऑफ वो पहुंच जाएंगे क्योंकि खिलाड़ी उनके ऑलरेडी हमें सर्कल के अंदर देखने को मिल रहे हैं। क्या अब वो वक्त आ चुका है कि हम घोषित कर दे कि साउथ कोरिया ही शायद बोलो भाई ये पूरा टूर्नामेंट जीत करके जाने वाले, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग उनके जो बाकी के मोबाइल में तो अपॉर्चुनिटी नहीं है ना भाई। मोबाइल मिल जाएगा, अभी चांस मिल जाएगा गाइस, समझ में आ जाएगा तुम्हें। मुश्किल तो कुछ ज्यादा ही बुरा हाल है देखने को मिल रही है अभी। इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज नहीं है ना मोबाइल में भी। बट इसका आ जाएंगे हुए थे क्या? इंटरनेशनल हाँ अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगे। बीजे जो भी जीतने वाले उन लोग का देख लो। हमसे ऊपर अब कोई नहीं आ सकता क्योंकि आप देखिए 16-17 अंकों का क्वालीफायर हुए थे ना। अबे वही वाला तो क्वालीफायर है जिसमें आ गए तो 10-4 तुम लोग खेले थे 4 कुछ और एक्स्ट्रा। ओ ये वही है, यहीं पे हाँ ये वही है। खिलाड़ी आ रहे हैं फाइट देने के लिए हर चीज के विपरीत जोन के तुम लोग साले फिर खेले नहीं। आखिरी समय पे सर्कल के बहुत सकते थे स्टेज पे, थोड़ा बहुत हील करेंगे लेकिन मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया ने बैकल वहां पे काना डेट चला रहा होता भाई। चाइना भी वही पर थे बट अर्जेंटीना भाई तो फाइट होती है हमारे गेम से सही जा जापान और रहा ऑस्ट्रेलिया मिलकर आई लॉस्ट अ फ्रेंड यार ड्यूरिंग दैट, तभी मेरे को तुमसे Oh, छोड़ना no. पड़ा बिल्कुल। आई लॉस्ट अ फ्रेंड। हाँ लाइक वन ऑफ माय फ्रेंड पास हुआ ना क्या? बीच में। यू डिडंट नो अबाउट इट वन? हां नहीं क्या हुआ? अरे उस टाइम पे हुआ था यार एक चीज ना, लाइक दोस्ती है क्लोज And how old was your friend? शी वाज 25 ब्रो। Oh damn. It's very young. बड़ा सैड था, लाइक कुछ प्रॉब्लम चल रही थी उसको स्टार्टिंग से पता भी नहीं चला था। तो उस टाइम पे फिर बियर्ड मेरे को दोनों हम खेल ही नहीं पाए ब्रो। अच्छा ओके। फिर वो हो ही नहीं पाया था, वरना तो कंटिन्यू करते इस टूर्नामेंट भाई। हां मजा तो आ रहा था भाई इसमें। हम एक मैच में तो सेकंड भी आए थे, तो एक मैच में हाइड्रा वाली टीम से फाइट हुई थी पूरी। अब बताओ अब कौन सी टीम? हमारी टीम और हाइड्रा की ना। हाँ जो खेले थे उसमें। वो तो क्वालीफायर थे। मैच खेला था उसमें भी भाई। अरे उसमें यही चला था, मतलब कभी कोई गायब था, एक दिन भी सोता रह गया, उसको पता भी नहीं चला। भाई अब बताओ अब कौन सी टीम मोटिवेट होने वाली है ये वाला परफॉर्मेंस देख के कि नेक्स्ट टाइम हम जाएंगे और हम एक्चुअल ग्राइंड दिखाने वाले। नॉट मी। Why you are not playing भाई यार? नहीं I don't play bro। बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव स्प्लिट आप देखिए। सोल जो है वो बिल्कुल सेंटर में 13 किल कोरिया। भाई हम नहीं खेले इसका मतलब थोड़ी ना इंडिया से कोई और खेल नहीं सकता है ना, प्लेयर्स तो है ना भाई। कोरिया का स्प्लिट दिख रहा है, कोरिया का स्प्लिट दिख रहा है पूरा। हम करेंगे भाई, हम सपोर्ट करेंगे। लेफ्ट में राइट में बहुत ज्यादा बढ़ाता ओ भाई बच गया भाई पता है कल मैं पता है उसका वर्ल्ड सीरीज वॉर जोन भी चल रहा था साथ में कल। तो उसमें पता क्या था, उसमें एक सोलो योलो था, लाइक 150 बंदे की लॉबी, सारे स्ट्रीमर्स मतलब डिफरेंट रीजन से। एंड जो बंदा जीतेगा, सिर्फ एक बंदा अकेले को प्राइस फुल मिलेगा पूरा $1 लाख। कौन से गेम की बात कर रहे हो ये? अरे वॉरजोन का कल हो रहा था, वर्ल्ड सीरीज वॉरजोन चल रहा था। बहुत यूएई में हो रहा होगा, यहाँ तो नहीं होता है। नहीं लंदन में हो रहा था, बट मतलब वहीं पूरे जापान के लोग गए होते। वॉरजोन का कॉम्पिटिटिव सीन है ब्रो, क्वालिटी कर रहा था ऑफिशियल, बट एशियन पता है इसमें क्वालीफायर्स वगैरह का सीन होता है जैसे। अच्छा पता भी नहीं चला हुए थे। वॉरजोन तो आई थिंक वॉरजोन का मैंने आज तक एक भी टूर्नामेंट नहीं देखा। ब्रो कल ही हो रहा था, कल मैं वॉच पार्टी करी उसकी पूरी। ओह डैम, क्रेजी था ब्रो बहुत। मतलब कौन खेल रहा था, कहां से लोग खेल रहे थे? तो उसमें फेस स्वैग वगैरह को जानते हो ना, स्वैग वगैरह भी खेला था, उसकी भी टीम गई हुई थी। बाकी स्ट्रीमर्स थे क्या अपनी टीम लेके आए थे? मोस्टली स्ट्रीमर्स थे, बट उसके भाई स्ट्रीमर्स ही तो कितना एपिक, ये प्रो प्लेयर्स और स्ट्रीमर्स सेम ही खेलते हैं ना उधर। तो उसका क्वालीफायर का तो सीन क्या था ना कि यूरोप और एनए मेनली होता है फोकस। सो मतलब एशिया का कुछ था और पता भी नहीं चला वो कब आके खत्म हो गया। वी गॉट नो फकिंग आइडिया, वरना एशिया में तो क्वालीफाई तो कर ही जाते हैं हम भाई। एक बार किल फीड देखो, और कोरिया के 13 किल्स, बाकी सबके सिंगल डिजिट। भाई कोरिया कुछ ज्यादा नहीं खेल रही वैसे, मैं देख रहा था ये मैचेस बैठ के। भाई पागल हो कितना खेल रहे हैं होम गेम भाई। ट्रॉफी का एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ेगा शिपिंग का। हाँ भाई ऐसे ही ले जाएंगे गाड़ी में। पूरा स्प्लिट है, एक बंदा पूरा स्प्लिट है, एक बंदा एक टीम को। इंटरनेशनल फीस नहीं लगेगी भाई ट्रांजैक्शन पे। हाँ भाई। ओह भाई ब्रो बज़ूका चला रहा है भाई, चला रहा है कितनी दूर खेल रहे हैं। मोटार इट्स गोना गो इन ब्रो। ओह शिट एडजस्ट तो कर रहा है जिस हिसाब से। ट्राई सम को-ऑप गेम्स विद फेलो स्ट्रीमर्स। बोलो भाई को-ऑप खेलें। कहां जा रहा है गोला, कहां जा रहा है?
गिरा। अरे सीएस2 दोबारा खेलते हैं ना भाई, करते अरे हैं वो अभी हाँ, देखेगा, CS2 खेलते अगला हैं, अगला भाई। वाला सही से वो मेंटेन करेगा। राइडर नाइफ लिया, उसको चला तो लें। वो थोड़ सा और आगे भाई बढ़ा। भी है वो तो मिनी मैप में दिखाता है क्या? इन्वेस्टमेंट है भाई। नहीं, ओह, तुम्हें मैप में हाँ। जाके देखना भाई ये पड़ता है। मोटर चला रहा है भाई, वो तो हाँ। फक ब्रो। ये क्या कर रहा है भाई? भाई टूर्नामेंट भाई। Shit, अबे तुमने bro. देखा नहीं, कल एक टीम ने 3 बंदे मारे मोटर से, एक गाड़ी फटी और My सब God, boy. बूम। कल तो क्रेजी, वो तो छोटे से जोन में हो गया था भाई। बट ब्रो एंड सर्कल पे अगर तुम्हारे मोटर है तो बहुत ज्यादा एडवांटेज है भाई। अरे कल ओ टाइगो भाई, में अभी लगने वाला है। आई थिंक टाइगो में था दो बंदे मारे। 30 अलाइव थे। ओ बहन चोद। Fuck, भाई। इतने, ये जो जोन है ना, हाँ। इससे बस थोड़ा सा ही आई थिंक था साइज में। ओ 2 मर गए। आई थिंक फेस 5 फेस 6 ही था रे, मेरे को जितना याद है। कुछ 30 लोग दिख रहे थे अलाइव। God damn भाई। और तब मोटा मोटर चल रहा था भाई, क्रेजी वाला। भाई साहब। भाई यही होता है, सारी यूटिलिटीज यूज करना। भाई सही में भाई, वैसे मजेदार तो था भाई। कल पता है मेरा भी दिमाग खराब हो गया और वो इस पे देखा तो उसमें क्या हो रहा था। अरे मोटार ले रहा है, पैंसर बर्स्ट ले रहा है भाई, जो भी मिल रहा है भाई भाई सब यूज P90 कर चल रहा रही है, लोकी के पास P90 है। क्रेजी तो वेपन है, क्रेजी वेपन। ब्रो बेस्ट ही है। कोरिया वाले तो पागलों की तरह खेल रहे हैं भाई। देखो तो। हेलमेट कर दिया सेकंड टीम को। भाई फाड़ देंगे भाई कोरिया, मुझे देख लग रहा है भाई। टर्की गई। क्या मतलब इंडिया में मैच होगा तो दो इंडिया बंदे जीतेगी? बचे हैं, जाएगी। इंडिया में मैच होगा तो सर्वर कौन सा खेलेंगे? यार इंडिया में Dead, यू नो oh, व्हाट आई that पर्सनली net, थिंक, bro। मेरे ये पता है क्या मेरे को लगता है इंडिया में क्या सीन है, लोग इनको हाँ। ग्राइंड भी क्यों नहीं कर रहे टू बी ऑनेस्ट। मतलब इतना ज्यादा ग्राइंड भी नहीं करते लोग एज कम्पेयर टू दीस प्लेयर्स। हाँ। थोड़ा सपोर्ट का सीन पड़ता है ब्रो। हाँ, और क्या, जनता का उनके हाँ, support बंदों है। पे ना पैसे आ रहे हैं, ना फेम आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। इवन दो ब्रांड्स का सपोर्ट, इवन दो टीम्स का सपोर्ट। मतलब आई हैव सीन इंडियन ऑर्ग्स बिल्डिंग टीम फॉर सिंगल टूर्नामेंट्स भाई। मतलब अगर वो 2-3 साल उनको रख के ग्राइंड करवाए तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा बेटर नहीं रहेगा। कोरिया ले गया। मैकल 25 किल मैकल और फर्स्ट 25 मार पोजीशन। दिए उन्होंने। 25 किल ऑलरेडी ओ माय गॉड भाई, क्या कर रहे हैं भाई? भाई, दो क्या है बंदे ये? भाई जानवर ऐसा है लग रहा भाई। है नूब्स को मार रहे हैं भाई। पूरी तरीके से वो लगभग ये बंदा बड़ा खुश है। दर्शक है वो, आप देखिए कितना ज्यादा खुश जो प्लेयर्स है वो भाई, confident है, क्या वो चल रहा है बुद्धिमान भाई? जो है वो बताते भाई वो हुए वन साइडेड गेम है इनके लिए भाई, मैं बता रहा हूँ। अरे क्या, फीलिक्स भाई ने कुछ अलग ही लिख दिया भाई। सिंगल मुकाबले क्या लिखा है? निकाल के गए हैं। उनका कोच उनके नॉर्थ में जो रहता है वो है। कितना ज्यादा ऊपर Oh my God. कितना ज्यादा ऊपर 20 किल के 25 किल, कोरिया ऐसा लिख के आया था 25। रुको बैक करके देखता हूँ। अरे हाँ भाई किल्स 16 किल्स है ब्रो। ये चमचमाती हुई 16? ट्रॉफी उसके हाँ 20 किल्स। अरे मैंने गलत पढ़ लिया। 20 किल्स भाई, तब भी 20 है bro। क्या? Okay. अच्छा एक सेकंड, मैं दिखाता हूँ, ये देखो स्कोरबोर्ड ब्रो। नो अदर टीम इज डबल डिजिट इवन एंड दे आर स्कोरिंग 20 किल्स तो they won the tournament भाई। उनको घर चले आना चाहिए अभी भाई, टिकट करा के। विद विनर चिकन डिनर। गॉड और वॉट हो जाता तो। ब्रो पता है मैंने एक चीज नोटिस करी है टूर्नामेंट्स में ना, मतलब जो फ्रैगर्स होते हैं ना हाँ। वो ही मेनली वो कर पाते हैं। इनको दे दो लोग ट्रॉफी और बाकी भेज दो वापस। लोग थोड़ा पैसिव खेलने लग जाते हैं, पर टूर्नामेंट में अगर वो प्ले स्टाइल सेम रखे ना जैसे वो नॉर्मली खेलते हैं, वो बेस्ट रहता है। भाई साहब, ब्रो भाई कोरिया वालों की स्किन इतनी अच्छी कैसे होती है यार, स्पॉटलेस। साले इतना स्पाइसी नूडल खाते हैं। ब्रो ये चटके बच्चे हैं ब्रो, ये सारे चारों दिख रहे हैं तुम्हें ये भी स्क्रीन पे। हाँ। चारों चटके बच्चे हैं भाई ये। इन्हें तो फुल चटके मतलब? कैफिनेटेड, चटके इन द सेंस कैफिनेटेड, फुल ऑन एड्रेनलिन भरा हुआ है इनमें। अच्छा मतलब क्रैक्ड पागलों की तरह भाई। हाँ। मतलब वो पागल ही होते ये हैं दिखा भाई। रहे तार से बेचारों की जो भाई हम लग गई स्पाइसी है खा वालों लेते हैं, की। हमारे 2 पिंपल निकल जाते दूसरे दिन। बताओ भाई। भाई वो कोरियन स्किन केयर बेस्ट होता है भाई। रोटेट कर रहे थे फिर वहां पे वो ये सभी करते हैं, मतलब बचपन से ही करते हैं भाई। हम जैसे हम अरे बाकी स्पोर्ट के चीजें मूड मैटर होते हैं करती है भाई। भाई, आपका वेदर, आपका जो पानी है, पानी की क्वालिटी, सब कुछ मैटर करता है यार। बट दे वेरी हाइजीनिक एज वेल ओवरऑल ना, मतलब वो थोड़ा क्लीन हाँ रहते बहुत हैं, हाइजीन रहता है उनमें। बहुत ज्यादा वो अपने आप को रखते हैं वैसे तो इट्स, और वो हैबिट नहीं होती, वो एक तरीके से वहाँ schedule कोरिया होता का वेदर कैसा होता है? एनी आइडिया? भाई गए नहीं कभी। इट्स लाइक आई थिंक मैंने सुना है कि नॉर्मली रहता है जैसा यहाँ पर होता है, इतना ही 27 28। क्या मतलब 27 टाइप का? व्हाट? हाँ आई थिंक इतना ही होता है ब्रो। इनको स्थापित कर देगा क्योंकि दूसरा Okay. तीसरा चौथा पायदान जो है वो बहुत बोले मजा आ गया भाई देखना गेमप्ले देखने 27 भी मैंने अभी सर्च किया मैंने कोरिया वेदर राइट नाउ, पर थाईलैंड में भी बहुत अच्छा खेला, लाइक अच्छा खेला। मुंबई जैसा? हाँ नहीं भाई 27 मुंबई जैसा तो नहीं होगा। मतलब मेरे बेबी डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट होता होगा, बट ठंडा तो कम ही होता है शायद।
The difference between 15 and 16 is insane. इंडिया के साथ कौन बूम बूम कर गया? भाई मैं देख रहा हूँ इंडिया की, एक तो इंडिया की फाइट कनाडा से ही हो जा रही है भाई। कनाडा, यूके और यूएसए, यही 3 है मैं जब से देख रहा हूँ। भाई सिर्फ कनाडा वाले पकड़ लेते कहीं भी भाई। तुम क्या मोबाइल से आए हो क्या? अजीब सी आवाज है। मैं तो उस पे पीसी से आया हूँ ऐसे बैठ। अभी मैं तुमने एक्सेप्ट किया? अभी भी एक्सेप्ट नहीं किया फ्रेंड रिक्वेस्ट। करो। कौन सा एक्सेप्ट भाई? ये इसको बोल रहा हूँ हाइड्रा को। पता नहीं मैसेज नहीं जा रहा, पहले तो जा रहा था। तुम्हें क्या मैप भेजना है मुझे? फ्लाइट बॉट या रुको भाई देख रहा हूँ मैं मैप। तो सिपाजी ने मैप भेजा है गाइस, मैप देख लेते हैं एक बार। न्यू PUBG मैप आपको नहीं, मैंने खेली ही नहीं CS:GO। अब सोच रहे भाई जब आएगी तभी ग्राइंड करेंगे। भेजो अभी वापस। और आज के दिन देखिए कुछ आया, अपडेट आया क्या CS2 तेरे को पता है हाइड्रा मेरे साथ क्या हुआ है? मेरा ईलो फक हो रखा है उसमें CS पे। तो आई वाज ऑन 13,000 एसआर ना। तेरे को पता है मेरा माइनस पे कितना कट हो रहा है अभी? जैसे नॉर्मल इफ आई एम सर्चिंग फॉर अ गेम सो आई एम गेटिंग लो वाले प्लेयर्स ओनली। जैसे अब जैसे लाका वगैरह के साथ खेला था ना, या फिर वैसे किसी के साथ भी खेले, इनके लो ऐसे नया अकाउंट है CS का, तो हमने उनके यार तुम एली लेके गोल्ड नोवा अगर टॉप फ्रैग कर रहा है तुम्हारी लॉबी में और तुम एली हो तो फिर सीन तो होने वाला है भाई। नहीं ब्रो नहीं, इट्स नॉट अबाउट दैट। हो क्या रहा है ना कि जो मैच मेकिंग है वो इतनी फक्ड हो चुकी है। मेरा आई थिंक ईलो का सीन हुआ है कि मतलब वो था ना, पहले आई वाज प्लेइंग विद 15,000 एसआर वाले, एकदम से फिर मैं लो वालों पे चला गया तो मेरा -1480 तक जा रहा है। -480 जा रहा था अभी मेरा। अच्छा 3-4 मैच आ रहा हूं। पाजी भेजो ना। अरे बट हां तो कोई नहीं, देन यू हैव टू जस्ट प्ले विद हायर ईलो प्लेयर्स। वही मैच मेकिंग ही ऐसी है ब्रो, मतलब ऐड कर लो ना, हायर ईलो प्लेयर्स को ऐड कर लो तो धीरे-धीरे बढ़ जाएगा। ब्रो बट 4-4 वाले प्लेयर आ रहे हैं रैंडम से भाई। वो 4,000 तो बहुत, मेरी टीम में 4,000 सामने 16,000 ब्रो, मतलब लाइक डजंट मेक एनी सेंस भाई। ओके नया मैप आ रहा है भाई, क्या नाम है? 10th पता नहीं, डी से नाम है शायद। क्या है ये? देखो ना टीजर क्या मैप आ रहा है। हां देखते हैं भाई क्या सीन है। रिवील नहीं है टीजर। भाई HydraFlick है क्या ये? आई व्हाट द फक। हेलो मेरे को उसका नाम ही नहीं दिख रहा ब्रो। एक तो स्ट्रीमर मोड ना वैसे सीमो मेरे को। हां मैंने ज्यादा बोला नहीं मैकल इसलिए। वही ब्रो आई वाज कंफ्यूज ब्रो। मेरे को एक आई दिख रहा है सिर्फ डॉट। हां मेरे में भी आई डॉट आ रहा है। ऐसा क्यों है? क्या है ऐसा क्यों? ये हाइड्रा स्ट्रीमर मोड वगैरह ऑन करा हुआ है ना उसमें। बड़ी बिल्डिंग का टॉप था। हां मेरे में डॉट आ रहा है क्या? नहीं हां मेरा स्ट्रीमर मोड इनेबल्ड है। हाइड्रा का भी ऐसे ही आ रहा है। आधे टाइम पता नहीं चलता कि डीपी डिफरेंट है फिर कुछ नहीं होता। मेरा भी स्ट्रीमर मोड इनेबल्ड है, उसकी वजह से हो रहा है क्या? भाई कुछ दिखाया नहीं रिवील में। अच्छा लिखा हुआ है हाइड ईमेल नेम। ओके ये हटा दो, ये हटा दो। अगर तुम्हारा नेम ये कोरिया का जो स्प्लिट देखा हम लोगों ने, ये सारा बीच में 2 बंदा, लेफ्ट में 1 बंदा, तीसरे में तो पूरा सर्कल में कोरिया। शुगर केन नहीं था? हां बंबू। दे आर वेरी कॉन्फिडेंट भाई, मेरे को लग रहा है अलग से खुद से। बंबू अभी तो और कॉन्फिडेंट आ गया यार वो लोग तो और कॉन्फिडेंट। अब तो देख लो अभी खाएंगे ब्रो। उनको पता है पर इसमें रिवील क्या किया है इनने? रिवील कुछ नहीं, बम्बू रिवील किया है बस। दिखाया बम्बू। हाउ मेनी मैचेस आर लेफ्ट वैसे इसमें? अभी और 4 बचे। अभी 4 और बचा हुआ है। अभी विकेंडी टाइगो इरेंगलर पता चल जाएगा फाइनल्स कौन सी। डिफरेंट मैच स्क्रिप्टेड है। बट मैं बस थोड़ी सी क्या चाह रहा हूं, इंडिया एक मैप निकाल दीजिए भाई, मजा आ जाएगा। भाई मेरी होप है ना, भाई मैप तो बहुत ज्यादा कल तक मेरी होप बहुत स्ट्रांग थी। सही में क्या टोटल डैमेज से बुरे हालत है क्या? भाई कोरिया ने सिर्फ एक स्मोक यूज किया है। अरे आई जस्ट वांट दैट कि एक 4v4 फाइट निकाले, बहुत बढ़िया। 25 ये 20 किल्स है, क्या सीन है? ये टॉप 4 टीम्स में 20 किल्स है कोरिया के, ठीक है? एक स्मोक दिखा रहा है इनका यूज्ड। वो एक स्मोक 10 नेड बेंच 10 नेड है भाई वो खुले वर्ड कर रहे हैं। एक स्मोक में सरवाइव किया इनने। अरे कोई नॉक ही नहीं हुआ होगा ना, कोई कुछ करने नहीं पड़ा, वो लोग ही मार रहा था उन लोग को, बचने के लिए कुछ था ही नहीं। उसी टाइम पे अगर साइलेंट देखा जाएगा तो 15 स्मोक डाला है बेचारे लोगों ने और 19 नेट मारा है। और 4 मुकाबले बचे, उनमें सबसे अच्छा प्रदर्शन निकालना पड़ेगा। वो प्रदर्शन नहीं निकला तो चीजें यहीं खत्म हो सकती है, क्योंकि 15वें और 16वें पायदान में भी जो फर्क है, जो फासला है, जो वो ब्रिज है,
वो बहुत ज्यादा बड़ा बन चुका है। उसको आपको खत्म करने के लिए ही शायद 4 गेम्स लग जाएं, लेकिन आप ये नहीं भूल सकते ऐसा तो नहीं है कि वो बेला कौन है? अच्छा ये है, वो भी अपने अंक ऊपर बनाना चाहेगी। तो कहीं ना कहीं चीजें बहुत ज्यादा खराब होती नजर आ रही हैं, स्पेशली अगर हम लोग बात करें नॉर्थ अमेरिकन रीजन के लिए भी। कनाडा एकदम वहीं पर हमें मौजूद नजर जरूर आ रही है। न्यूयॉर्क्स मोटर क्या है ये? के लिए चीजें खराब है भाई, इसको बेचारी को दो बार बोलना पड़ता है, पहले कोरियन में बताएंगे फिर इंग्लिश में। कितना सही कितना गलत, लेकिन चलिए अभी अभी के लिए चलते हैं इतने मैच स्ट्रीम करने पड़ रहे हैं। रिड्यूस HydraFlick साउंड। ये लोग यहीं से कर रहे हैं ना, इंडिया से कर रहे हैं ना, ओशन में बैठ के। हाँ नॉर्डविन के तुम इसमें है ना? हां, पूरा उन्होंने सेटअप बनाया पीएनसी के लिए, देख कितना बढ़िया सेटअप। नहीं स्काई स्पोर्ट्स का है वैसे, बट ये स्काई स्पोर्ट्स का मेन है, बट आई थिंक ये स्टूडियो नॉर्डविन के, हां मुझे लग रहा है ये स्टूडियो नॉर्डविन है। 팀이 있죠. 바로 팀 베트남입니다. 그리고 베트남에서 HydraFlick का आवाज कम नहीं कर रहा यार, बोलता ही वो दो शब्द है। अरे अरे मुझे यहाँ पे फास्ट नहीं करना चाहिए तुम लोग, मैं समझता हूँ। जो भी कहो PUBG PC peak days were the best. याद मत दिलाओ भाई PUBG PC peak भाई जब PUBG PC आए रिमेंबर भाई, जब उसके कस्टम होता था भाई साहब, वो याद है जब बीच पे जब अपने स्टार्टिंग में गेम हो वाले कस्टम कराए थे, मैं करा के बैठता था। मजे आते थे भाई, क्या मजे आते थे भाई सारे, मतलब मैं ऑन करता था 2 सेकंड में लॉबी फुल, 2 सेकंड में लॉबी फुल जाती थी भाई, अलग ही सीन था वो। 10 push-ups right now, तुम मारो, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ ये सब मैं। शॉटगन ओनली, DMR ओनली, वे वो trong team bọn em thì toàn những product của hàng đầu Việt Nam, nên là chuyện nhiều kia là chuyện bình thường đối với team bọn em. I think it is because like our team were all like all the top rackers in Vietnam. जर्सी सही दिख रही है, सबकी जर्सी अच्छी है। Got everything ये on the अपनी way. लैंग्वेज ही बोल रहे हैं ना वहाँ पे भी। 뭔가 이 선수들 다 베트남에서 탑키를 기록하고 있는 선수들이라 뭔가 자연스럽게 이렇게 능력을 뽐낼 수 있었을 것 같다고 하네요. 저 PNC 강력한 우승 후보로 항상 베트남이 언급이 돼요. 이번에 과연 팀 베트남이 우승을 가져갈 수 있을까요? Vietnam has always managed to stay like the front runner of the PNC champions. Like, भाई 3 लोग सपोर्ट कर रहे हैं वियतनाम so I को वहाँ wonder पे। how confident are you guys in seizing the trophy for today? Khu vực Việt Nam của mình thì lúc nào cũng được. भाई इंडिया के सपोर्टर्स कहाँ हैं? कौन सी कलर की जर्सी? Thì em nghĩ là lần này em कोरिया có में। tự tin là sẽ giành được cúp vô địch của giải đấu này. पीछे करके बता दो कौन सी टीम करो एग्जैक्ट टाइम बताओ। Looks like you are supporting Vietnam by your shirt. Oh shit. Sau ngày hôm qua thì bọn em Oh yes. बैक करो ना उसमें, बैक करके माइनस nhưng mà sau पीछे game vừa करोगे rồi तो thì ब्लू जर्सी में गया giảm xuống था। còn 10% thôi. Blue jersey में Canada है ही top 1 xong. अरे पर एक टीम कोई है, कोई तो है एक टीम। Sau ngày vừa नहीं rồi है सरदार, चुप रहो। sau ngày hôm qua thì bọn em कुछ भी बोल नहीं देखा। 5%, nhưng mà sau game vừa rồi thì हाँ भाई सरदार जी आए, giảm xuống उसका còn नाम है 10% हरमनप्रीत thôi. सिंह। ठीक आबा है, डाबा डाबा। हरमनप्रीत I सिंह think like after गए थे yesterday, पढ़ाई करने, PUBG खेलने थे वहाँ। क्या लगता है नेक्स्ट ईयर का स्लॉट? वीजा पे गए थे। क्या लगता है नेक्स्ट ईयर का स्लॉट कंफर्म है? Of course not. नेक्स्ट ईयर किसको टेस्टिंग देंगे भाई? भाई देखो 2 टीमें इस बार स्लॉट लेके आई हैं, ठीक है, डेनमार्क और इंडिया। डेनमार्क को देख लो कहाँ है, डेनमार्क तो मार रही है भाई। वही, और अपना देखो भाई इधर, बुरा लगता है भाई। अगला स्लॉट पाकिस्तान, लेट्स गो। भाई वैसे पाकिस्तान में गेमर्स चीयर्स नहीं आ रही भाई इस बात पे, ठीक है। पाकिस्तान वालों की पिंग विंग रहती है, बट गेमर्स बहुत अच्छे हैं भाई पाकिस्तान के, जो भी हाँ मैं भाई, मेरा दोस्त खेलता है रेहानी भाई। अरे मेरे भी दोस्त है भाई, देख पाकिस्तानी जो बहुत बढ़िया है, खेलता तो अच्छा है रेहानी भी। है बे, बहुत अच्छे रेहानी की टीम खेलती अच्छा है। वैलोरेंट में भी देखने जाए तो ये बढ़िया खेलते हैं। मैंने शूटर एचबी के ये लोग। अरे काउंटर स्ट्राइक में भी बहुत अच्छे थे भाई। काउंटर स्ट्राइक गो में भी थे ब्रो, एंड इसमें भी बहुत अच्छे थे। बस्टर क्या नाम था उसका? एचबी के था ना, क्या एचबी एचबी के, आई थिंक एचबी के ऐसा कुछ नाम है शायद उनका। इज अ वेरी गुड प्लेयर इन सीएसगो। अबे तुम भूले वो टीम जो दुबई से आती थी भाई? सालू तुम ट्रोल करना चालू कर दिया अभी। Em có lời gì muốn gửi đến người hâm एक बंदा वो लिखता है चैट में, खेलते अच्छा है वो लोग बट लाइट नहीं आती उनको। हाँ उनका लाइट चले जाता है, ये मैंने लाइट चला जाता है। आई मीन इट्स अ नॉर्मल सीन भाई, वहाँ पे जाती है लाइट भाई, क्या ही करे बेचारे। I hope that कैजर को देख लो भाई, बेचारा 3 दिन से स्ट्रीम नहीं करी उसने, लाइट नहीं आ रही थी। अब तो रूटर हो गया उसका भाई। the other 15 team here in PNC as well. router.gg. 우리 베트남 팬분들 우리 끝까지 응원해 주시고 나머지 여기 15팀도 같이 응원해 주라고 엄청 ये सुजल 훈훈하게 कुमार 대답을 डार्क बंदा है 해주네요. तो 너무 चैट में। 감사합니다 인터뷰. Thank you so much for the interview.
네, 팀 베트남의 히마스 선수 인터뷰 만나봤습니다. 이제 우리가 챔피언을 만나기까지 4매치밖에 안 남아 있는데요. 저희는 잠시 쉬는 시간 갖고 मैच 15 테이거 맵으로 돌아오겠습니다. भाई चैट में बंदा लिख रहा है भाई HydraFlick को बता कोच छोड़ के एज अ प्लेयर प्रैक्टिस किया होता तो ग्लोबल लेवल में इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा होता। अरे फिर 2 साल तो फिर मैं 0 पैसे पे लगा रहा था। भाई घर कौन चलाता है? घर कौन चलाएगा भाई? चलाने का होता है भाई, और क्या थोड़ा भाई अभी मैं सेटल्ड हूँ, अच्छा हूँ, बढ़िया है, esports में है, गेमिंग में है, IGC में है। अब लिख रहा है तुम्हारी वजह से ही ऐसा हुआ है, अब HydraFlick करना बंद कर दिए, स्पेशली आपका HydraFlick को बोलो यार, बट लोग जो भी लोग ये बोल रहे हैं परफॉर्म नहीं कर रही है, तुम्हारी गलती है HydraFlick, क्योंकि अबे HydraFlick यार क्या है यार, क्या भाई? पर अभी HydraFlick दूसरे प्लेयर्स को ट्रेन करता है ना भाई, वो भी तो देखो, ही इज ट्रेनिंग प्लेयर्स। वो भी एक दिन इंडिया में परफॉर्म करेंगे यार। अब वो जो अकेला मेंटालिटी थी HydraFlick की, अब वो 4 लोगों की हो चुकी है। मैं तो हमारा टीम क्वालीफाई भी हो गया यार BGS राउंड नेक्स्ट राउंड के लिए। मतलब बाई चांस से वॉरज़ोन मोबाइल का सीन बन जाएगा, मेरे को 4-5 बच्चे दे दो भाई, छोटे-छोटे से। तुमको बच्चे चाहिए? क्या करवा दे? चाहिए बड़े से 16 4 बच्चे चाहिए तुम्हें? क्यों भाई क्या हो गया? जिनकी फिंगर्स ऐसे घूमे ना कीबोर्ड पे। अरे सॉरी कीबोर्ड ना मैन ना यू शुड स्टॉप राइट हियर। फिंगर क्लॉ वाले। स्टॉप ब्रो, मैं बता रहा हूँ इजी ट्रॉफी है भाई। I don't like your intentions bro। बच्चे चाहिए गाइस मैकल को, 4 बच्चे चाहिए मैकल को जिनकी उंगलियां मुड़नी चाहिए। भाई साहब ठीक है भाई, गंदे इंसान हो तुम लोग तो भाई। ऋतिक रोशन जैसा और एक उंगली एक्स्ट्रा है तो और भी बढ़िया है। एस्टन मार्टिन आ रही है, कह रहा 11 फिंगर क्लॉ खेलेगा अपन। ओए एस्टन मार्टिन आ रही है भाई, कौन ले रहा है फिर? ले लो यार, अरे कोई तो लेके जाएगा, बता हाइड्रा तो इससे बैठा होता है। आई लव HydraFlick ब्रो। अब भाई हाँ, अगर मैंने PUBG बंद नहीं किया था तो मैं इधर बैठा होता भाई, मेरी गलती है। HydraFlick भाई के पास अपनी रिस्पांसिबिलिटी है भाई। हाइड्रा अभी जाएगा, बंद करेगा, उसको बोलेगा बैरल इंडिया, लेट्स गो। भाई असली प्रॉब्लम ये HydraFlick है। HydraFlick को देख के HydraFlick ने शुरू किया था, HydraFlick ही भाई छोड़ गया। हाँ तो भाई सही बात है, ये कर लो तुम भाई, हम तो कंटेंट क्रिएटर है। तुम साले तुम एक बात बताओ, सालों से बोलते हो भाई स्ट्रीमर्स दूसरे गेम क्यों नहीं खेलते, फिर स्ट्रीमर्स दूसरे गेम खेलते हैं तो फिर उसमें रोते हो। बोलो ना चैट को, मुझे कहाँ भर रहे हो भाई? तो चैट को ही बोल रहा हूँ मैं, चैट को ही बोल रहा हूँ और तुम्हें भी बोल रहा हूँ, तुम भी तो बोलते रहते हो पूरे टाइम। मैंने थोड़ी, मेरा कमेंट नहीं है भाई, मैंने कुछ नहीं बोला भाई, मेरे को कुछ छोड़ रहे। तेरी चैट में क्या लिख रहा है? वो कह रहा है 4 बच्चे उंगली अच्छी हो तो इजी टॉप ही उनको। ओह माय गॉड भाई देखो इंडिया चेस में टॉप पे है, ठीक है, बट यार लाइक नो हेट टू एनीवन बट नथिंग, मतलब ऐसे कुछ मैं वो नहीं कर रहा, बट डोंट यू थिंक जो चेस खेलते हैं थोड़े से, जो छोटे लोग होते हैं चेस खेलते हैं, वो थोड़े अजीब से होते हैं भाई। तो जो छोटे लोगों में अजीब से मतलब अजीब से इन द सेंस लाइक मतलब यार वो थोड़ा ना वो हो जाएगा यार, नहीं अजीब इन द सेंस थोड़े अजीब से, मतलब थोड़े टेढ़े मेढ़े से, डोंट यू थिंक? मतलब आई हैव नोटिस्ड दिस, आई डोंट नो, मे बी मेरी आंखें गलत है, मतलब दे आर इन देयर हेड। हाँ वो देयर इन देयर नर्ड्स टाइप दिखता है ऐसा। हाँ मतलब तू नर्ड्स भी बोल सकता है, बट दिमाग वाली गेम है भाई, ये भी तो सोचो ब्रो, दैट्स हाउ स्मार्ट पीपल एक्ट ब्रो, दैट्स हाउ स्मार्ट पीपल लुक। दिमाग में इतना घुसे होते हैं कि लाइक मतलब दे डोंट केयर कि क्या चल रहा है, मतलब भाई उन्हें दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता होता, वो अपना काम जानते हैं बस। नॉट लुक वाइज भाई, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक मतलब थोड़े अजीब से होते हैं, मतलब थोड़े डिफरेंट से। ठीक है, I mean, I can't say that fucking word भाई, sorry। एक तो ये प्रॉपर्टी डीलर को भाई नंबर्स कहाँ मिल जाते हैं भाई? मैंने आपको यहाँ से फोन किया है, हमारी नया डेवलपमेंट हो रहा है। कैंसिल लिख रहे हैं भाई, कह रहे कैंसिल करो, मैं बोलूं भाई क्या हो रहा है इसके? भाई मैं तो सीवी नहीं कर रहा, मेरे को कैसे करोगे कैंसिल? They are into chess so much they think of chess day and night। हाँ भाई, जब मैंने काउंटर स्ट्राइक खेलना चालू किया था ना, मेरे को रात को सपने आते थे भाई, सही में भाई, मेरे सपने में भी चेस में इतने मूव्स होते हैं, यू हैव टू गेस कौन सा सामने वाला करने वाला है। बहुत दिमाग चाहिए ब्रो, चेस बहुत दिमाग चाहिए। मतलब भाई गेस वर्क नहीं है चेस, गेस वर्क तो है, गेस नहीं है यार, उसमें उसमें गेस you have to guess, ये करेगा, ये करेगा। अरे करने पड़ते हैं भाई, chess is all about predicting that permutation and combinations। मतलब प्रेडिक्शन भाई, तो ऑब्वियसली हर एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बना के रखो ताकि तुम रेडी रहो। भाई हम तो लूडो खेलते हैं।
और लूडो एक चैंपियनशिप तो में। पता नहीं भाई, एक तो बड़ा फनी सीन का पता है, ये बहुत चलता है जब भी लाइक जैसे तुम भी वॉच पार्टी कर रहे थे, मैं तुम्हारे चैट में भी हाँ देख रहा था, ये बहुत चल रहा था। ऐसे लोग आके ना सीधा ये बोल जाते हैं कि भाई ई स्पोर्ट्स में जाना है मेरे को वहां बैठना है, कैसे कैसे जाऊं। हाँ हाँ ई स्पोर्ट्स में तुम्हारा जाना इसमें है। रिप्लाई क्या है, बता हाइड्रा, तेरा रिप्लाई क्या है इस क्वेश्चन भाई पे? मेरा रिप्लाई सबसे सिंपल होता है और सालों से सेम रहा है, अगर ई स्पोर्ट्स जाना है तो टीम बनाओ और खेलो भाई, बकैती मत करो चैट में आके। हाँ किसी भी इतना गेम कुछ में डिफिकल्ट बेस्ट नहीं हो है जाओ, स्पोर्ट्स में बेस्ट घुसना। हो जाओ किसी भी गेम में। भाई हाँ कोई भी कर ही सकते हो, रजिस्ट्रेशन खुला Obviously रहता है भाई, भाई, ओपन रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्टर और क्या करना है भाई, खुद को, खुद टीम का ई टीम बनाओ। स्पोर्ट्स में को, जाने बस के लिए कोई खेलना है। टिकट नहीं लगती भाई, आपको बेस्ट होना पड़ता है। बट लॉन्डे ना पता लाइक पीपल डोंट नो हाउ टू, मेरे को लगता है कि बस वो बैठ के ना सोचते हैं कि सीधा पहुंच जाएंगे। मतलब मैं भी डोंट यू खेलूंगा। थिंक कि ग्राइंड कुछ ज्यादा ही चाहिए होता है? मेरे को भी लगता है कि भाई आई थिंक किस चीज यू में? नीड टू लॉट, मतलब व्हाटएवर यू आर डूइंग लाइक इवन हाँ इफ इट्स अ मोबाइल गेम, इफ इट्स अ हाँ पीसी गेम, हाँ भाई तुम्हारा थोड़ा स्टार्टिंग से ही तुम्हें लग जाना होता है, मतलब लाइक एट द एज ऑफ लाइक 15 16, जिस टाइम पे हमने खेलना स्टार्ट देखो किया टू बी दो ऑनेस्ट। चीजें हैं, एक तो स्टार्टिंग से लग जाना होता है, दूसरी अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। अगर नहीं है तो बेस्ट हो के भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी नहीं है, आप अपने आप को प्रूव नहीं कर पाओगे। भाई अगर तुम दोनों बेस्ट, फैक्टर होने चाहिए। एक चीज मैं बता दूं, अगर ग्राइंड का लेवल हो ना तो तुम बाहर की कंट्री वाले भी तुम्हें उठाने के चांसेस हो सकते हैं एक टाइम पे। से उठा लेते हैं ब्रो। भाई बट ये बता सुन सुन इन दैट सीन, मतलब कुछ अगर काटना तू पड़ता इंडिया है। से कंसिस्टेंटली रेडिएंट है, ठीक है, मान ले जस्ट सेइंग हाँ। एग्जांपल वैलोरेंट का ले रहा हूँ भाई, बाहर की टीम अपने देश के रेडिएंट को प्रेफर करेंगे कि तुमको प्रेफर करेंगे? नहीं यार, अरे पता है, अपने but, देश के रेडिएंट, वो उठा कम्युनिकेशन लेते हैं। गैप होता है उसकी वजह से थोड़ा इशू होता है, बट देन ऑफ कोर्स देयर आर सम, तुम खुद को ट्रेन कर सकते हो, अगर तुम्हारा गोल है कि तुम्हें इंटरनेशनल जाना है, तुम खुद को और ट्रेन कर अगर आप सकते हो। इंटरनेशनली परफॉर्म नहीं करोगे, वो इंटरनेशनल प्लेयर बट दैट्स अ लॉन्ग वे, दैट्स अ लॉन्ग रूट, ऑफ कोर्स वो चीज बहुत डिफिकल्ट है करना, इट्स नॉट इजी, सो मतलब किसी क्वेश्चन ने अभी मेरा तक ये अटेम्प्ट था, किया नहीं है। वैलोरेंट अगर तुम खेल रहे हो कंसिस्टेंटली, यू आर गुड एट इट, ठीक है, तुम इंडिया से ज्यादा रेडिएंट ही चले जाओगे ना। और अगर मान लो किसी टूर्नामेंट नहीं हो रहा इंडिया में तो आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो, तो लाइक दे डोंट नो, बट आप रेडिएंट हो। यार देखो, अगर तुमको पिक नहीं करेगा। अगर मैं होता ऐसा कि मैं रेडिएंट हूँ, हर एक्ट में रेडिएंट जा रहा हूँ, इंडिया का बेस्ट प्लेयर हूँ मैं, और मेरे को इंडिया में टीम में मिल रही है, बट इंडिया की टीम्स में उतना बेनिफिट नहीं है, लेकिन समझ रहे हो लेवल नहीं है, तो मैं पता है क्या करूंगा, मैं बाहर की टीम्स को रीच आउट करूंगा सामने से, मैं अपने वार्ड्स भेजूंगा, सब करूंगा, अपना गांड का दम लगा दूंगा कि मुझे बाहर वाली टीम्स नोटिस कर ले एक बार। और पता है एक और चीज है, पता है मतलब बड़ा नोटिस इसमें, पता है लाइक थोड़े बहुत लोग सोचते हैं कि ना कि ऐसे ही हो जाएगा, लाइक तुम्हें कुछ एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे, तुम्हारे पास लोग आएंगे और खुद से होगा। भाई यू कैन प्ले विद द पीपल दोस आर लाइक नॉट इवन गुड बेटर देन यू, बट उनके साथ भी यू कैन बिल्ड ए गुड टीम, यू कैन बिल्ड ए गुड टीम, समझ रहे हो? एज ए टीम बहुत अच्छे बन सकते हो कि यू कैन परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ लाइक। भाई इंडिया से खेलते तो है प्लेयर्स, स्क्रिम्स के टाइम पे बाहर की टीम्स के साथ खेलते तो है प्लेयर्स। वही मेरे ख्याल से रैंक इज नेवर लाइक द बेस्ट थिंग। कोई रैंक में कोई कितने भी टॉप पे है, यू कांट बी लाइक द बेस्ट उस चीज पे, बट इफ यू आर अ गुड टीम प्लेयर एंड इफ यू वन अ सिंगल टूर्नामेंट, यस टोमेटो, चाहे वो कंट्री लेवल पे भी हो जाए, देन यू टोमेटो आई हैव तुम लोग ऑटोमेटिकली नोटिसेबल हो जाते हैं, लाइक सपोज जैसे उसने बोला कि तुम गाइस, मैं टोमेटो का एक क्रिएशन दिखाना चाहूंगा टॉप में बैठा हुआ है, लो लिस्ट में बैठा हुआ है, तुम्हारा रेडिएंट रैंक है, एंड यू विल आल्सो बी देन गोइंग अगेंस्ट अनदर रेडिएंट्स ना, जो सेम तुम्हारे लेवल के रहेंगे, एंड देन तुम्हारे लॉबी में आएंगे, तुम्हारा बातचीत होएंगे, तुम्हारा कम्युनिकेशन अच्छा लगेंगे, तो उनको ऐड करोगे, उनके साथ खेलते रहेंगे और खेलते रहेंगे, वो कई और टीम का बंदा था, उसको अच्छा लगा, इन्वाइट करेंगे, एक स्क्रिम्स खेलने के लिए इन्वाइट करेंगे, रैंडमली एक स्क्रिम्स के लिए आ जाओ भाई, स्लॉट खुला है, वो आएंगे और तुम फाड़ेंगे उस स्क्रिम्स में, फिर बाकी लोग भी देखेंगे भाई इसने इंडिया से आके भाई हमारे टीम में फाड़ा, हमारी टीम को जिताया है, दैट्स हाउ यू गेट रिकॉग्नाइज्ड इन दोस एरियाज, और तुम आराम से वो बाहर का टीम में जा सकते हो। यही सेम चीज सिमर के साथ हुई थी, हम लोग काउंटर स्ट्राइक खेलते थे, और फिर ऐसे ही खेलते खेलते सिमर स्टार्टेड प्लेइंग विद टीम ब्रूटैलिटी, उस टाइम टीम ब्रूटैलिटी थी भाई देखो, और उनके साथ खेलने लग गए। हम सिर्फ इसको यूज करते हैं कैंडल जलाने के लिए, ठीक है, और कोई बुरे काम के लिए नहीं यूज करते हम इसे। ये देखो टोमेटो भाई ने बनाया ये, सेट द वर्ल्ड ऑन फायर, एब्सोल्युटली क्रेजी भाई, खेल के परफॉर्म किया, भाई ने पेंट किया इसे, was signed by team मैं इसे अपने दिल के बहुत करीब रखता हूँ, और अपॉर्चुनिटीज मिलती गई, एंड देन नाउ he's one of the top players। और मेरे को पता क्या लगता है, लाइक मस्त बनाया ना, आई डोंट नो, लाइक लोगों का ना, लाइक मेरे ख्याल से वही है कि लाइक डिपेंड्स ऑन द गेम टू गेम, बट इट्स ऑल अबाउट अ टीम ओनली, टू बी ऑनेस्ट, कि तुम एक टीम बना दो एंड जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। तुम
खुद ही जाते रहोगे, तुम्हारी टीम टूट भी सकती है आगे फ्यूचर में, बट मे बी यूल जॉइन अ बेटर टीम, मे बी तुम आगे मेरे को यश बोल रहा है भाई मैं एयरपोर्ट से कैसे ले आया हूँ तुझे नहीं पता भाई, माउस पैड में लपेट के लाया हूँ मैं इसे, और एयरपोर्ट सिक्योरिटी ब्रो, मुंबई एयरपोर्ट सिक्योरिटी, व्हाट आर यू गाइस ऑन, बंदा लाइटर लेके फ्लाइट में बैठा है। परफॉर्म करो। हाँ ऑब्वियसली ब्रो, लाइक एटलीस्ट परफॉर्म। उससे क्या होगा, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है भाई, काउंटर स्ट्राइक के ले लूं। हाँ मतलब लाइक यही होता था, कमांडर अरे बहुत सारे हैं। हाँ मतलब आई नो कमांडर, हाँ मैं सबको जानता हूँ सीएस वाले भाई। उनने मेरा बैग खुलवाया था कोई एक चीज के लिए, मेरे सामने मिली। हाँ मैं कुछ ला रहा था उधर से, थोड़ा लाइम जूस, तो उनने बोला ये दिखाओ हमें, उनने ये नहीं देखा कि ये है साथ में। यू नो हॉक्स एक प्लेयर है, वो दिखता रहता होगा तुम्हें टूर्नामेंट में, वैलो में हॉक्स। He played his first LAN with me in a CS:GO tournament, पता है? First LAN उसका था, मतलब he was a kid, छोटा सा बच्चा था वो। भाई स्मगलिंग हो गई भाई, लाइटर स्मगल करके आया हूँ मैं। आया था फर्स्ट टाइम, उसको हम लेके आए थे वहाँ से। And then Hawks हैंडबैग में हो गया, नाइट राइडर भी फर्स्ट LAN, मतलब वो मेरे साथ में रहता था। I was hosting that tournament, मतलब कॉलिंग कॉप्स राइट नाउ भाई, बहुत लोग ले जाते भाई गलती से लाइटर्स। शिवी तो लाइक बहुत लोग गलती से लाइटर ले जाते हैं अपने साथ, हमारे साथ हुआ था, मतलब आई यूज्ड टू प्ले विद हिम। ऐसा बहुत बार होता है, मेरे साथ भी हुआ है पहले भी। And he was there. मैं अपनी सेंटेड कैंडल जलाने के लिए लाइटर रखता हूँ अपने पास, बहुत वो था ब्रो, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स एयरपोर्ट सिक्योरिटी गेट्स इट। प्रोफेशनल उसमें वो टीम का मेन कैप्टन था मेरा भाई, केजी भाई। लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इतना टाइम इन्वेस्ट कर दो, आप बेस्ट बन जाओ, बट इन रिटर्न उनको क्या मिल रहा है यार इतना ग्राइंड करके? भाई उनका घर तो नहीं मिल रहा उससे। Exactly, मतलब they not even there, मतलब तुम देख रहे हो कि वो लोग आप तुम्हें दिखेंगे भी नहीं कि they're like they're not even focusing on सेंटेड कैंडल्स भी कैरी करते हो, वो अपना प्रैक्टिस करता रहता है हमेशा, they're still practicing right now, वो अपना भी खुद कर रहे हैं, तो उनका घर एंड वही तो मतलब लाइक वो खुद अपने आसपास गाइस मैच इज लाइव जो कि ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कोरिया जीत रहा है और ऐसे में अर्जेंटीना ये एक शुरुआती फाइट लेने भाई की कोरिया जीत रहा है, हमें तो देखना इंडिया क्या करेगी। इनके सामने कनाडा के प्लेयर के साथ उतरे हैं, अच्छे खासे लिए गए, लेकिन अब देखिए तैयारी कनाडा और इंडिया का ये है टीम वर्क, ये है चल ही रहा है, जिससे ये चाहते हैं प्रेशर बना सके। एक तरफ अर्जेंटीना के खिलाड़ी गोलियों से सामना करवाना चाहते हैं, वहीं पे गाड़ियां भी आ चुकी थी, लेकिन क्या कोई रिजल्ट आएगा? बहुत ज्यादा डैमेज दिया गया था, बट कितना मतलब बेहतरीन टीम वर्क वहाँ पे था कि इंस्टेंट उनको गाड़ी में बैठने का मौका नहीं दिया, बट स्टिल वहाँ पे ऑग वो रिलोड में गया, उसी के चलते थोड़ा जो अर्ली कैजुअलिटी का डर था टर्की के सर के ऊपर से वो जरूर निकल के गया है। आप सोचिए सेंटेड कैंडल्स आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, टर्की का एक खिलाड़ी खत्म हो जाता है, ब्रो स्मेल अच्छी आती है, ज्यादा मुश्किलें बन सकती है। टीम ऑलरेडी 11वें पायदान पर है, ये गेम ऐसा बन कनाडा इज लीविंग, इनको टॉप 8 में भी लेकर के आ सकता है पॉइंट्स के हिसाब से। आई एम होपिंग अभी तो मतलब रियलाइजेशन हुआ कि भाई लूज करने के लिए कुछ नहीं है, हावी होना चाहती है, इंडिया के अंक नहीं रहे हैं अच्छे, ये अब जग जाएगा, वैसे भी नाम भी खराब हो गया, क्या करेगी टीम इंडिया इसमें? अगर कोई एक ऐसा मैप है जो कि मेमोरेबल बना सकते हैं तो शायद ये वाला होना चाहिए। कुछ भी अगर अच्छा देखते देखते सर्कल भी यहाँ आ चुका है, भाई सिग्मा पर सीन होगा क्या गाइस? सर्कल बनता हुआ ऐसे एयरपोर्ट सिक्योरिटी का भी मेरे को कॉल आएगा क्या? देख सकते हैं ऑलमोस्ट सेंटर हमें नजर आएंगे अलोंगसाइड ब्राजील। मैं बहुत हसड़ हो रहा है यार लास्ट स्क्वाड में, ज्यादा उन्हीं के ड्रॉप पे भाई लेके बढ़ते हुए वो रोटेशन मुझे मैच सुनना है। यूएसए की अरे बट आरएनजी कर दो ऐसे, क्या उनको क्या फर्क पड़ रहा है भाई, कर दो मैच, क्या हुआ है? सारे के सारे प्लेयर्स एक्सपीरियंस जरूर है, बट एट दिस पॉइंट यूएसए को एक बेहतर मैच की जरूरत है। बट दूसरी तरफ टेबल टॉपर साउथ कोरिया होम ग्राउंड, मतलब मैं कुछ इलीगल नहीं लेके आया हूं, मैं सिर्फ एक लाइटर लेके आया हूं भाई। एक्सपेक्टेशन के साथ उनके फैंस आए उनको चीयर अप करने के लिए, उस एक्सपेक्टेशन को खरे उतर भी रहे हैं, जिस तरीके का परफॉर्मेंस वो दे रहे वो बाकी टीम्स को थोड़ा सा सेकंड थॉट जरूर दिलवा रहे कि क्या उनके साथ उनको फाइट एंगेज करना चाहिए या नहीं। जी बिल्कुल, किस तरीके से उनका जो डिसीजन मेकिंग है वो कितना ज्यादा हैम्पर। अरे हाइड्रा लाइटर तो किचन में भी होता है भाई, लेकिन क्या इस पूरी सिचुएशन में आप डेनमार्क को देखिए, क्लिप इनके लास्ट गेम में मेरे ख्याल से आखिरी खिलाड़ी बचे थे, क्या होता है? बीमी थे और बीमी लास्ट खिलाड़ी बचे हुए थे पिछले गेम किचन में होता मतलब बनाए, मतलब किचन में लोग की बदौलत गैस जलाने के लिए भी लाइटर यूज करते दूसरे हैं, पायदान पर आ चुकी है। हां तो मैं सेंटेड कैंडल जलाने के लिए यूज करता हूं ना। अगर थाईलैंड को भी एक अच्छा गेम मिलता है तो वो छठे पायदान से दूसरे पर आ सकते हैं, बशर्ते अरे पर मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं एयरपोर्ट से ले आया, तो दूसरे तीसरे चौथे पांचवें मैं हैंडबैग में मेरा लाइटर था, एयरपोर्ट वालों ने देखा नहीं। लेकिन हाँ साउथ कोरिया इस समय अपना वो जो तो मैंने अभी चैट को बताया, ऑन स्ट्रीम बताया कि मैं एक लाइटर ले आया, वो भी कस्टम लाइटर है, मतलब उसको मैं पीछे छोड़ के नहीं जा सकता। अगर खराब गए
ऑब्वियसली पास कमबैक तो अभी चैट बोल रही है कि भाई अब जेल होगी मुझे। आई तो लिटरली फॉरगॉट एक लगता है कि वो एंजॉय करने वाले, मुझे तो लगता है इस बार भी उसी एग्रेशन के साथ ही जाना चाहेंगे। उस एग्रेशन में देखिए अगर फाइट लेते हुए मर भी गए तब भी उनके पास वो सेफ्टी कुशन रहेगा। अगर फाइट लेते हुए ये वही है जैसे गूगल में नहीं होता ना, तुम कुछ भी छोटी बड़ी चीज के लिए गूगल करो तो वो कैंसर दिखाता है। अर्जेंटिना की बात करें, चैट तो वही है। डिसाइड करें कि मैं ये गाड़ी लूंगा, आप वो भाई दैट्स ट्रू भाई, दैट्स फकिंग ट्रू भाई। स्टैंड अप भाई उस दिन मुझे छाती में दर्द हो रहा था एसिडिटी की वजह से, चैट ने तो मुझे मार ही दिया था। जा सकते हैं भाई भाई मैं उस दिन पता है लिटरली मेरे ना ऐसे बट अभी के अंदर छाला हुआ भाई मेरे को, मैंने कहा यार 2 दिन हो गए चैट कह दी आरआईपी, हम उनको पकड़ सकते हैं। इस समय यूएसए के खिलाड़ी इमरजेंसी पिकअप का सहारा उन्होंने लिया है, जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है अर्जेंटीना और वियतनाम ये लोग मूव नहीं कर रहे भाई, उनका पीओवी तुमने देखा मैप पे आगे नहीं जा रहे थे। और अभी के लिए अर्जेंटीना आगे और वियतनाम उनके पीछे। वियतनाम को भी फाइट्स पसंद है, अर्जेंटीना को मोमेंटम पसंद है, देखते हैं क्या होता है। वियतनाम ने कहा था इससे पहले कि हम फाइट्स लेने के लिए आ रहे हैं, अगर वो यहाँ पे एंगेज करते हैं सर्कल से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। आज किसका है क्रिकेट का मैच, इंडिया वर्सेस श्रीलंका, वो पहुंच जाए। उसी के साथ साथ यूएसए भी अपना जो इमरजेंसी पिकअप का इस्तेमाल करके इंडिया के मैच सर्कल के अंदर एक अच्छा स्वीट स्पॉट अपने लिए ढूंढना चाहेंगे, उसके ऊपर व्हीकल्स भी सिक्योर कर लेना चाहेंगे। 5 सेकंड में जो वो सर्कल श्रिंक होना शुरू हो जाएगा। जैसे हम जानते हैं अगर आप सर्कल के बाहर हो तो डेफिनेटली आपको थोड़ी सी मुश्किलें फेस करनी पड़ सकती है, बट जैसा हम थोड़े अर्ली फेज में देख रहे थे इंडिया की जो खिलाड़ी श्रीलंका 12 रन्स 5 विकेट हो चुकी है। अभी भी थोड़ी सी हलचल चली, वाइल टर्की की टीम जो रोटेशन है वो पीसफुली दे रहे, 5 विकेट गिर चुकी है उनकी, ज्यादा उनको फिक्र करने की जरूरत नहीं रहेगी। तुर्की के स्कोफील्ड ऑन बजाते हुए क्यों जा रहे हैं मुझे ये जानना है। उनके टीम में से उनके आसपास है, वो जस्ट एक बॉलर ने हमारे 3-4 विकेट ले ली, जा रहे हैं, ठीक है। हाँ एक बॉलर अभी के लिए खिलाड़ी डेफिनेटली मूव कर रहे हैं, जोन के अंदर है, नॉर्दर्न साइड से इन्होंने एंट्री ली है, तो कोई दिक्कत भरा सबब होगा नहीं, बस इनको ढूंढने हैं अच्छे खासे घर। सिराज पबजी पीसी के अंदर एक चीज है जो कि बहुत ज्यादा रहती है, पहला सर्कल उतर के आपको अपने ड्रॉप्स पर लूट करनी है, सेकंड सर्कल और थर्ड सर्कल आपको जोन में अच्छे घर ढूंढने हैं, फोर्थ सर्कल से होती हैं आपकी फाइट्स। हाँ, उससे पहले अगर आप रोटेशन में पकड़े गए अलग बात है, बट फोर्थ सर्कल इज द वन जब से आपकी फाइट्स होनी शुरू होती है। तो ये पहला सर्कल है जो कि खत्म होगा, दूसरा बनेगा एक ओवर में 4 विकेट, गॉड डैम ब्रो। फिर सेकंड और थर्ड सर्कल का अगर सेफ्टी कुशन मिल गया तो ठीक है, अन्यथा दिक्कतें बन जाएंगी खिलाड़ी। क्रिकेट की वॉच पार्टी भाई एक दिन होगी देखना, बट जिस दिन क्रिकेट के व्यूज नीचे जा रहे होंगे ना तब होगी। हो चुका भाई, फिर ये दिन तो नहीं आने वाला, ये दिन नहीं आने वाला है, तो बहुत लंबा टाइम है अभी इसको भाई, बहुत मुश्किल है क्रिकेट के, पता है राइट्स कितने जब नेक्स्ट जनरेशन आएगी ना, अभी देखो अभी ये जनरेशन क्रिकेट थोड़ा कम ही देखती है, उसके अगले जनरेशन और कम देखेगी, तो शायद चांसेस होते हैं। बट ब्रो सीन दो जनरेशन गैप चाहिए, फिर भी पता नहीं कि क्या होगा। क्रिकेट को ना कभी इंडिया में कम नहीं होने देंगे, अभी भी टॉप पे ही चल रहा है क्रिकेट। इंडिया में क्रिकेट इज लाइक गेमिंग में पबजी मोबाइल। जापान 14वें पायदान पर है, तो वो कभी भाई पबजी मोबाइल और क्रिकेट को मत कंपेयर करो भाई। आई एम नॉट कंपेयरिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट मैंने तो गेमिंग में बोला बाकी टीमों के ऊपर हावी होना चाहिए, हमें तो अब फाइट लेनी है। आई एम टॉकिंग अबाउट द नंबर्स वाला, मतलब मैं डिफरेंस की भी बात करते हैं, बहुत क्रिकेट की जो ऑलमोस्ट सारी टीम्स जा चुकी हैं एक्सेप्ट जर्मनी एंड इंडिया, इसकी जो राइट्स पे बिकते हैं ना स्टार स्पोर्ट्स वगैरह पे भी, इसके अलावा सारी की सारी टीम्स आपको सर्कल के अंदर देखने मिल जाएंगी। थोड़ा सा स्लो रोटेशन अभी इन तीन टीम्स की तरफ से देखने जरूर मिल रहा है भाई। अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, इंडिया ने 1v4 कर दिया, 8th पोजीशन पे है अभी, बट जिस तरीके का गेम उन्होंने पूरे पीएनसी में अभी तक दिखाया है, लग रहा था कि शायद से क्या टॉप बात 3 कर रहे हो कंटेंडर्स में से एक बन सकते हो। हाँ डेफिनेटली, ऑस्ट्रेलिया के अंदर काफी ज्यादा अच्छे खिलाड़ी भी हैं जिनकी हम बात करते होते हैं, कहीं ना कहीं करते रहते हैं कि लोगों को कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म में कर सकता हो और देखना बस यही था कि किस तरीके से कोशिश भी करी थी, मतलब स्पोर्ट्स वाला कुछ भी होता है ना, इसके राइट्स होते हैं आए हैं, तो लाइव खिलाड़ी पर आता लाइव वाला पार्ट तो योर चैनल कैन बी टर्मिनेटेड जाते हुए देखा है। आई मीन दैट्स पॉसिबल बिकॉज़ बहुत सारे जैसे YouTube पे मुझे वहां पे खिलाड़ी दिखे, अब वो हमसे आगे हैं, बताइए करना क्या है, टोटल पॉइंट्स बताओ ना कोई इंडिया का, या फिर नहीं, ये टोटल पॉइंट्स ही है, ये एक मैच का पॉइंट्स नहीं है। कुछ आकर के टिक जाएगा जर्मनी, ये टीम मूव करती है, और जापान आप नॉर्थ ये लेफ्ट में दिख रहा है ना टोटल पॉइंट है, पानी में चले गए 15 गेम्स का, 14 गेम्स का, ये 15 बार। बट जो अब बारी आ जाती है कि चलो जापान नॉर्दर्न साइड से भी एंट्री लेना शुरू करेगा, बट मीनवाइल इंडिया इज आउट ऑफ द जोन बाय द वे, जोन के बाहर से आ रहे वो सीधा यूके के सामने यानी यूनाइटेड किंगडम के टीम के सामने जाएंगे। ये लेफ्ट में ब्लू ब्लिंक हो रहा है ना इंडिया का नाम, यूनाइटेड किंगडम थोड़ी सी परेशानियों में, कठिनाइयों में पड़ते हुए हमें टीम नजर आ सकती है, वाइल अर्जेंटीना वो भी कुछ
इंडिया ही आउट ऑफ खासे जोन पोजीशन में नहीं कहूंगा क्योंकि पीछे लेके जर्मनी भी आ रहे हैं उनके सामने चाइना की टीम उनका इंतजार करेंगे सो अर्जेंटीना एक उनके पास भाई चांसेस है यार, चांसेस है वो चाहे तो जर्मनी के साथ ये फाइट ले it's not like Korea is going to dominate every map. आ रहे हैं वो अर्जेंटीना को थोड़ा सा परेशानियों में डाल सकते हैं। Vietnam looks good, Argentina looks good, Germany is still looking good. जर्मनी को पॉसिबल है, पता है अभी इनको गाड़ी उड़ानी पड़ेगी। की टीम वहां पे रुक सकते हैं वाइल गाड़ी उड़ा के यहाँ रुके जरूर है ओशन एंड शायद से वो कोशिश करेंगे कि अगर किसी भी प्लेयर को वो स्पॉट करे जर्मनी शायद से इस एक फाइट में अपना इन्वॉल्वमेंट दिखा सकते हैं। देखते हैं किस प्रकार से वो फाइट ले पाएंगे। जर्मनी के ऊपर ही सारी नजरें टिक जाती हैं, लेकिन इस समय टीम इंडिया अराउंड द सर्कल जो मूवमेंट कर रहे थे अगले 20 सेकंड में जब सर्कल बनेगा देखेंगे कि क्या ये जहां पर पहुंचे हैं वहां जोन इनका स्वागत करता है या फिर जोन इनसे दूर भागता है, क्योंकि अगले बट वी आर इनसाइड द जोन सो दैट्स गुड। 9 सेकंड और उसके अंदर अगला सर्कल भी बनता है। अभी ऑस्ट्रेलिया हैज रियलाइज्ड दैट हम लोग वहीं रुक रहे हैं, हम लोग वहीं रुक रहे हैं, वो सर्कल सही रहेगा, हम लोग रुक गए हैं। सारी टीम आज को, और ये पहला गेम है जब 10 मिनट में एक भी फाइट नहीं हुई है। 16 ऑस्ट्रेलिया निकल रहा है, ऑस्ट्रेलिया निकल रहा है, दे आर अवॉइडिंग दिस फाइट। इंडिया भी निकल गई, हाँ इंडिया भी निकल रही है, ऑस्ट्रेलिया भी निकल रही है। शायद जो आप कह रहे थे कि जापान को शायद एक बेनिफिट अगर थोड़ा और टाइम होता ना तो ऑस्ट्रेलिया प्रोबब्ली थोड़ा तो पीक करता उनको। सारे टीम्स है यूनाइटेड किंगडम साथ ही साथ कनाडा। भाई देखो दिस इज अ गुड सिचुएशन टीम आते जाएंगे क्योंकि यूके भी आगे जा रहा है। ये बहुत सारे फाइट्स को अंजाम देने सब क्लस्टर होने वाला है भाई, तुम देखो नीचे नजर आ सकता है। ब्राजील की टीम कितने लोग रोटेट कर रहे हैं, उनके सामने बहुत सारी टीम है। कनाडा का रोटेशन आता है यूनाइटेड किंगडम की टीम के सामने से एयरपोर्ट पे आएंगे कि रहेंगे कि कोई भी फाइट्स में नहीं यूएसए को इतना वैल्यू नहीं मिलने वाला है यहाँ पे अभी के लिए, तो लेकिन यहाँ पर मिल सकता है, मिल सकता है। आप देखिए यूनाइटेड किंगडम के हनी बैजर सिर दर्द बनाने की कोशिश भाई इंडिया का बेस्ट अभी अपॉर्चुनिटी है, सब बिजी है, लेकिन पीछे यूके के हनी बैजर देख रहे हैं, शॉट्स लिए एसकेएस का इस्तेमाल किया। ये क्या जा रहे हैं, 4 गाड़ी में जा रहे हैं, वो किसी पे जाके लग नहीं सके। वहीं पे प्लेयर्स अभी भी अपना निकालते हुए यूएसए के स्ट्रीम्स की कोशिश करते हुए। ओके यूएस को इतना भी कामयाब अभी भी वैल्यू नहीं मिला, कोई भी किसी को पकड़ नहीं पाया। डेनमार्क अपने लिए एक हल्का सा सेफ स्पॉट ढूंढना चाहते हैं इस ओपन फील्ड में, क्योंकि अवॉइड कर दिया भाई, एवरीवन अवॉइडेड यूएस सक्सेसफुली। ज्यादा टीम्स आने की कोशिश नहीं करेंगे इस चीज को सोच के कि शायद से वहां 2 से 3 टीम होल्ड कर सकते हैं, बिकॉज वो एकमात्र एक बहुत बड़ा कंपाउंडेड एरिया है जिसमें शायद होल्ड कर सकते हैं। ऑलरेडी अगर हम बात करते हैं डेनमार्क के खिलाड़ी को ऑलरेडी टेक डाउन किया गया है। कम ऑन मैन, बात करते हैं IFP 1 की ब्राजील की तरफ से, जैसे हम हर बार कह रहे थे कि बेहतरीन स्टार्ट दिस कुड बी इट, वी नीड वन गुड गेम। ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी जंग छेड़ चुके हैं क्योंकि यूके द्वारा कनाडा के फिना को फिनिश ऑफ किया जाएगा। चाइना भी चाइनीज ताइपे के आरकेएस को टेक डाउन करते हुए नजर आएंगे। डेनमार्क थोड़ी सी कठिनाइयों में हमें नजर आएंगे चारों तरफ से। ब्राजील यहाँ ये मैप पे लास्ट जोन तक बहुत टीम्स बचती है एक्चुअली, डेनमार्क लॉट ऑफ कवर हियर एंड देयर, बहुत ज्यादा मुश्किल में तब्दील हो रहा है। और राइट जा रहे हैं, देखिए किस प्रकार से इस समय टीम्स और आगे जा रहे हैं, गेम बनाती हुई नजर आ रही है। अर्जेंटीना की बात करें कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं कि जो तुम्हारे जो माइक है दोनों में, आर यू यूजिंग एनी फिल्टर ऑन OBS एज वेल? या आई एम यूजिंग अ फिल्टर ऑन OBS। ओके मतलब लाइक टू सप्रेस द ऑडियो बैकग्राउंड वगैरह। हां बैकग्राउंड ऑडियो सप्रेस, बट इस डायनामिक माइक में जरूरत नहीं। इनके पास श्योर है ना हेडफ्लिक्स, इनके पास श्योर वाला है। किनके पास श्योर वाला है? सिक्योरियर के पास है श्योर वाला। तेरे पास भी तो श्योर वाला है। नहीं दिस इज नॉट श्योर। ये कौन सा है ब्रो? This only costs 6,000 rupees and it's almost as good as sure. दूसरे पायदान की टीम आपको याद दिला दें, अगर गई तो बहुत भारी नुकसान होगा डेनमार्क को। भेजता मुझे लिंक भेजता। हाँ सेम, it actually sounds like sure dude, similar है बहुत। आगे बढ़ा है सेकंड स्पॉट के लिए और ज्यादा compete करे एंड कोशिश करे कि साउथ कोरिया से जो डिफरेंस उसको जितना ज्यादा हो सके कम कर सके। चाइना Also it's got type C and XLR both। यहाँ पे एक्सेल लेफ्ट। ओह डैम, दोनों है इसमें। हाँ दोनों को सेपरेटली अलग-अलग पीसी में यूज, हाँ इंटरफेस यूज करो, नहीं XLR से कनेक्ट किया। और तुम इसे दोनों में यूज भी कर सकते हो, मतलब एक पीसी में टाइप सी जा रहा है, एक पीसी में XLR जा रहा है, दैट वे यू कैन। इंडिया का पोजीशन देख रहे हो? बात करेंगे साउथ कोरिया के खिलाड़ी को टेक डाउन करते हुए। आइनॉनिक्स का यहां पे ओके जापान एग्जैक्टली ईस्टर्न कॉर्नर पे है, बट ये कुछ ज्यादा ही लंबा 2-2 स्प्लिट जाएगा नॉर्दर्न साइड में, जहां थाईलैंड मूव करना पड़ेगा बहुत बड़ा स्प्लिट हमें लेते हुए नजर आएंगे नॉर्दर्न साइड पे। बट कहां से घुसेंगे अभी? सर्कल के बाहर वेस्टर्न साइड में नजर आएंगे।
इस पूरे अभी निकलना पड़ेगा इनको, शायद अभी निकलना पड़ेगा। थोड़ा स्प्लिट होने लग ऑनेस्टली चुके उनको हैं वैसे एक स्प्लिट दूसरे खेलने से, में ज्यादा फायदा नहीं है। लेकिन But they should leave right now, के साथ होना अभी जरूर चाहिए। What? जैसे US is zone में moving. वैसे US is move moving. करना पड़ेगा। बट अर्जेंटीना जो मूवमेंट कर रही है, या तो इनके लिए बहुत टाइम ही ही नहीं है, ज्यादा अभी सही निकलना रहेगी कि पड़ेगा टीम्स को उनको, I बैकएंड guess। से पकड़ सके, निकल या ही फिर रहे बहुत हैं। ज्यादा खराब। और यहीं पे यूएसए तो सर्कल कोरिया के में खिलाड़ी 5 move विकेट। करने की पूरी Let's go. कोशिश कर रहे हैं, क्या वो निकल पाएंगे? जितना जल्दी निकले उतना उनके लिए भी और अच्छा बेटर रिवाइवल पोजीशन दिए है जाने हैं। कनाडा के द्वारा डेनमार्क को अभी भी दिक्कतें दी जा रही है, जहां पर गस्ताव को अभी खत्म क्रिकेट किया मैच जाएगा। चल रहा है। और इसी के साथ डेनमार्क को झटका लगता हुआ अच्छा, वो साउथ edge में कोरिया को चलेगा भी भाई, झटके center लगे हैं, forward जैसे कि हमने बात करी। कौन जल्दी सा से है? जल्दी Fifine अपने के teammates तक पहुंचना 688। चाहेंगे, लेकिन वियतनाम काफी करीब आ चुके हैं उनके। साउथ कोरिया भी अपने आप को थोड़ा सा क्या सेफ गार्ड नाम कर रहे हैं, है भाई, सर्किल net के लेके ऑलमोस्ट 5 सेंटर में आ चुके हैं। आराम से आयोनिक्स को यहाँ रिवाइव दिया जाएगा, बट देखते देखते वो वियतनाम Behringer, जिन्होंने क्लोज इन किया था, सबसे उनके सस्ता वाला। आस पड़ोस में टर्की की टीम भी हमें नजर आएगी। वो पुराना जो मैं यूज करता था MXL के साथ, तब ये वही वाला खिलाड़ी है। वापस पापा इनको और यहाँ भाई स्टेप चिल्ला इन रहे, करना कुछ हो रहा है पड़ेगा क्या ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट को थोड़ा सा ज्यादा पॉइंट सीन है दिलाने के लिए। सामने डेनमार्क के खिलाड़ी और एक विकेट मिला स्पॉट आउट किया गया है यहाँ पे। 7 विकेट, 6 विकेट। आउट करके ही आगे बढ़ने अबे का कदम बढ़ते कैसे लेंगे। जा रही है? तो एक बंदे ने बहुत पहले ज्यादा रखा 5 विकेट, फिर 6, फिर 7, फिर 8। आपको इस मैच से बाहर कर 6 विकेट हो चुके हैं। बिल्कुल, What the एक छोटी सी fuck, गलती आपको कहीं ना कहीं 6 इस विकेट? गेम से बाहर कर सकती है। और इसी गेम के खत्म होने पर आज के दिन के भी 50% गेम्स जो हैं आपके वो खत्म होते नजर आएंगे। टूर्नामेंट तो कब का कहीं ना कहीं कुछ टीमों से तो दूर जा ही चुका है। भाई 12 रन पे बाकी टीम लड़ाई कर रही है, वो इस तरीके से अपने टीम के ऊपर, अपने ऑपोनेंट के ऊपर इनफैक्ट प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं और अपने मैच के लिए सही करने की गेम को कोशिश कर रहे हैं। भाई सारे बैट्समैन तो गए उनके, लेकिन की बैट्समैन सारे चले गए, अब क्या करेंगे? ऑल आउट कर देंगे भाई। 50 भी नहीं होने देंगे मेरे को लग रहा है। अभी बैट्समैन होना चाहिए ना ढंग का। जल्दी हो सके उतना Oh my God, bro, वही तो मैं कह रहा हूं, इनको आउट करना तो इनके लिए आसान ही काम है। बुमराह को हाई ग्राउंड किसी में को मिल रहा है, थोड़ा फायदा उठा सकते हैं, पर अभी भी अर्जेंटीना के खिलाड़ियों के लिए स्पॉट चले। बट भाई ठीक क्या की बात पता आज करी ही है, बन जाए वर्ल्ड स्पॉट रिकॉर्ड। किया है ब्राजील के खिलाड़ियों को। एंड डेनमार्क को ये फाइट All चलना out पड़ कर दी सकता है। टीम 20 सामने रन पे कनाडा भाई। की टीम भी उनके लिए मौजूद जरूर रहेंगे, बट एट द वेरी मोमेंट पहले ओवर में जीत गई। वियतनाम एक अच्छा स्पॉट है, 2-2 स्प्लिट में रहेंगे। दो खिलाड़ी कंपाउंड मैन हाइसाकी पहले में क्या जीते, कर चाहिए तो बॉल होती है। थोड़ा सा क्यों मिलेगा, बट जर्मनी के को यहाँ पे बॉल में टीम को तीन टेक डाउन मार करते देखा हुए था। नजर आएंगे ओ अच्छा अर्जेंटीना। वो कह रहे भाई आई बिलीव यार, भाई आई बिलीव ये मैच में कुछ होने वाला है भाई अपना। और कोई भी टीम इस Bro, समय मेरे को लग रहा है से इस बाहर वाले होने मैच का में इस वाले में लग रहा है मतलब रही है। मिनिमम भाई 5 पॉइंट तो ले जा रहे। कहीं ना कहीं ऐसा बन चुका है जो गेम के अंदर आपकी भाई मैं चाहता हूं कि और अंडरस्टैंडिंग एक टीम तो एलिमिनेट करके जाने वाले इस बार। बट अगले जोन में तो फाइट होनी लाजमी। हमने तीसरे चौथे सर्कल की बात करी थी कि तब जाकर के फाइट होती है। तीसरा सर्कल से चौथा आ चुका है, अब फाइट होनी लाजमी रहेगी जरूर। कोरिया के पास अच्छी जगह है, उनके पास वापस से 4 खिलाड़ी हैं और सर्कल भी कोरिया को गले लगाता है। नाम एक्चुअली अब ये मुश्किल होने वाली है बहुत सारी टीम के लिए, स्पेशली सदर्न साइड में रहने वाले इंडिया के पास एक बहुत अच्छा मौका हो सकता है कि वो यूनाइटेड किंगडम की टीम को इस वक्त अगर वो कर पाते हैं तो 4 बेहतरीन किल्स अपने नाम लिखे जा सकते हैं इंडिया की टीम। बट ऑन द अदर हैंड चाइना की टीम कोशिश करे कि कोई भी रोटेशन को वो रोके, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया Okay. रोटेट करते हुए नजर आए थे। Okay. It has started, boys. रैक्सल नॉक हो चुका है, बट इंस्टेंट ट्रेड टी-बोन से रेक्सल को नॉकआउट जरूर किया गया है। नेट डाला गया है बट फिनिश नहीं मिलेगा। रैक्सल विल गेट रेस्ट प्रॉब्ली हियर। हो सकते क्योंकि यूनाइटेड किंगडम चार्ज इन करते हुए यूके इज मूविंग। ये ग्रेनेड देखिए टफ स्पॉट खराब कर सकता था चीजें। एक अच्छे ऑफ एंगल से फाइट्स ले रहे हैं। वो दूसरे खिलाड़ी को भी नॉक करेंगे। हनी बैजर के ऊपर आता है प्रेशर, लेकिन उनके पास जगह अच्छी खासी है। डैमेज दिया है, लेकिन ये अगला ग्रेनेड जो है वो फॉलो अप में चीजें खराब कर सकता है। एक स्मोक किया गया, गेट्स वन मोर। बैकएंड से आए वॉर्ड। यूनाइटेड किंगडम ने पूरे तरीके से जकड़ लिया टीम इंडिया को और बाहर का रास्ता दिखाया गया। देखो भाई एक अच्छी फाइट जो इनिशिएट की गई थी टीम इंडिया की तरफ से, उसको कंप्लीटली डिनाई करके यूनाइटेड किंगडम ने अपना खाता खोल जरूर लिया। बट इसके साथ साथ डेनमार्क अग्रेसिव अप्रोच है ब्राजील के खिलाड़ी। सलमान भाई बात में गाड़ी पे क्यों बैठ जाते हैं? अच्छा खासा करेक्शन दे सकते हैं। नेट पर रेड किया जा रहा है यहाँ पे। ब्राजील मजबूर किया गया उनको फॉल बैक करने के लिए, कोई और ऑप्शन उनके पास मौजूद रहेगा नहीं। बट फिलहाल के लिए इस फाइट से बात पे गाड़ी पे बैठ जाते हैं भाई। अगर ज्यादा देर करे चाइनीज ताइपे की टीम ऑलरेडी पीछे दस्तक दे। कुछ तो रिश्ता है इसमें, कुछ तो रिश्ता है। कहीं ना कहीं खिलाड़ी भी आ रहे हैं जिनको जोन के अंदर जितना जल्दी पहुंचना हो तो इमरजेंसी पिकअप्स के भी इस्तेमाल किए गए थे। चाइना के खिलाड़ी पहुंच चुके हैं, उतर रहे हैं। सलमान भी लाइक अपनी पे आओ क्या? साउथ कोरिया के घर पे दस्तक दे रही है और ऐसे में साउथ कोरिया को दिक्कतें दी जाएंगी। जी बिल्कुल, एक लेफ्ट एक खिलाड़ी को नॉकडाउन करते नजर आएंगे। साउथ कोरिया के पास वो सेफ्टी कुशन है गेम्स का। और वहीं पे जोन से जूझते हुए डेनमार्क मूव कर रही है ब्राजील के बिल्कुल सामने से।
खिलाड़ी जाते India still got 2 points by the way guys. पड़ेगी, लेकिन क्या उन्होंने देखा नहीं, उनके साइड में खिलाड़ी है, 2 मिले ना, ब्राजील को दिक्कतें देते हुए 11 से 13 पे आया, लाइन से दिक्कतें उनको भी दी जाएंगी। डेनमार्क का हुआ एलिमिनेशन, दूसरे पायदान की टीम सेकंड लास्ट पोजीशन पर इस गेम में बाहर। ये बहुत बड़ा झटका है डेनमार्क के लिए, बट अभी के लिए देखा जाए ब्राजील वो भी बताओ भाई आईफ्लिक्स भाई, आप एनालिस्ट हो, आप जर्मनी गाड़ी तो चला रहा है क्या हो रहा है जर्मनी के साथ भाई? उतर रहे गाड़ी। अच्छा आईफ्लिक्स भाई, आप काफी गेम नॉलेज रखते हो, आप ई-स्पोर्ट्स ट्रेन करते हो एथलीट्स को, बताओ यहाँ पे क्या मिस्टेक हुई है फाइट में? आपने पूरी फाइट देखी इंडिया का? अरे अगर सलमान वहीं पे रहता ना तो भी चल जाता, और बैकफिल हो रहे करके पता है, 3 बंदा वहां पे, पूरा नेट भी बरस रहा है यार, 3 बंदा वहां पे उसी दीवार के पीछे ही बैठा रह गया। रक्सियाल जहाँ पर नॉक था वहीं पे खड़े हैं बंदे अपने। मेरे को तो लग रहा था कि नॉक हुआ ना, तुरंत ये सोचा कि भाई मैं तो कल बोल रहा था ये, रक्सियो उठाने को देखता है, ऐसे मैं कल बोल रहा था ये कि हम पहले रेस के लिए जाते हैं फिर फाइट के लिए जाते हैं, वो गलत होता है हमारे साइड से। लाइक हम सारे प्लेयर्स ऐसे ही खेलते हैं, उठाने के लिए वही पोजीशन ले रहे हो, वहीं पे नेट खा रहे हो, फिर वापस एचपी खत्म हो गया, वापस हील करना पड़ेगा। हाँ इतना टाइम में फर्स्ट नॉक है ना, आराम से कर रहा हूँ। हाँ फर्स्ट नॉक भी है, वो भी बात है। वो हमारी पर सब सारी टीम, कोई भी इंडिया की टीम को देख लो ना, सब रेस के लिए जाते सबसे पहले। क्या बीजीएमआई में भी? नहीं बीजीएमआई का पता नहीं, पबजी पीसी में तो जितना मैंने नोटिस किया है बहुत लोग रेस के लिए जाते हैं। बीजीएमआई में इतना ये नहीं है ब्रो, बीजीएमआई अच्छा खेल रहा है बंदे, भाईचारा बोलते हैं भाई। ओह भाई क्या नेड भाई यहाँ पर बाय द वे कोरिया की थोड़ी सिचुएशन खराब लग रही है। हाँ बट लीड तो लेके रखा है ना, तो वो लोग तो मर गया, और डेनमार्क भी मर गया। कोरिया गया ब्रो, कोरिया तो गया, डेनमार्क गया, बट दे हैव ऑलरेडी गेन्ड द लीड। वियतनाम का चांस है भाई, अर्जेंटीना का भी चांस है, अर्जेंटीना वियतनाम दोनों का चांस कोरिया का बराबर की आएगा। वियतनाम पे ऑलरेडी 2 किल्स भी है। टर्की गया, टर्की गवान एलिमिनेटेड। भाई कनाडा अपना ऊपर है, वो लोग भी मार रहा ब्रो। वो 30 लोएस्ट स्कोर इज बाय 35 बाय जिम्बाब्वे। गेन कर रहे हैं वो जिम्बाब्वे। हाँ तो अभी मतलब हो सकता है ना, और हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं। ऊपर लेके जा रहे, बट दूसरी तरफ अगर हम अर्जेंटीना की बात करें, ऑलमोस्ट एंट्री लेने वाले हैं कनाडा के शिनबॉय के पास, और कोई मौका नहीं है, उनको आगे सर्कल के अंदर बढ़ना पड़ेगा। बट वियतनाम की टीम इन दोनों टीम को गेट कीप करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। रिवाइवल एक मिल जरूर जाएगा, बट शिनबॉय की नजर है आगे की तरफ, उन्होंने कनाडा के ओए डेंजरस बट इज इन द चैट बॉयज किया है। खिलाड़ी बचे हैं कनाडा के, अभी उम्मीद है टिकी रहेगी, बट थाईलैंड अपने लिए बहुत कोजी कॉर्नर उनको मिल चुका है। नॉर्दर्न साइड में कुछ ज्यादा टीम्स मौजूद है नहीं, तो उसका फायदा वो ले सकते हैं शायद। मेरे को आइडिया नहीं है, आए थे ना रेकनिंग के साथ आए तो थे। अच्छा नहीं मारा, ऐसा हमारा मीट एंड ग्रीट नहीं हुआ। अच्छा लेकिन किस प्रकार से खिलाड़ी खेल पाएंगे इस एक्साइटिंग सर्कल में, क्योंकि फार्मलैंड्स के एरियाज हैं, तो आप देखिए कवर ज्यादा बनते नहीं है, ओपन एरियाज के अराउंड आपको फाइट्स नहीं पड़ सकती है। रिबॉक्स की तरफ से अभी भी कोशिश थी, और शिनबॉय को किया जाएगा डाउन। अलीर बोले मैं क्यों पीछे रहूं, उन्होंने भी किनन को पिक किया जरूर है, और ऐसे ही कनाडा के ऊपर आ चुका है एक बहुत भारी संकट जो अर्जेंटीना नामक है। एडम जोन के बाहर हील करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में स्प्लैश डैमेज भी पड़ा। अगर हाइड्रा भाई ये स्किल इशू कैसे फिक्स करेंगे हम भाई? हमारे अब ई स्पोर्ट्स के मामले में तो हमारे खून में है। वियतनाम के लिए एक बहुत बढ़िया मौका है कि वापस अपना जो मोमेंटम है उसको नहीं बता सकता भाई, इसमें कुछ भी मेरी एक्सपर्टीज नहीं है भाई इसमें। अब अंदर वो लेके आए, बट कनाडा अभी मुझे लगता है मुश्किल हो सकता है एडम के लिए, बट पहले ही माइट सर्वाइव 5 एचपी में। देख के बोलना तो आसान ही होता है चैट, मुश्किल तो है। इंतजार कर रहे हैं, हल्का सा कवर है उनके पास, बट वापस स्विच की तरफ देखा, ऑस्ट्रेलिया की माइट जरूर दिखाई के ऊपर, बट जिस तरीके से उन्होंने उसका काउंटर निकाला, ऑस्ट्रेलिया को मानो मौका ही नहीं दिया कि उनके पंजे खोलने का। काफी ज्यादा दिक्कतों के अंदर कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया आ ही चुकी है। थाईलैंड इनके खिलाड़ी ले रहे हैं फाइट, नॉरेंस अभी भी देखने की कोशिश, ओपन में दिखेंगी उनको गाड़ियां। Yes, I was there. I met Sikbaji for 2 minutes. अब जाकर के जी हां भाई मिल लेते यार हमसे भी, इतने टाइम चैट में देखा है तुम्हें, मैंने साल से देखा है। थाईलैंड का एनाइलेशन मां कसम हो गया था, बट डेफिनेटली एट दिस पॉइंट वियतनाम की पोजीशन की हम बात करें ओशन,
अपने आप को अभी भी एक अच्छे खासे सेफ स्पॉट पे रखे। अर्जेंटीना के आने का आभास उनको हो चुका है। इसका इवेंट आज लास्ट है ब्रो, 3 दिन का इवेंट था। कॉन्स्टेंटली कनेक्ट करने की कोशिश है अर्जेंटीना, बाल बाल बच तो जा रहे, बट कितनी देर तक बचेंगे? एक तरफ से चाइना, दूसरी तरफ से वियतनाम, एंड वियतनाम के पीछे से यूएसए भी थोड़ा सा हाथ खोलना चाहते हैं, बट क्लोरीज रीबो को टेक डाउन करेंगे। एमिक्स को भी यहाँ पे किक स्टार्ट के द्वारा नॉकआउट किया जाएगा, यानी अर्जेंटीना 2 टीम से घिर चुकी है। मोटर डालने की कोशिश। घोसली भी आया था। हाँ, घोसली के साथ तो हम बैठे ही थे। ये है कि ये मोटा डैमेज कहां पर करेंगे, किसके ऊपर जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी ओपन में हैं, बट दिस इज वेयर इट कम्स डाउन। ओह barely अर्जेंटीना के पास अभी भी मौका। हाइड्रा भाई को देखा अपन मिला नहीं बैंगलोर में सीएसगो इवेंट में के द्वारा स्काई स्पोर्ट्स। थोड़ी देर पहले इंटरव्यू में बोल करके गई है, लेकिन यार मुझे मेरा थोड़ा ग्रिप गेम थोड़ा स्ट्रांग करना पड़ेगा यार इवेंट्स पे। वाली बात रहेगी। वहीं पे यूएसए, मेरे पास कपड़े ही नहीं है यार, कोई किल नहीं था उनके पास, अब जाकर के खाता खोला गया। थाईलैंड का हुआ एलिमिनेशन चाइना के द्वारा, एंड ये थोड़ा सा और मुश्किलों में डाल सकता है। चाइना की शो अभी भी सर्कल के बाहर है, एंड एक्सलेफ थोड़ा सा आगे खेल रहे हैं। आखिरी उम्मीद अर्जेंटीना के 2 खिलाड़ी बचे हुए हैं, सर्किल के अंदर ऑलमोस्ट आ जाएंगे, बट एक्सलेफ का कोई भी अता पता किसी को नहीं है। नेड ऑलरेडी आ रहा है, एक्सलेफ आते ही पूरी की पूरी अर्जेंटीना को वापस लॉबी का रास्ता दिखाएंगे। एज चाइना 9 किल्स तो ऑलरेडी आ चुके हैं, उसमें से 7 एक्स लेफ्ट के रहने वाले हैं। चाइना की उम्मीद अभी भी इस्तेमाल किया वियतनाम की तरफ से एक्सलेफ ही गोस डाउन। भाई ये चीज बहुत ओपी है। काफी कम हो चुके हैं यूनाइटेड स्टेट्स है, बट वियतनाम ने बोला था कि हम आ रहे हैं डोमिनेटिंग गेम प्ले दिखाने, हम आ रहे हैं कोरिया को एक जवाब देने, लेकिन शायद यूएसए उस चीज पर ऑलरेडी रोक लगाती नजर आ सकती है। ग्रेनेड्स किए जा रहे हैं, एक और ग्रेनेड अगर थोड़ा सा आगे जाए तो वियतनाम के लिए खराब स्थिति बन सकती है। ऐसे में आप यूएसए का स्प्लिट देखें, 3-1 का स्प्लिट हो चुका है, एक खिलाड़ी आगे है, यूएसए की टीम भी धीरे धीरे करके सर्कल के अंदर आ रही, बट पीछे तो कुछ और ही हलचल है। एक तरफ जापान, एक तरफ यूनाइटेड किंगडम सर्कल के एक्सट्रीम एंड्स पे आपको नजर आएंगे, जो सर्कल के अभी के लिए बाहर है। स्नेकर्स के पास ये AWM है, एक ओपनिंग की तलाश यूएसए को जरूर से रहने वाली है। चाइना इंतजार करेंगे कि वियतनाम के ऊपर जब कोई फाइट आएगा उसके बाद ही वो आगे आएंगे, बट जापान सर्कल के अंदर अब आएंगे तो आएंगे कैसे, क्योंकि शिम्जी के रेडार में वो जरूर से आ चुके हैं। कोशिश अभी भी बचने की कोशिश, जापान के खिलाड़ी सारे स्पॉटेड हैं, शिम्जी ने देख रहे हो, और शिम्जी अभी भी देख रहे हैं। उनको बस एक ओपनिंग चाहिए, वो एक, आप देखिए ट्रिगर डिसिप्लिन है उनका, लेकिन यार आई वाज एक्सपेक्टिंग टू सी इंडिया एट लीस्ट 50 पॉइंट्स कर सकूं, उसकी पूरी कोशिश है। किक स्टार्ट अपनी जगह बदलेंगे, 10 सेकंड के अंदर 50-50 जाना है यूएसए को, 10 सेकंड में जोन में जाना है जापान को। क्या ये आफ्टर डे 1 ऐसा लगा था कि यार क्या ये तीनों टीमें जोन के बाहर एक दूसरे को देखते देखते ही खत्म हो जाएंगी? थोड़े पॉइंट्स तो आएंगे डे टू डे 3 में। अब जापान के लिए मुश्किलें और ज्यादा गंभीर और बहुत ज्यादा मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जा सकती है, बट कनाडा का एलिमिनेशन 7वें मैदान पे ब्राजील की उम्मीदें टिकी हुई जरूर से है। अभी विनी के पास एक अच्छा मौका है सदन साइड से आराम से वो अपना सर्कल एंट्री ले क्योंकि यूएसए आगे जब बढ़ेंगे उनकी नजर पीछे की तरफ रहने वाली। जापान वहां तो चुके हैं, बट एक ऐसे कॉर्नर पे कि अगर मल्टीपल नेड्स आए तो परेशानियों में डाल सकते हैं। स्नेकर्स यहां प्योर बॉय को टेक डाउन करेंगे। हां यार ऑस्ट्रेलिया तो खेलना ही चाहिए। नेड एक बम, ये बमबारियां बहुत ज्यादा परेशानियों में डाल रहे जापान को। देखते ही देखते दूसरी तरफ यूनाइटेड किंगडम का एलिमिनेशन हो जाएगा, साथ ही साथ जापान भी ऑलरेडी अपने घुटनों के बल आ चुके हैं, ज्यादा देर तक बचने की उम्मीद है नहीं। एंड 5वें मैदान पे जापान का एलिमिनेशन हो जाएगा यूएसए के हाथ में। एक अच्छा एलिमिनेशन। इनफैक्ट अब देखने वाली बात ये कि ये जो टॉप 4 टीमें बची हुई हैं किस प्रकार से खेल पाएंगी। ये ग्रेनेड कितना ज्यादा करीब था, हालांकि अब अगला चाइना की तरफ से एक्सलेट की तरफ से ग्रेनेड आया, हाईसेकी को किया गया है डाउन, खत्म करने की कोशिश और खत्म किया भी जाएगा। एक्सलेट ऑस्ट्रेलिया's got the wonder child। इनफैक्ट वो खिलाड़ी 8 किल ले चुका है, चाइना का एक खिलाड़ी 8 किल्स बटोर चुका है। क्या हमें आज जब रिकॉर्ड्स की ताबड़तोड़ वर्षा हो रही है तो एक इकलौते खिलाड़ी के द्वारा डबल किल नंबर्स देखने को मिल सकते हैं? क्या एक्सलेट 10 किल्स वो अपने लिए बना सकते हैं, लेकिन इसका जवाब देने के लिए पहले उनको जूझना पड़ेगा। वियतनाम भी हो सकता है, उनके ऊपर आ सकती है। एक साइड पर ब्राजील के खिलाड़ी, फाइट अभी शुरू होने वाली है। सर्कल वापस एक सेंट्रल शिफ्ट में दिया है, विनी को मौका दिया जा रहा है कि जितने पोजीशन पॉइंट्स हो सके वो अपने लिए कलेक्ट करे, क्योंकि कोई भी उनकी तरफ अपना टेंशन लेके जा नहीं रहे। बड़ी विन जिस तरीके जिस तरफ वो जा रहे हैं, टार्कोव खेलेंगे ना यार, रात को खेलेंगे, वो मेरा लेट नाइट गेम बन चुका है। तो कोई भी अंदाजा नहीं यार, उस दिन पर 6 घंटा खेल लिया ना, मैं खुश हूँ भाई। झाड़ियों भी छुपे हुए हैं यहाँ पे भाई, फ्लैशबैक्स आने वाले भाई, यूएस वर्सेस वियतनाम होने वाला। लेकिन
ये किसी का गेम बिगाड़ सकते हैं। इनको स्पॉट किया नहीं गया है, इनको मूव करना भी नहीं है। विन के बिल्कुल सामने एक छुपन छुपाई खेलता इंसान उन्हीं को धप्पा कर सकता है अगर चीजें खराब ना हुई तो। देखिए कितना करीब है ये, लेकिन देखेंगे भी कैसे जब कोई दिखेगा ही नहीं। वेट कर रहा था टार्कॉव स्ट्रीम का। नेचुरल कैमोफ्लेज जिसको कह सकते हैं, वही उनके लिए एक बहुत You started playing Tarkov 2? Is this your पहला वाइप? Yeah, it's my first wipe. आगे आते हैं इसी डायरेक्शन से। विनी का I started late only. विनी जरूर से But I have good friends. Like Sikh Paji is here to assist me. बहुत थोड़ा सा लेकिन बाहर जरूर है। 20 पे 6 करके मूव करना पड़ेगा। अच्छी बात ये है कि अभी विन भी आगे जा चुके हैं। अब थोड़ी सी जो आई वुड से प्रॉब्लम्स थी ब्राजील के लिए वो थोड़ा सा कम जरूर हो जाएगा। बट वियतनाम को देखिए, वो उस कंपाउंड से एक कदम भी बाहर नहीं रख रहे, एक सेंट्रल पोजीशन पे बैठे हुए। एक्सलेट पीछे भी है वो सपोर्ट देने के लिए कि शाह अगर थोड़े से फाइट्स में इन्वॉल्व रहते हैं तो उनको पीछे से वो कवर फायर देके एक्सलेट कुछ किल्स अपने लिए बटोर सकते हैं। एक्सलेट के पास 8 किल्स हैं ऑलरेडी। सिख पाजी तो वेटरन बन गया टार्कov में। हां, सिख पाजी ने मेरे को बहुत हेल्प की उस दिन। यार अभी तो मैं 2 गेम मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था हील किससे करूं मैं। देयर आर सो मेनी हील्स, हाउ डू यू स्टॉप अ हेवी ब्लीड, लाइट ब्लीड, व्हाटएवर। 5 सेकंड में 9th जोन फाइनल जोन चलेगा और उसी के राउंडों की फाइट्स बढ़ती है। हेल्थ किससे बढ़ती है, आई फैक्ट क्या है, ये सब क्या मेरे को आईडिया नहीं आ रहा था। 3 टीमें बची हैं, चाइना, यूएसए और वियतनाम। अब इस समय या तो नॉर्थ अमेरिकन प्राइड की बात आती है कि यूएसए अपने लिए गेम निकाल सके, अन्यथा चाइना और वियतनाम मिलकर के करारा जवाब देने की कोशिश करेंगे। लेकिन होगा किस प्रकार से, क्योंकि सर्कल इनको आगे धकेलेगा जरूर। इस बार वियतनाम के पास और मौका नहीं रहेगा कि आप उस कंपाउंड में बैठ के इंतजार करें बाकियों के फाइट लेने का। अब उनको अपना कदम निकालना पड़ेगा। बट विन उस चीज के लिए तैयार जरूर थे। डैमेज बहुत ज्यादा दिया गया। चाइना एक बहुत बेहतरीन फॉर्म के साथ इस टेगो में अभी तक अपना प्रदर्शन दिखा चुके हैं। बट यूएसए की वियतनाम फीलिंग होम विद ऑल द ग्रीनरी अराउंड। डिनर वापस से निकालने का एक 4v3v2 का ये फाइनल सर्कल, कुछ फाइनल लम्हे हमारे सामने है। बट शाओ का ये नीड थोड़ा सा फ्लैशबैक है, थोड़ा सा उनके लिए टाइम बाई कर सकता है। बट चाइना अब इनको आगे आना पड़ेगा। यूएसए के बनाम ये फाइट है, सरप्राइज दे सकते हैं। बट शाओ बहुत ज्यादा डैमेज लेके पीछे उनको धकेला गया है। वो रेडी नहीं थे बैकएंड के जो खिलाड़ी हैं, विन उनके लिए बिल्कुल सामने डेफिनेटली आकर के फाइट ले रहे थे। बट मरना तो वाले ही है भाई। चाइना इज गॉन, से उनको बाहर निकलना है और बाहर निकलने का मतलब है बट किक स्टार्ट। दैट्स व्हाट वी वांट टू सी, यूएस वर्सेस वियतनाम। जिस तरीके से वो ग्रेनेड गया था किक स्टार्ट का, एक बेहतरीन चीज देखने को मिली। लेकिन अब वियतनाम अपनी बातों पर अमल अगर रहेगी तो एक अच्छा गेम निकालना है और यूएसए को बिल्कुल आगे आना ही पड़ेगा। ये क्या एरिया है ब्रो, रहेंगे लोअर ग्राउंड 4v3 खेलने के लिए क्या एरिया है यार। जरूर है विन की तरफ से फर्स्ट एड लगाई जाएगी। लेकिन अब आती है असली फाइट की बात। लेकिन वियतनाम ऑलरेडी डिसएडवांटेज में है। का डैमेज इनफैक्ट उनको पिक किया जाएगा और वियतनाम का एक और खिलाड़ी गया। मतलब यूएसए अपना परचम लहराने के लिए तैयार है इस टेगो में। आखिरी टेगो है आज के दिन का, आखिरी टेगो है पीएनसी का और इस आखिरी टेगो में जवाब यूएसए देती नजर आएगी, क्योंकि आखिरी खिलाड़ी ने अपना किल भी नहीं दिया। जोन के बलबूते जाना समझा सही। एंड इसी के साथ साथ यूएसए जिस कमबैक की बात हम कर रहे थे टेगो के शुरुआत से पहले, वो चीज उन्होंने यहाँ करके दिखाया है। ऊपर से भी उनका देनी पड़ेगी यहाँ पे वियतनाम की, जिस तरीके से उन्होंने होल्ड किया था। दाद देनी पड़ेगी वियतनाम के फेवर में आना चाहिए था ना वो फाइट। उन्होंने 8 किल्स अपने नाम निकाले। बट डेफिनेटली जिस कमबैक का यूएसए के had a lot of room to play around, lot of cover to play around. आखिर में डक का जो ये एक अच्छा निर्णय था कि वो सर्कल के बाहर जाके वियतनाम ये यूएस काइंड ऑफ रिज के ऊपर आ रहे थे, राइट? उनके सर दिखेंगे पहले, स्मोक के ऊपर भी दिखेंगे। 1 पॉइंट हजारों डॉलर का फर्क बना सकता है आपके। वो गेम बैटल्स जीते वो लोग। लेकिन वियतनाम भी कुछ कम थी नहीं। देखिए सर्कल दाद देना चाहिए। Like US had to run into Vietnam. जहां पहुंची थी जोन वहीं पर कटता रहा, उसी जगह पर जाता रहा, जो कि काफी ज्यादा सही था। लेकिन इस गेम के बाद 2 चीजें आती हैं। मैन ऑफ द मैच अगर विनिंग टीम से निकलता तो देखेंगे कौन बनता है, अन्यथा कौन किसकी मम्मी बनेगा बताओ। प्रदर्शन था 8 किल्स। US got better weapon with better nutrition to their army. Very nice. They got them pills, bruh. The heavy duty pills. ये टास्क मैनेजर क्यों खोल के बैठे सब मैच के बाद, पता नहीं। आई थिंक एडमिन बोलता होगा करने को।
हाई ग्राउंड एडवांटेज, अरे यार बट दे आर ऑल्सो वॉकिंग इन ना, सो पता नहीं यार, आई थिंक फेयर ही फाइट थी, बस 3v4 था तो निकल गया। पाजी इंडिया की टीम कैसी है, बुरी है क्या? इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से तो बुरी नहीं है। भाई ये लोग हाइलाइट्स में दिखा रहे हैं भाई। इंडिया भाई हाइलाइट में दिखा रहे हैं भाई, बुरा लग रहा है भाई। शिट मैन। इंडिया एक विनर विनर चिकन डिनर ले जाए, हमारा दिन बन जाएगा। ब्रो ये तो बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। 4 मैप हो गए हैं, 3 मैप और, सॉरी क्या 2 मैप और हो गए, 3 मैप और नहीं 3 मैप हो गए। हाँ 3 मैप और, इसके बाद डेस्टॉन होगा ना? डेस्टॉन थोड़ी ना होगा, वीकेंड ही होगा मेरे भाई। अजय हाँ सॉरी वीकेंड ही। डेस्टॉन कहाँ से ले आए तुम इसमें? डेस्टॉन क्यों नहीं है मैप पूल में? क्योंकि बहुत घटिया मैप है। अच्छा ओके ओके ओके। किसी को नहीं पसंद वो मैप। क्रैकिंग ये सब भाई परामो थोड़ी ना होगा, सब बहुत कैजुअल मैप्स हैं। कैजुअल मैप्स। ओके कूल। बट वीकेंडी भी इसीलिए आया आई थिंक क्योंकि बड़ा हो गया, लाइक 8x8 हो गया इसलिए। सारे 6 मैचेस है, यस 18 मैचेस टोटल। भाई बात तो सही है, हम डे 1 से बस एक स्क्वाड वाइब देखना चाहते हैं। भाई 6 अच्छा गाइस क्या लगता है इंडिया 15 नंबर पे आ सकती है? नहीं नो नहीं 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 16 पे रहेगा। नो नो नो। मैकल क्या तुम्हें उम्मीद है? क्या इंडिया 15 पे आ सकती है? यार इतना सोचना क्यों है भाई, जो पहला थॉट दिमाग में आना बताओ। बिल्कुल 1000 के करीब फायदा क्या है उसका, और वो जो 6 किल्स आए हैं उन 6 में अगर मैं गलत नहीं हूं तो 4 सिर्फ ग्रेनेड। भाई 15 पे आ जाए, कुछ भी आ जाए, बेइज्जती तो होगी भाई। If they want a name right now ना लोग खुश होंगे, तो मेरे ख्याल से they need a fucking win भाई। और टीम को बाहर करने के रैटी के लिए निकालते हैं भाई। एक ग्रेनेड से 2 खिलाड़ी लेकर ये यूएसए को 7 में एक विन आ गया तो बढ़िया हो जाएगा। 97 उनके अभी तक वैसे एक वाइब भी नहीं आएगा ठीक सा। नहीं यूएसए अगर वाइब नहीं आया, सिर्फ एक पहला जो किल था ना वो बढ़िया था, इंडिया ने जो ओपनिंग की थी। कोशिश कर सकते हैं ये अनफॉरगिवन ने बढ़िया एकदम गाड़ी से चलते हुए बंदे को उतारा था। वो दैट वाज द फर्स्ट किल फॉर इंडिया एंड द ओनली हाईलाइट किल फॉर इंडिया। भाई ब्राजील का प्लेयर उतारा था उन्होंने। कभी-कभी एक पॉइंट आपके लिए $1000 का भी एक डिफरेंस क्रिएट कर जाते हैं। उसी जगह पे डेनमार्क भी जो है इतना उन्होंने शायद 2 ही पॉइंट्स इस मैच से एक्यूमुलेट किए थे एंड उसके पीछे देखिए वियतनाम का एक 10 पॉइंट का मैच आता है। दूसरी टीम्स भी धीरे-धीरे अपना कमबैक, जर्मनी का भी थोड़ा आई वुड से डिसेंट मैच गया था। उसके बाद अब आ जाती है कि कब तक चलेगा मैच? आई थिंक और 2 घंटे नहीं, 2 घंटे नहीं, 2 घंटे होना चाहिए। हां 3 ही मैच है, 2 घंटा 2 घंटा तो लगेगा। 2 घंटे में 3 हुए, 2 घंटे में और में 3 हो जाएंगे या करेक्ट। और उनके जस्ट इमीडिएट नीचे वाली टीम को अंक निकालने पड़ेंगे सब जा करके। वो फासला जो अगर कोई टेक्निकल डिफिकल्टी नहीं आती तो मेरे ख्याल से, क्योंकि साउथ कोरिया को पता है उनका जो सेफ्टी क्वेश्चन था वो इस गेम का था और शायद अगले गेम का सेफ्टी क्वेश्चन रहेगा, उसको उनको फाइट लेनी पड़ेगी। वहीं पे टॉप 4 हाइलाइट्स को हम देखते हैं एक तरीके से हुआ क्या था। ब्राजील को एलिमिनेट किया गया और फिर ये ग्रेनेड, ये याद रहेगा क्योंकि ये यूएसए का मोमेंटम वापस उनको दे गया था। एग्जैक्टली अगर चाइना वहां पे बचे रहते तो शायद से यूएसए के 1-2 खिलाड़ियों को टेक डाउन किया जा सकता जिस तरीके से एक्सेलेंट खेल रहे थे। पर उसके बाद ये अब तो घुस के मारना चाहिए। हां कोई ना, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। घुस के मारे भाई, अब फाइट लेके जीते हैं। विल नीड मोर देन बेटर। उनको सौंप दिया। भयंकर बात ये है कि जो तीसरे और चौथे पायदान की टीम है उनका एवरेज सर्वाइवल टाइम 18 मिनट का था। यूएसए ने 16 स्मोक, 16 हां यूटिलिटी फुल यूज किया, 6 ब्लू जोन, 2 मॉली। वियतनाम ने 13 नेड्स 17 स्मोक्स। खिलाड़ियों ने
कोई फ्लैश नहीं, कोई मोली नहीं, कोई ब्लू जोन नेट्स नहीं। भाई इनके क्या बैग में एमो से ज्यादा क्या नेड्स और फ्लैशबैंग और स्मोक्स होते हैं? हाँ, एक एक मार को मार के दूसरा उठाता है। 6 पहले लगा कर रखता है और फिर एक टीम को वाइप करके दूसरा 6 उठाता है। समझ गया। अभी तक जो 2 दिन हमारे गए ओशन, ये कौन आ गया कास्टर? इस मैप में अपना जो चिकन डिनर है वो अपना जो कब्जा है वो करके रखा है। क्या ये हैट्रिक होगा या नहीं? अगर हुआ तो जर्मनी भी टॉप 3 के अंदर वापस देखने को मिल सकते हैं। यार इनका हेडफोन माइक बढ़िया है। 8वें पायदान तक अभी भी बहुत डामाडोल है सिचुएशन। एक अच्छा गेम आपको ऊपर लेकर के जा सकता है, खराब गेम मतलब बड़ा वाला माइक किए, एकदम खराब है तो आपने कुछ नहीं किया, बिना कुछ के नीचे धकेल सकता है। वहीं पर कोरिया 142 अंक लेकर के बैठे हैं। कोरिया का इस समय रहेगा 150 का आंकड़ा। भाई इस पे गेमिंग हो जाएगी इस गेम में हम 8 अंक भी निकाल दे तो 150 का आंकड़ा हम छू लेंगे, जो कि बहुत अच्छा है। और अगर कोरिया ने इस गेम तुम तो कास्टिंग कर चुके हो तो अगले 2 गेम मैंने गेम खेलते हुए यूज नहीं किया। मैंने भी ओशन भाई कोरिया में क्या नहीं भाई, इंडिया में कोरिया का माहौल बनाया गया है यहाँ पे। कम से कम आपको अगर वैसे ही कोरिया जैसा गेम करते यानी 30-30 का अगर पॉइंट्स निकालते तब जाके कुछ हो सकता है। गुड़गांव में बैठे, लेकिन अभी थोड़ी देर के अंदर हम लोग वो जो गेम है वो चलता हुआ जरूर देखेंगे किस प्रकार से रहता है। और यहीं पर गेम हमारा हो चुका है शुरू और देखते हैं कि क्या रहता है। TI i5 11 Gen enough for PUBG। ये फ्लाइट पाथ की बात करते हैं, एक्सट्रीम वेस्टर्न साइड से लेके साउथ ईस्टर्न साइड पे ये फ्लाइट पाथ खत्म होता हुआ नजर आएगा। वीकेंड का मुकाबला YouTube पे जाओ, PUBG esports लिखो, ठीक है? हाँ, सिर्फ इंडिया है जिसको एक अलग से हिंदी की एक स्ट्रीम मिली है। हाँ वो बात भी है, के लिए नहीं मिली है। वो बात भी है। इससे 2 बातें हो सकती है। देखो बाजी भाई इंडिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर क्राफ्ट ऑन, इससे ये चीज पता चलती है। ट्विच पे देखो, ट्विच पे शायद दूसरे लैंग्वेजेस में हो रही हो। नहीं, ट्विच पे नहीं दिखा, नहीं इंडिया है Damn. अलग से एक हिंदी बात करें तो कुछ हमें शायद देखने मिलेगा नहीं, बट जिस तरीके से हम आए हैं इस बार मंथन के इंडिया इवेंट में के मतलब रैशियल उनके पास एक मौका है निकालने का, बट कनाडा के जो 2 निहत्ते खिलाड़ी वो सामने रहेंगे, उनको यहाँ पे क्या हुआ फोर्स किया जाएगा। ड्रॉप मत दो ना भाई, छोड़ दीजिए क्योंकि जो दूसरे तीसरे टीम अरे कनाडा के भाई, कनाडा इंडिया को पकड़ के क्यों खेल रहा है इतना? एक चेंज हुआ है हमारे कास्ट में, हम स्वागत। क्या हुआ? तुमने मिस किया रक्षल भाई, सलमान भाई बनना चाहते थे। ओह अच्छा, हाँ 2 लोग के सामने। अरे एचपी लिया भाई, अनफॉरगिवन। क्या ड्रॉप मारा है? हाफ एचपी अगर गिर जाता ना, इधर नॉक हो जाता ना और बेइज्जती हो जाता। कि अब यहाँ से मुकाबले ज्यादा बचे नहीं है, मात्र 3 मुकाबले बचते हैं। अनफॉरगिवन भाई वो नीचे, फिलहाल बात करें पहले वो नीचे गया यहाँ से निकलना ये बेहतर ऑप्शन। ओह माय गॉड, ओह सलमान इज इन ट्रबल। करने की कोशिश, का भी इस्तेमाल। सलमान भाई पे गन है? सलमान गन ही नहीं है भाई पे, लेकिन ये अलग-अलग टीम्स के साथ फाइट बिल्कुल शुरुआती दौर में दिक्कत। ओह सलमान भाई साइकिल भी चलाते। अरे हाँ नहीं, साइकिल तो चलाते सलमान भाई। क्लिप हो गया। डूबने वाले को ये तो क्लिप हो। सलमान बोला इस बार मेरे पास भागने के लिए गाड़ी नहीं है, मैं साइकिल निकाल। भाई हंस रहे सलमान, अनफॉरगिवन हंस रहा है। ये शुरुआत ओह शिट, यूनाइटेड किंगडम के एक खिलाड़ी को टेक डाउन करके पहले जो खिलाड़ी उस मैच से बाहर किया था, बट उसका जवाबी हमला कुछ बेहतर था। थाईलैंड शुरुआत से जो एग्रेशन दिखा रहे, एक तरफ टीम इंडिया की तरफ बीइंग ह्यूमन साइकिल, दूसरी तरफ अभी कनाडा को टारगेट किया जा रहा है। एंड शुरुआत से इतना तो मुझे लग रहा है कि थाईलैंड इस बार बहुत ज्यादा एग्रेशन के साथ खेलने वाले हैं। देखिए अब 99 अंक है उनके पास और उनको भी पता है कि ऊपर जाना है तो फिर कुछ ताबड़तोड़ प्रदर्शन ही दिखाना पड़ेगा। और सिर्फ थाईलैंड ही नहीं, मैं बहुत ही ज्यादा इस बात में अब बिलीव कर रहा हूँ कि बहुत सारी टीम्स ऐसी होंगी जो अपने स्ट्रैटेजीज को चेंज करेंगे, जहां पे उनके पास खोने के लिए अब कुछ खास ज्यादा है नहीं और पाने के लिए शायद कुछ और अंक, कुछ और पायदान रहने वाले हैं। कनाडा हल्का सा नजदीक हो जाते हुए, लेकिन अगर हम बात करें वीकेंडी के इस मैदान की, इस इलाके की 35 अंक। सलमान भाई हम लोग को स्ट्रीम स्नाइप करते थे, लूट आके देते थे, कहां आज यहाँ पर क्रेजी भाई। लेकिन ये सलमान ग्राइंड तो करता है यार, देख हाँ ग्राइंड बहुत ग्राइंड करता है वो। थोड़ा सा
होता है ना, हम सोच में आ जाते हैं कि ऐसे कैसे हो गया, इतना बढ़िया उनका स्टार्ट शुरुआत रहा, इतने बढ़िया मैचेस भी उनके गए हैं, बट उसी के साथ साथ नहीं गन मिल जाती फिर भी वही डिसीजन था ना शायद कि सेफ खेलना है क्योंकि टीम साथ में नहीं है। पोजीशनिंग मिली थी तेगो के मैप जब जेब में साइकिल पड़ी हो यार तब उसका पूरा फायदा उन्होंने उठाया था। कनाडा के लिए भी थोड़ा सा मैं बोलूंगा मन कर जाता है क्लिप बना लो तुम। सर्कल के अंदर जो हमारा सेंट्रल एरिया पे बना है, ज्यादातर टीम्स को ज्यादा मुश्किलें नहीं होने वाली है सर्कल में पहुंचने के लिए, ज्यादा एक्सट्रीम साइड पे है नहीं, बट कनाडा अभी ढूंढने वाले, मुझे लग रहा है थाईलैंड के साथ यहाँ पे कंटेंट क्रिएटर है क्या हमारे? नहीं यार एनिग्मा से तो कोई भी नहीं है जो टीम गई है। दूसरे के थोड़ा सा करीब वहां पर व्हीकल लेकर के रोटेशंस देते हुए नजर आ रहे हैं तुर्की के खिलाड़ी, और थोड़ा सेंट्रल एरियाज क्योंकि अभी के लिए सर्कल के बाहर थे, साउथ वेस्टर्न बट कंटेंट दे रहे जरूर करने की कोशिश जरूर से रहने वाली है। और साथ ही साथ मोहसिन नकांत लिए ताइपे के खिलाड़ी बस बैठे हुए हैं, उनको व्हीकल का साउंड आया जरूर है लेकिन कुछ शॉट्स ले नहीं रहे क्योंकि अब आप देखिए यहाँ पे अकेले हैं वो, और अगर अपनी पोजीशन वो रिवील आउट करेंगे मुश्किल है। गाड़ी क्रैश हो गया उसका ऊपर एक स्लैमिंग सिचुएशन, नकांत लिए ताइपे के खिलाड़ी बस बैठे हुए हैं, उनको व्हीकल का साउंड आया जरूर है लेकिन कुछ शॉट्स ले नहीं रहे क्योंकि अब आप देखिए यहाँ पे अकेले हैं वो, और अगर अपनी पोजीशन वो रिवील आउट करेंगे मुश्किलें बढ़ेंगी, लेकिन ऑलरेडी स्ट्रीम पे देखा ये वो हुआ बन सकती है। स्ट्रीम रीसेट हुई, थोड़ा पीछे गई और यहाँ से जाते हुए नजर आएंगे, और आप देखिए वो जो उन्होंने अपना ट्रिगर कंट्रोल दिखाया था उनको फेवर करता हुआ नजर आया क्योंकि अगर वो वहां पर एक शॉट ले लेते तो पूरी स्पॉट उनके हावी होती नजर आती। ये था लालच, कभी-कभी आप नहीं दिखाओ तो आपके लिए बेहतर रहता है, उसी जगह पे वही चीज उनके लिए बेहतर साबित हुई। बट ऑस्ट्रेलिया के यूके मकाओ की बात करते हैं, देखिए रीड आउट के ऑलरेडी बैठे हुए हैं, आपको पूरा विजुअल वहां से दिख जाएगा जब तक साइक्लोन नहीं आता है, क्योंकि पिछली तरह अगर हम पिछले दिन की बात करते हैं साइक्लोन के अंदर भी जहां पर जीरो विजिबिलिटी मिलता है वहां भी आपने मैंने देखा बहुत सारे खिलाड़ियों को स्पेशली एक M24 का हेडशॉट, अगर हम कल के दिन वापस याद करते हैं उस यादगार पलों को। बट ऑस्ट्रेलिया अपनी यूजुअल रोटेशन की तरफ ही थोड़ा सा फोकस करना चाहेंगे, साउथ कोरिया की भी नजर रहेगी इस मैच में, जितने ज्यादा हो सके उतने अंक निकाल के लेके जाए क्योंकि पिछले मैच में बस 3 ही अंक मिले थे, फिर भी 31 पॉइंट का जो डिफरेंस है वो भी मेंटेन कर रहे हैं। देखिए चाहे जीवन हो या गेम, जो पास्ट है ना वो आपको हॉन्ट जरूर करता है, लेकिन अगर आपका पास्ट अच्छा है तो उससे आप पॉजिटिव्स हिंदी वाली स्ट्रीम की क्वालिटी थोड़ी लो है और पीछे चल रही है। अभी वो मात्र 19 वर्षीय बालक है, गाइस इंग्लिश पे शिफ्ट करना है, पास्ट रहा नहीं है, पर जी हां हम बात करना जरूरी नहीं था। जनता को पता चलना चाहिए आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में, लेकिन अगर हम बात करें साउथ कोरिया की और हम बात करें पास की, वो पहले के मुकाबले इतना बेहतरीन खेल चुके हैं, और वो बफर जो उन्होंने क्रिएट कराए, 1-2 मुकाबले उतने बेहतर नहीं भी जाए तब भी वो पहले पायदान पे ही रहेंगे। 142 के लफड़े ओ बीच में वो पड़ा हुआ है भाई, tracking Turkey. It started earlier. भाई यहाँ है ना 1440p action. Is this all part of the Keikaku here? Higher quality, no buffer. Oh yeah, Palm's actually taking some shots from long distance to try and flush Turkey out. Maybe trying to set up for Zenon to find an angle on somebody. I think he barely saw Code Marco, and yeah, he did. Actually going for the spray down here with the M4 and a red dot. Yeah, Twitch will have even higher couple quality. body shots. He had no frags though. Yeah. He had frags. That might have been a very different story. तुम 2K monitor पे हो, मैं भी 2K Sadly for Zenon there, not able to do enough with just the guns. But he had their 5 1080p mollies, will be though, even which better. He had 5 mollies. I didn't catch that. Yeah, man, he had 5 mollies, which is just not what you want in that situation. Great for clearing out buildings, not so great out in the open. क्या वो टोमेटो बता? क्या बोलने की कोशिश कर रहा था? क्या है end of the month event? Ken Duckjuice out here for Vietnam, a little bit ahead of the rest of the team, and the rest of them trailing behind as Australia is at a 2-2 split, it looks like, out there. Argentina out to the east, so a quiet, slow start here. Feels uncharacteristic. Yeah, the game's been really popping क्या off. नाम से सब्सक्राइब कर रहे हैं भाई विकी? It's one of those maps that there is a lot of architecture to play around with in terms of trees and hills and rocks, and with a circle that's, you know, kind of as fair as this one, right in the middle. Not surprising that we have a game like this one where what different I'm saying you're coming Mumbai for the LAN event. No, little section of the LAN map, event? their own slice of the pie, so to Sky speak. Sports TC Inter Gamer Days. What is it? I'm hoping. Oh my God, we're still on the bike. Salman bhai abhi bhi cycle pe. He's getting his cardio No in. man, you know what? It worked. Maybe it's got some luck in it. Maybe it's got like, you know, this is like that biker being right up into the sky. Put somebody in the basket. Charity cycle run. Yeah. They should add that. Imagine putting a down teammate in the basket and jumping off a cliff. They should put a basket on it where you can stick like a frag grenade or something. You know, like you can put like a little bit of Panzerfaust. Yeah. Like one item can fit in it. Dude, imagine a bike lock as an item too. Be a lot of fun. Lock it up on a tree or something. Only you would think that's fun. Yeah, man.
I've had multiple bikes get stolen in my life. All right, so Germany rolling up on this hill. They have no idea that UK is actually getting posed up over here. Vard with a meaty angle. Oh, with a car switch. Really fast. It's Chris. He fires back and gets a knock. Some quick thinking there, but Fex is going to be able to find Brexco on the back end here, going 1-for-1. Our Germany and the United Kingdom, but it's already been revealed. Trading some Molotovs as well. Micah, I think he might have gotten tagged from that one, or it was just short. It is just a bit off, but the bullet's connecting there. Fex gonna let loose with some grenades. That was a great seat swap there, but at the end of the day, India is out of zone again. Still pretty dug in. They aren't gonna lose again out of zone. This T-Bone with the SLR now swinging wide and damage being done here. It's actually Pongsker who's gonna find Mika, and he should be down here momentarily. Yeah, T-Bone is gonna claim that point. It's Chris is gonna fall to Fex. Kowo, coach who had to sub in here for Germany for this event, the only one left. Yeah, seems unlikely we're going to have Germany go for a three-peat here on Vikendi. Sol's got a VSS. Oh, does he? Yeah. Nonix with a G36. Korea a little bit lacking on loot. And a Bolt, too, here for an Onyx. They have not... Yeah, that's a setup, man. That's a loadout, I guess. It's a setup. That's, yeah, exactly. Of all the loadouts, this is one of them. Yeah, exactly. And they're screwed. I mean, frankly, this is not good for Korea, and it's great for everybody else. I want to see how they're moving. These hills out here are actually pretty exposed. There aren't a ton of trees in this part of the map. Path is pretty clear for them. Compared to some of the others. Bhai, Salman ko dekho kahan se enter mar raha hai. Don't do it to us again. Not like this. Bhai, this can't be reality. What have you done? I blame you. ये इतना distance कैसे बन गया टीम के बीच में भाई? Well, it's good for pretty much everybody else, though, because Korea right now is absolutely surrounded. They have Australia. But Salman is a silent killer right now because he's on a cycle. All around their borders. China's also nobody knows. Thailand is making a rotation to the west, and as you said, their loadout. Nobody knows Salman early on this map, I was watching them on Canada the right now. They crashed the compound early, just to kind of play it safe. You know, they're just trying to play defensively, given their massive point lead in this lobby, and now this has come out to bite them as they had to move out onto this hill. And the thing I'm complaining about is the fact that this circle went towards the green again. Yeah, of course. I mean, that's what I'm talking. I mean, I'm just annoyed. Come on, man. We only get Vikendi 3 times in this tournament. I don't want the same circle 3 times. Give me like a Dinoland finish or something. Let me see. Yeah, for real, dude. That'd be sick. Dinoland's dope. All right, T-Bone trying to finish what UK started earlier. Vard, of course. It can no longer be hard for Vard, but absolutely the rest of the UK. Delivery अपने actual location से बहुत दूर थी, पर सलमान भाई का दिल बड़ा है. All by himself. The snow working his way towards castle. They holding on to this compound in Korea. They do have a crate drop near them, so if they can actually reach that somehow through the eyes of China or Australia, मजा आ रहा है, पेट्रोल मत करो. शांत हो जाओ सारे. They might be able to get a little bit of a better loadout देशद्रोही हो सालो than they've been dealt already. And Denmark, outside of the current circle, there's Canada and a storm brewing to their south, and Vinny's car blows up with him in it, and then LA gonna be the one to claim that point here as Argentina had a bit of a trap set up and Brazil fell into it. Now LFP1 trying to do some return damage to their Latin American brethren. Hitting a few shots here and there. If you could find a headshot, he might get a knock. Nope, not going to be the case. No, Luke Troll actually getting some damage done right now. 118 in totals. I think Loki went down during all of this. Heaven's going to go for the res, but Korea not feeling great about their position, all things considered. As I said, they're surrounded on 3 sides. The loadout is not fantastic, and the teams around them too, USA, Australia, and China, they've been fighting pretty well over this entire tournament. So Korea, they've got their work cut out for them. A rare opportunity for some of these other teams like Vietnam and Denmark on screen as they come through this storm to try and start to add the points. Because again, Vikendi, third to last map here at PUBG Nations Cup 2023. You really need a big win if you're one of these top teams trying to go for rank 1 and catching up to Korea. Yep. See if anybody can do. What's the best position India got in 3 days? 4th position, first map, 6 points. 4 position points, 2 kill points. Bullets. You can really go through bullets fast on the VSS if you're not kind of thinking about it. It's so tempting to just absolutely spew bullets out of it because it's so quiet. It's so hard to tell where you're getting shot from. ये नहीं कह रहा कि पैसा नहीं कमाते भाई, पैसा of course बहुत मिलता है. The bullet drop is disgustingly bad on it. It's so difficult to navigate
how bad the bullet drop is on the BSS as well. But I mean, I'm happy I get to talk about the BSS, but Seoul certainly not happy to have it. Great sprays here from Thailand. Nuren's Tanadol combining to get Kino down and out. India versus USA. More damage put in as well. India versus USA coming in. India versus USA happening soon. Crash and maybe out of the frying pan into the fire. Turkey right up ahead. Yeah, Denmark looking for a Turkey. As they're about to find him, Ali going to try and see if he can get an angle here onto Longsker, who is prone behind his vehicle, but he does get found, as does Koho. Germany eliminated from this, and Longsker taking a lot of damage. China in a rough position right now as Rybox looks to see if he can get the flush. A lot of damage done onto China as they continue to skirmish with Argentina. Now Korea making a big rotation. I don't want this tournament to end, yaar. Not too many people in their path. Luke 12 does have an AUG, but not a good sight line on them. Now, the center of this circle is open in more ways than one. Not only are there not a lot of teams here, there's not a lot of stuff. So, you know, yeah, okay, Korea can find a shack and a spot, but, you know, what good does that really do you here? This is again, another tough spot for Korea. It's something in the circle, I guess, but I don't have a lot of high hopes that they're going to be able to stay there for an extended period of time. I feel like you got to take the hill close to Team Japan if you're Korea, and somehow China actually was able to work their way out of this crazy show. And Ixleft, I believe, all surviving that skirmish with Argentina, now rotating around the map. And yeah, they are going to go for this hill. This hill's much better. Yeah, it's a very good position right here. Not quite as center as what they were originally gunning for, but after they got the lay of the land, they knew that was not something that would be holdable, especially with all these teams. CSGO access. I have CSGO access. I think this map is so new watch party ka nahi, watch party ka they nahi. didn't really know exactly what the center of this circle looked like. If I ask for access, I have VCP access. We could just keep going. PUBG access. Wait, there's a reason nobody's shooting at us because no one wants to be here. It's like the terrain is so bad. Well, Canada making a move right now into the circle, getting closer and closer to Denmark. Finna right now, the pole position. He's actually going to be anchoring this as Canada continues to steam along. Denmark's right ahead of them, and Denmark for a moment there looked like they were just getting ready to bail out of this position in their vehicles. I'm wondering whether they're actually going to stick it out and go for a fight, but no, instead they're just going to run for it, but that gives Canada a great chance to try to get some knocks, but luckily for Team Denmark, Vietnam is popping off. A couple of big knocks coming in, actually Shinboy getting flushed. Yep, absolutely. Tough stuff now. As they lose one of their best players here, Canada. हमारे बंदे डर के खेल रहे हैं। भाई स्कोरबोर्ड देख लो समझ जाएगा। All these players on Canada have been around basically since the start of PUBG esports. Very, very smart players, but they're about to get Isaki. The grenade is out. It's right at Finna's feet. He is down. Hisaki can't get the spray up and over the hill. Looks to get an angle onto Adam. Adam's got an MP5 here. The gun's a bit of a laser beam up close and personal, but it didn't matter. He wasn't ready for the reasoning from Hisaki. Absolutely tearing him apart. Just Keenan left now in the back. He's getting shot by Chlor. He's trying to pop up, and he is going to go down. Canada falls. Code Marco gets Keenan, but Hisaki gets two. Yeah, Vietnam got a lot of work done right there in that skirmish, and those are the kind of kills that they need to start chipping away at this lead that Korea has accumulated over the past couple of games. Luckily, मेरा face cam है वहाँ पे Argentina है by the way. Argentina है and Japan है. Hold on to that. Just मेरे मुंह पे यहाँ पे Japan थी their hill. Yes, it is out of the circle, but there isn't too much terrain here. Yeah, you can really tell the inexperience on this map. I mean, it's the first time it's debuting in professional PUBG here at PNC 2023 as Korea is trying to make the rotation in. Now Fex with a brilliant headshot able to get LFP1 and confirm the kill. Brazil also scrambling. यहाँ पे गेड़ी मारने निकलो तो एक तो बंदा गिर ही जाता है Korea's going to opt for a fort with cars and folding shields by this rock. Dead center going to try to lock it down and try to turret from this position onto the other teams rotating around them. The problem is any high ground that's on the edges of this are going to give teams angles down into it. Duck2's already finding some value himself from outside of that water tower in the house as an angle from the farm right on top of them. India's back in the zone. I think those are potentially shots from Chinese Taipei in their direction as well. I mean, yeah, okay, Korea, you've got position, but you've got to hope that things get so spicy on these edges that you can survive. And I guarantee that Duck2 from Team Vietnam is going to be communicating to his teammates that he actually has this angle on Korea because they're the #1 spot that you want to take out right now is Code Marco with a great spray, able to get Sparking down. That vehicle gets blown to smithereens, and Snakers, nice tapping there in the SLR on that 6X. Actually, H would help it out a little bit too. Schofield's going down, so Turkey taking some damage here. And USA is going to hear the Mads vehicle, and they are going to look to, if it drives at them, shoot at it. But yeah, no, it didn't. I think Turkey realizing there's no hope here.
to cover and defend off the USA. So they're gonna have to sacrifice Schofield. Unforgiven gets a kill onto Show. We are coming. Off screen, so you know, points for India. Very happy to see it. We're happy to have them at this event. We know it wasn't the result they wanted. Hey, yo, one more. So, you know what? Things Australia. are going well, and now Aches left. We're coming. Drives right next to Korea. There's a bolt there for Korea out in the open. He gets a kill on a please flush that. Oh, didn't get it. Pocket se nikal rahe kya Panzer? Had it, man. Oh no. Brad coming in is going to blow an X vehicle during all of this. Vietnam and Turkey fighting on the sidelines right now. Bhai, dikhao fight, dikhao yaar. Vietnam, the closest team to Korea overall in the standings. The Mad is going to get Haisaki right there on the knock. Vietnam going to try and get out of this. Eliminated. Zigging and zagging right there, trying to get away from this position, but the confirmed kill comes through by the Mad, so Vietnam losing one of their best players, and also another knock is 2 true. points again, 2 points Flores again. gets flushed. Vietnam losing some key players here in this late circle. They thought they had an opportunity there to do some damage to Turkey when they heard them battling the USA, but instead it came back and bit them in the butt. The second Korea is going to try to finish Akeleft off, and yeah, Akeleft just not ready for Seoul. And there is a knock here from long range. Japan's getting mortared by Argentina. Here we go. Those are up, and they are very, very high. Who's going to be the next target? Korea's lost a couple players. Loki's going to get flushed. Japan trying to get the smokes out, trying to get the reses. T-Bone continues to harass the edge of this rock, and this is the problem with this position. For these teams that tried to go center on this circle in the last one, it's just difficult. There's just, again, not much to work with. Yeah, there really isn't a lot of playable terrain. Game per game limit, right now for 2 kill Japan, ले जा रहा है, it's a consistently struggle 2 to kill try ले and रहा get है some of these reses through as the nades just continue to come in. Able to get one headshot. This is Run AX, but this is his work cut out for him eventually. Japan seems like they are going to get cleaned up, and yeah, that nade from Ale is good for it. So Team Japan eliminated here. Argentina going to try and consolidate on the eastern side, but they do have Australia to contest with. Viking and Mukau trying to find an angle right there. Rock providing some nice hard cover there to Team Argentina as they try to rotate in. The bad news for everybody else in this lobby is when Japan got taken down, that knock that Loki got forever ago went to Loki, and big shots here coming in from Australia and Argentina. America under pressure from Turkey. And that grenade is so good, but it rolls just a bit too far underneath the car, blowing it up. Now smokes are coming out for the USA. The Mad's got a knock here. Turkey looking to hammer down on top of him, but Snaker's coming up huge. Kickstart as well. The grenade is on point. The USA able to defend and take Turkey out. Yeah, kickstart coming through in the clutch for Team USA again. As you look at the minimap, Chinese Taipei, the United Kingdom, and Korea all trying to get in on that action. And now Australia, Singleton holding off Argentina in a 1v2 situation. He's able to win it out with a sliver of HP remaining. Some heroics there by the True Blue crew. Absolutely nasty stuff from Tiggleton. Beautiful play from him, but now the USA torn asunder by the players around them. Rossiter Jr. trying to connect with that Car 98, just can't quite find the shot. See if he's going to give it another go. And yeah, there you go. He finally finds it. Waikakamukau, Australia taken down between the UK and Thailand. Brazil also eliminated during all of this action as it starts to quiet down a little bit here. Korea, they have moved on to the easy Seoul with a VSS headshot from that range, able to take down Rossiter Jr. with the bolt action rifle. You love to see it now. Grenade's going to come in. That is a long shot, so a little bit out of range here for Team Korea, but the knocks coming through. Confirmed kill there with a frag by Seoul on Rossiter Jr. Korea gets another point. Check that off your bingo card, man. You got the VSS kill. It's a rare one. Oh, you love to see it. Korea just, I am really shocked they're able to make this work as well as they have. Again, the thing about the VSS, a whole lot of extra bullets. The 9mm bullets are pretty light. They're going to have to move from this position going forward, so you know you could spray into those smokes a little bit more cleanly, but Korea's taking a ton of damage trying to use this folding shield to maximum effect, but you can see it's already pretty beat up. I think that's a perfect blue zone. Yeah, it is. It is going to bounce in. Korea's on their last legs. The grenade as well, doing a ton of damage. Just Anonix on the outside in some smoke. Trying to hold on, trying to get a heal off. Looks like he's going to be able to do it, but if that's a frag at his feet, he's done. Nope, it is not. Oh, he's getting shot though. Prone's down, and Korea about in and about out of this. Yeah, Anonix barely surviving all of this mayhem, but एक और बार कोरिया अगर जल्दी बाहर हो गया तो total here for Team Korea.
placement points too. Yeah. But कौन जिंदा कौन है भाई? It's a good game for them, especially Top 5 वाले में से considering कौन जिंदा है? they had a bad loadout, they had a bad position in the circle, and they were still able to get some Vietnam water out of जिंदा that है. stone. UK can. Canada just trying to figure out exactly how he Come wants to close, use but I the think smoke. Vietnam का best chance Finally है. going to cover his teammate in the back because Chinese Taipei is putting pressure At number on 1 their spot. western edge, and Zen Nan still going to get the knock on the Poochills. Honey Badger, a little bit of damage ticked in towards Nurens. Now Thailand outside looking into this next circle, and Anonix is just holding firm, but the UK knows it. They're not really interested in letting him get any further in this one. UK No way. running in on this one. And Anonix with the Crow Spray has a lot of Thailand pull up. damage in, but none of the knocks. Almost got both of them there. Top 4 हो गया है, music चालू हो चुका है. The flush, or not the flush, excuse me, the knock there on Endurance, and 4 teams remain. Thailand in a lot of trouble over here on the If fringes. Vietnam wins this, Luzo Nate finally going to finish Nurens there. it UK will be confirms so the close. kill. And Chinese Taipei during all this is watching it, trying to find an angle onto Tanadol. Well, now, if you're a fan of Korea, you're hoping that Vietnam doesn't come through into this and get the win, but they've got a decent chance. Chinese Taipei, of course, with the best chance, but honestly, Vietnam, they're so wily, they're so strong individually, they could turn the tide. Okay, that छोटा zone, that's a blue zone grenade, bro. Don't count out the UK. A grenade that makes blue zone का एक छोटा सा good day bubble. already, looking to add on to it. Best to Already finish up to knocked 108 players. points and could Best shoot up to who knows, push maybe out even someone who's surpassing hiding Vietnam behind if a things small shake their cover. way. Let's not forget that या the तो two घर players के अंदर up right डाल now दो, from घर के Vietnam are their windows top में डाल gunners दो here ऊपर in this दो. tournament. Duckjuice and Yemas पूरा have घर done cover हो a जाता है, ton बहुत of बड़ा. damage done. Yemas leading overall with about 400 average damage per game. Duckjuice right behind him, nearing 300. So it's a force to be reckoned with. That's just bonkers. I mean, 400 damage per game in a tournament like this. Crazy this चीज है blue caliber zone of grenade. player. और उससे भी crazy तो I mean, मोटा Yemas है भाई. is certainly a superstar, no doubt about it. Coming into today, almost had 30 kills. Just unbelievable stuff. He's just, he is one of a kind. Up on the north, Circle says, ooh, down towards the UK to the southeast. So sure, they've got position, but again, regardless of where you are in this circle, there isn't a whole lot to work with. It is very, very sparse. Not even a lot of soft cover like the fields of Arago. There's a few bushes here and there, but it isn't, you know, just full of grass and fields. It's snow and it's rocks and a few very, very gently rolling hills. Yeah, you can see through right clearly, and United Kingdom, they're going to try and reinforce Fex a little bit over here on this southern side, but it's a dangerous position. They really need knocks onto Vietnam to give themselves some more breathing room because look at how flat it is, this section of the map. And lurking behind all this action between the UK and Team Vietnam is Chinese Taipei, all the way in the north, 4 men strong, and finally the UK. Looks like they're going to try and make a move, reinforce this position, make a bit of a bunker. The only team in the circle, they actually get a knock here on a Himas. Ponksker there from long distance. He's got a Groza in the back of it, but headshots, a lot of damage done. Forces a player out of that vehicle quick. Leo, very weak as well. Points wanted, and they want to take Vietnam out. They know they need to clear this edge. That Molly may have hit Himas. No, it doesn't look like it. Nade out here as well, but it bounces back into Leo from Duckjuice. What a throw from him, but he's on the edge of the blue. There's a Molly in front of him. There's the blue behind him. Has to sneak around the edge, trying to push up and over. Wants the flush as well, but it's going to be Zennon from afar. Takes him down. Yeah, Vietnam just stuck between a rock and a hard place. There was not enough time to get the res there onto Himas, and Chinese Taipei did not miss their opportunity. They closed in, and now it's a 3v3 with one player down here for Chinese Taipei. They're going to try and get him back up. The United Kingdom, they've been looking so strong today. The reigning champs of PUBG Nations Cup. They want to try and run it back here. This is their opportunity. Already 9 kills. Yeah, what an outrageous day it would be. We come into that final game and the UK is in hunt for another title. They're making the most of their opportunities here today. Honey Badger going to flank out wide for the UK, create some problematic angles for the consolidated forces of Chinese Taipei. Put some shots down, but any extra knock onto the UK would really make this so much easier for Chinese Taipei. 3v4, difficult but doable.
But a 2v4, that's a अरे lot हरी बाचर harder. ने अगले जोन के Yeah, लिए the बहुत UK बढ़िया being किया as fanned at as they are, any knock would take away some very important angles, and Circle just going to stand her up right here. Chinese Taipei, they're consolidating their forces. They're just completely working together here on the north side. Revive कर लिया Trying था to Taipei clear ने. out some That's angles nice. there with the smoke, but Fex gets the opening salvo. It's a headshot on a Pongsker. It's now a Neutral कर दिया 3v3. भाई. Now, UK ने. Vex is sitting on 3 frags as well, so anywhere that Chinese Taipei goes as a unit, it's going to be dangerous. They're not able to really cover the same space because of the angles that the UK has, but again, one काफी knock open zone will आ turn गए. the tide of this very, very quickly here for Chinese Taipei, but Fex doesn't want to allow it. The timing, he knows that the res is Rez going आ to be coming चुका through है, quickly, but wants to see if nades he can आना punish चालू हो गए it. अभी. First one's a bit too far, but T-Bone gets the Leo knock goes onto Leo. down again, Fex is going to load up for 3v3. another Pongsker, trying to figure out where the heck he can go in this Zima, trying to do something, but he's taken out by Honey Badger. The flank angle Bro, so strong, out in the what? open, that's another. And now it is one player left, Zennon, trying to do what he can, but a ton of damage Spray done. connected नहीं And रहा the भाई UK बंदे का, has but found their anyways, second UK win won. of the day. 13 kills in total as United Kingdom is popping off, putting themselves back into contention. And this thing, and now with 4 maps in the bag here on the final day of PNC भाई वो पूछ रहा 2020. था कितने किल हुए तेरे? Top teams, United Kingdom looking so strong. Will they finally be able to catch up to South Korea? I don't know. I don't know. Anything's possible right now. With 2 games left, with 2 Erangels to play, the UK has made a statement here today that they weren't going to go quietly, that they were going to try to defend their crown tooth and nail. Win के कितने points? 10. Looking to get it done, and Chinese Taipei, some frustration for sure. ऑलमोस्ट सबके पास Logitech Gpro है. A little bit unhappy with how that one shook out at the end. They just could not. Bro क्या करे bro? बात ही ऐसी है. Superlight 2 चाहिए. By the way पाजी, Superlight 2 आ रहा है. हाँ भाई भाई. Delivery on the way. Okay. Nice. Yes sir. एक सेकंड, इंडिया में कि तुम्हारी पास डिलीवरी? मेरे पास. Oh nice. The crossfire set up from all But sadly I'm not allowed to unbox it yet. पे भी तो आ ही रहा होगा. Mackel पे भी आ रहा है. to Chinese Taipei's position. It felt like there was nowhere to run. Whether you be in a Zima, whether you be on foot, no cover from all 3 angles. The UK were able to establish as, I mean, just the veterancy of this team, making the soul read to know that they can. इंडिया में कब लॉन्च हो रहा है? जब लॉन्च होगा तब मैं करूंगा ना काम उस पे. Superlight 2 क्या है? माउस है. जैसे ये Superlight फर्स्ट मॉडल है जो सब लोग यूज कर रहे हैं प्रो सीन में. मैं I'm a Logitech partner, so I have these. Too many of these, and अब 2.0 आ रहा है. Second version of this mouse, which is super light. 57 I think. कितना weight है? 57 है ना weight पाजी? 4 ग्राम कम हुआ है. 62 से 58 आना. I think so. 58. 58. Doing a really good job coming in here this year for this UK squad, really putting up some tremendous numbers for them. You can't unbox it? Yeah, launch के time पे unbox करूँगा मैं. Mouse feet is still the same. Mouse feet तो it's decent only. हाँ मतलब upgraded obviously feels better. मैंने try किए हुए upgraded मेरे Gpro पे. अपने उसमें जो दूसरे हैं. कहाँ से लाए तुम? तब मैं कोर पैड से लिया. कहाँ से ले आए? कोर पैड वेबसाइट है. अच्छा इंडिया में देते हैं वो लोग? हाँ डिलीवरी 500-600 रुपए का पड़ता है. दो आते हैं. कितने दिन में आ जाएंगे? वे बेटर. आई थिंक 1 हफ्ता लगेगा. सही है. नहीं बट मैं हैप्पी हूँ स्विचेस चेंज हुए हैं. हाँ स्विचेस वाला तो आई एम हैप्पी, बट फीट भी चेंज होने चाहिए थे बिकॉज जो G502 पहले था और जो नया आया लाइट फोर्स उसमें फीट इन्होंने चेंज किए, बेटर लगाए. बट सुपर लाइट में बेटर फीट नहीं लगाए. आई डोंट नो व्हाई. सेम फीट मैंने ट्राई कर रखा है बट 2 फीट मैंने कोई तो बहुत ही बढ़िया वाले लिए थे. मेरे दोस्त ने दिए थे. उसने कुछ बाहर से मंगाए थे बहुत अच्छे वाले. भाई कितना क्रेजी फील आता है उसमें. वही तो भाई स्मूथ एकदम. बहुत स्मूथ चलता है. पर मेरा सैडली मेरे पास सुपर लाइट के लिए नहीं है. मेरे पास अभी वो पड़े फीट बट वो सिर्फ वायरलेस के लिए. अच्छा किसी को चाहिए तो बताना भाई. वायरलेस के फीट है मेरे पास. वायरलेस कौन माउस? Gpro वायरलेस. Gpro अच्छा पुराना वाला. हाँ पुराना वाला फर्स्ट मॉडल. श्रीलंका 50 ऑल आउट. Easy win for India. Easy win. भाई 50 तो यूं ही अकेला बंदा मार लेगा एक. That's a very difficult task. Argentina was able to do it on day 1, winning the first 2 Erangels of PNC 2023, but oh my god. Not into feet, sorry.
इस वाले मैच में इंडिया ने 2 किल लिए भाई। मेरा जीप्रो कब भेज रहे? पाजी तुमको ऐसे तुम्हारे दोस्त पूछते हैं, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पड़े हो तो भेज दो। Always no. देख टोमेटो जब 2.0 आ जाएगा ना तो मेरे पास वायरलेस के कितने मॉडल पड़े होंगे? एक तो मैंने दे दिया, एक मेरा एडिशन है, एक ही है मेरे पास। सिर्फ दो सुपरलाइट पड़े अभी मेरे पास सिर्फ, और एक मेरा एडिशन है जो मैं किसी को नहीं दे सकता। एक ये है जो मैं दे सकता हूँ, बट यार ये मेरा फेवरेट है यार, ये वाइट वाला। पप्पी करूँ यार मैं इसको एवरीडे। ये वाइट वाला मेरा फेवरेट है। Show your edition. My edition? Can I see your edition? Yeah, sure. Second place in the other one at a minimum and get a lot of kills in the process too, but And you have to hope Korea bottoms out. yeah, They have to like basically double donut. it's tough. It's really kind of on Vietnam, and even then it's मेरे पास दो चीजें हैं जो मेरे कस्टम एडिशन वाली है। Vietnam at the UK or This thing? Argentina or these other guys on top, but everybody from top to bottom on those standings is going to be gunning to try and get the best possible position they can. Because not just And this thing. on the line, but also the crowdfunding has been so substantial for this event. You guys are supporting PUBG Esports so much, and we thank you for it. And these players, every single one of them, they're fighting for the best possible ranking to get a piece of that pie, get a little bit more money. yeah, exactly. Every Full team cam matters kar. here. So, you know, we've got four bats, we've got Erangel. This is not over by any stretch of the imagination. There's still a lot to play for, no matter what. So. You don't want to go anywhere. There's going to be some great games here coming up to the end. I mean, every game has been explosive so far today. Big kill counts for the top teams. Yeah. So, you know, if that's any indicator of how this one's going to shake out, then you definitely don't want to miss the Erangels. I can say that again. I feel like almost every single win that's getting picked up, the winning team is 13 plus kills or something. It's just been a phenomenal day where everybody's showing up and trying to show their best stuff here at the PNC 2023, the biggest stage here in Seoul, Korea. UK looking mighty strong there, 2K total damage, but let's not forget Vietnam also with 7 kills, gaining a little bit of ground on Korea. Either of these teams, if they come up massively on Erangel, the same way that Argentina did on मेरे पास ऐसे कीबोर्ड्स बहुत पड़े पर take first place. I have at least 7 to 8 extra keyboards right now. Again, I'm not उसमें से एक रेजर वाला भी है जो मैंने नया खरीदा था, फिर लॉजिटेक के साथ पार्टनर हुआ। भाई मैंने आई थिंक टूर्नामेंट एडिशन खरीदा था, एक 10,000 का कुछ था। बस 7-8 कीबोर्ड्स पड़े हैं, बट सारे यूज्ड है। मैं सारे यूज करके रख देता हूँ, फिर नया आता है तो वो यूज करता हूँ। तो सारे गंदे हो रखे हैं। गिव अवे कर दे। गिव अवे तो अभी करूँ ना यार, ये वॉच पार्टी आ गया, नहीं तो मैं गिव अवे करने वाला था। मेरा गिव अवे अभी लाइव होता अगर ये वॉच पार्टी नहीं हो रही होती। 4060 Ti का जो पीछे पड़ा हुआ है। अभी ये वॉच पार्टी का सीन आ गया, नहीं तो चल रहा होता भाई अपना सीन। अभी लोग ग्राइंड कर रहे होते गिव अवे के लिए। 4060 Ti ओ पैंचो, हाँ भाई 4060 Ti गिव अवे हो रहा है। सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, जैसे ही अनाउंसमेंट आ जाएगी। अभी कल परसों में ही अनाउंसमेंट कर दूंगा मैं। वो कैसे होगा? 7 दिन में जिसका सबसे ज़्यादा वॉच टाइम होगा स्ट्रीम पे उसको मिल जाएगा। मतलब 7 दिन होंगे, 7 दिन के अंदर। देखो ये एक्सक्लेमेशन आवर्स लिख रहे हैं ना, तो आवर्स दिखा रहा है। जैसे यूनिक एवेंजर के सबसे ज़्यादा आवर्स है अभी 16 घंटे। वो मैंने रीसेट किया हुआ है, वैसे 300-400 थे लोगों के। तो मैं रीसेट करूंगा, फिर 7 दिन के अंदर जो सबसे ज़्यादा स्ट्रीम देखता है अलग चैनल है, वो टॉप 10 लोगों में से रोल होगा। 10 लोग के नाम आएंगे जो टॉप 10 में है, उनमें से एक बंदे का नाम सिलेक्ट होगा, मतलब रोल होके। मैं बोला था ना अलग-अलग। तो वो रीसेट हो गए आवर्स, और तुम फाइट कर सकते हो। मतलब तुम जितना ज़्यादा स्ट्रीम बंदा देखेगा उतना ज़्यादा चांसेस उसको मिलेगा जीतने का। तो अलग दिख रहा मेरे को।
ऐसे कैसे पता चलेगा? आई थिंक नीचे गेमिंग सेक्शन पे जाओगे, गेमिंग सेक्शन पे जाने के बाद यहाँ से PUBG सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर 7th पर मैं हूँ अभी, वो रीसेट होगा नेचुरल, वो रीसेट होगा जब गिव आएगा। 4060 Ti आएगा से क्या करूँ, हम पे तो पीसी है नो। अबे बेच के तो पीसी खरीद सकता है, 40-45,000 का कुछ जीपीयू है ये, आ जाएगी। You can sell this and build a nice cheap GPU. GPU कैसे system? रोज PUBG ये क्या है भाई? पर्सनल आर्ट्स की कमांड डाल दे। पर्सनल आर्ट्स की यार नहीं हो पा रही है। किसी स्ट्रीमर को तुमने देखा YouTube पे जिसके पर्सनल आर्ट्स का कमांड हो? तुम बताओ अगर देखा हो तो मैं उनसे पूछूं कैसे कर रहा है वो। 500 ब्रोज PUBG। ऐड पॉइंट्स ऑफ कर दिया। हाँ अब तुम ऐड पॉइंट्स नहीं कर सकते। जापान का अलग है ब्रो, ब्राजील का अलग है, सबका अलग है। ओवरऑल कितनी वॉचिंग है? ओवरऑल आई थिंक 77 सोलो को है। नाइस यार, नॉट बैड। सोलो की स्ट्रीम पे है। सोलो देखे लाइव है अभी, ट्राई करता हूँ। सोलो लाइव होना तो चाहिए ये टाइम पे। Solo Manan is not live right now. 21 hours ago. I think he will go live soon. हर्ष की स्ट्रीम पे तो दिखता है। क्या कमांड है हर्ष की स्ट्रीम पे? ये भी लाइव नहीं है। सोलो पे WH है। ओके हाँ तो देखना पड़ेगा वो लोग कौन सा बॉट यूज कर रहे हैं। क्या देखना है मैं बताता हूँ कमांड। पर्सनल आर्स देखने हैं। पर्सनल कितना आर्स है मैं पहले रखता था बट अभी पता नहीं क्यों नहीं होता वो। एक्सक्लेमेशन गेम में एस्केप फ्रॉम टारकोव किसने रखा है? स्ट्रीम एलिमेंट्स है यार। स्ट्रीम एलिमेंट्स मेरे में चालू है। स्ट्रीम एलिमेंट्स बॉट यार। पर्सनल आर्ट्स देखने का सिस्टम सेट हो जाए तो बहुत बढ़िया। मैं तो सोचा था एक और चीज ऐड कर सकता हूँ मैं गाइस। समझ लो अगर किसी को बहुत टाइम नहीं मिलता है स्ट्रीम देखने का तो मैं सोच रहा हूँ उसमें गैम्बलिंग डाल दूं मैं थोड़ा सा। लाइक तुम अपने पॉइंट्स गैम्बल कर सकते हो और जिसके सबसे ज्यादा पॉइंट्स होंगे उसका चांस होगा। समझ रहे हो? अगर समझ लो तुम्हें 1 घंटा स्ट्रीम देखने का 1000 पॉइंट्स मिलता है और किसी ने 5 घंटे देखे तो वो तुम अपने 1000 गैम्बल करके 2000 कर सकते हो, 2000 गैम्बल करके 4000, फिर 4000 करके 8000 एंड देन तुम जीत सकते हो। वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा। लोग पर चैट में एक्टिव पूरा टाइम रहेंगे गैम्बलिंग करते हुए, इन्वेस्टेड रहेंगे। तुम लोग गैम्बल खेलते रहोगे। ना इट्स लक बेस्ड। हाँ लक बेस्ड तो है। तो तुम गैम्बल मतलब जिसको सेफ खेलना है वो गैम्बल ना करे, बट जिसको लगता है कि मेरा कोई शॉट ही नहीं है भाई गिव अवे जीतने का, तो चलो मैं सारे पॉइंट्स गैम्बल कर देता हूँ क्योंकि मैं टॉप 10 में तो आया नहीं हूँ। फिर क्या पता वो टॉप 10 में आ जाए। मेरे स्ट्रीम पे भी गैम्बलिंग सिस्टम ऑन है, अभी फिलहाल ऑफ कर रखा है। Harsh bhai uses the command exclamation time to check personal command to check personal time. Bings के चैट में भी वो भी लाइव नहीं है ना अभी। हाइड्रा भाई के लक्षण CSGO ओपनिंग के बाद से ठीक नहीं लग रहे भाई। मैं नहीं करने वाला अब से CSGO ओपनिंग। अब मैं सीधा पैसे डाल के स्किन्स खरीदूंगा भाई। मैं CSGO केस ओपनिंग नहीं कर रहा हूँ। It will be unfair for people who actually watch, but there should be a way to compete with the top
Beware of bots. नहीं बॉट्स तो नहीं है भाई। बीजीएमआई क्रेट ओपनिंग भी गैम्बल है क्या? सारे क्रेट ओपनिंग गैम्बल ही होते हैं ब्रो। बट सीन ये होता है ना कि बीजीएमआई में स्किन खरीदने का ऑप्शन कम है। लाइक जो रेयर स्किन होती है वो तुम खरीद नहीं सकते, वो तुम सिर्फ ओपन कर सकते हो, तो लोग ओपन करते हैं। पर CSGO में क्या है, सारी रेयर स्किन्स जो भी तुम्हें चाहिए तुम सारी खरीद सकते हो, तो तुम्हें ओपन करने की जरूरत नहीं है। फिर वो गैम्बलिंग में आ जाता है। If there is no option, you can't really call it gambling. But if there is an option to purchase and you still go for the cases, that's gambling. Okay, there we go. Oh my goodness, they win! Unbelievable! Oh my word! An H-win knows इस चीज में वैलो अच्छा है, बट वैलो कच्चा भी है क्योंकि तुम स्किन्स बेच नहीं सकते। And that is the shittiest thing about Valo skins. You can't trade, you can't sell your skins, bro. नहीं तो मैं कब का मेरा 1 लाख का इन्वेंट्री, 1,60,000 का इन्वेंट्री है मेरा, मैं कब का निकाल चुका होता। मैं बिना स्किन्स के खेलता भाई वालों में। पार्टनर है ये लोग। हाँ, हम लोग ऑफिशियली पार्टनर नहीं है, हम लोग स्काई स्पोर्ट्स के थ्रू कर रहे हैं। I saw him going home on a bike once after one of these events. ये लोग PUBG पार्टनर हैं और ये लोग कर रहे हैं। Was it one of the foldable mountain bikes that you got at the candy? इसलिए इनका नाम है। That's where Salman learned it from. All right, we're going into it. Erangel, 2 more games to go. पाजी, Let's see what this one's. आपको नॉलेज होगा, मेरे को अगर पर्सनल वॉच आवर्स दिखाने हो स्ट्रीम पे, लाइक लोगों को सर्च करना हो, तो क्या कमांड और कहाँ से होता है वो? उस पे ना स्ट्रीम लैब्स में ऑन कर दो। अब किया हुआ है क्लाउड बॉट ऑन, क्लाउड बॉट पे। हाँ, बट उसमें सिर्फ टॉप 10 के दिखते हैं, पर्सनल नहीं दिखता। उसका डेटाबेस मेंटेन ऑन करना पड़ेगा, आई थिंक वो ऑप्शन होगा शायद। नहीं आ रहा है ना, मुझे पता है, मैंने तब किया हुआ था। हाँ, मेरा भी पहले चालू था। स्ट्रीम लैब्स की एक एप्लीकेशन थी, वो आपके पीसी में डाउनलोड होती थी। हाँ, पर पहले क्या है, यूट्यूब डेटा रखता था, अब यूट्यूब वो वाला डेटा नहीं देता है। अच्छा, ओके, हो सकता है समझ रहे हो, चीजें चेंज हुई हो। कुछ चेंज हुआ था तब से वो ऑप्शन हट गया था, बट कुछ स्ट्रीमर्स के उसमें चलता है। हो सकता है, तो पता नहीं कि क्या सीन है यार, क्योंकि मुझे करना है यार, उसका काम है बहुत हैवी वाला। अच्छा, समझ गया मैं, काम समझ गया मैं। वही ना, कार्ड वाला। क्या कार्ड वाला? गिव अवे। हाँ, ग्राफिक कार्ड वाला। हाँ भाई, इंडिया को देखो। हेलो कहाँ ड्रॉप लिया है भाई? हेलो भाई, यूके से बहुत प्यार है क्या? हर बार यूके कनाडा कनाडा से ज्यादा प्यार है भाई। Green right now have been on fire today. A 13 kill win, a 17 kill win if I'm not mistaken. Just absolutely phenomenal stuff. We'll see if they can continue that momentum. Yeah, but the problem here is that because of this bad plane path, it looks like the UK and India had similar ideas about how they wanted to drop here. So this could get a little awkward. And I was hoping for a northern circle because it was. I was hoping for more Zarky shifted, but anyway.
But it looks like for now the UK is going to be okay. Guys, But some of the teams gambling on the military पोटी आ रही है तो क्या मैं जाऊं या फाइट देख के जाऊं? A lot more than usual. Usually it's just one or two teams that are आने landing on तक इंडिया military जिंदा island, but instead, हल्का होने तक. I think Kingdom and India especially going to have a long route back in, and you can see Brazil right now if you're watching the map feed. You know, they might have landed on the north part of Sosnovic Island, but they're already heading to the bridge. They already want to start that rotation because of how dangerous it is, how treacherous that terrain can be, how many different positions that teams can entrench themselves in, trying to catch you, making that rotation on the outside. Yeah, and if the UK भाई मैं had जा रहा हूँ any फोन लेके जा रहा हूँ मैच ideas तो about देखूंगा going to but their हाँ, normal I'll be drop right spot back. at Milta, it's going to be cut off by Brazil. So Guys, they're going to have to maybe please enjoy the match change and gears don't leave here, the stream. maybe I'll try to be go back. to Novo or something instead. I'm watching the UK very closely on the map feed because that is a pretty important part of this right now as they're in third place. Vietnam, around the farm, has their sort of normal drop spot to themselves. Korea had fanned out early. They sent 2 DIs. They left 2 out in those compounds just north of the river. So for now, Korea, yes, they could potentially be in a good spot. They've got priority on some of those compounds around the center of the map, or of the circle, I should say. But we'll see. Sometimes that could be a little bit of a double-edged sword when you're able to get that center early. Sometimes it does cause problems. Sometimes teams crash you because they don't have a lot of other choices in places to go. Yeah, we'll see exactly how Korea decides to play it. Thinking back to Taego and Vikendi, Korea, even when they found out quite early, they were not afraid to just kind of try to consolidate and not stick around for too much ground. Is actually, hold that thought as Brexco. An early sightline here on Schofield. Now he does have a 6X Mini 14, so if he gets a long enough angle, which it seems like he might, with a lot of the players on Turkey loading up into this US, he is going to pop off. Now it's hard with the cover from the trees. And actually, wow, Cohen Marco, I can't believe you made that shot. Driving away and also shooting uphill. Fantastic stuff. But, you know, Korea, as we've seen from them in the past, 2 maps after they got that 30-point win, yeah, they like to fan out early, but then they like to consolidate. And they like to play very defensively in the mid-game just because they know that they don't need to put up really big numbers to add on to their lead. They just need to get a handful of points. It's why their loot wasn't the best on Vikendi. And now I'm curious to see whether they're going to do the same thing here with Sol and Loki joining forces with everybody as the first circle closes in. Yeah, absolutely. They're going to opt to go for the Crossroads compound just to the south of Severny there. So I imagine we're going to be seeing the full forces of Korea arrive here rather shortly. I see some of them loading up in vehicles out of Yaz. So I think that's a great position to consolidate, to fortify. And if you gamble correctly, if this circle does end up going east, you are going to absolutely be in a phenomenal position to win this event. Denmark going across the bridge. They had dropped military base, and they will be cutting through. Nobody from Chinese Taipei is bridge camping that, so it should be safe. Yes, indeed, UK did go Novo, as I kind of was hoping they would do, frankly, based on where they were and how they were driving. They kind of needed to. There was no way they were going to get to Milta first, so better to just take what you can get, hopefully find an E-pickup, and move into this first circle. Yeah, I'm wondering if they got one of those as the circle is going to start moving in about 20 seconds. Luckily for them, even if they do not have an E-pickup, it doesn't seem like Vietnam is too keen on bridge camping in this one. They got a gun for it. More points than that if they want to start to close the distance on Team Korea. You don't just need a 4 pick-off there on the South Bridge. You need to start wiping multiple teams and putting yourself in position to actually win this lobby if you want to close the distance. Well, I thought maybe Chinese Taipei wouldn't mess with them, but they kind of did. And, maybe. Savior? No. Okay. Yeah. He went for the angle, but a little bit too slow there on foot. It was going to be tough to pull off. With the way they were fanned out, I was like, there's no way. But Denmark opted to drive a little bit closer to the 2 players that were up by the 6-packs there. And it gave the Chinese Taipei a little bit of an opportunity potentially, but not really able to do much about it. Instead, South Korea changing directions. They're not going to sit on this Crossroads compound. They are now going to be rotating out, but there is Argentina up on the hills to the west of Severny here, so that is going to stop them up short for now, and maybe they might rethink this and take southern tip of Severny potentially, but I don't know that I like leaving Loki on an island in that Crossroads. Yeah, I'm really surprised they have Loki all the way down in those southern houses. The ones right below Severny is, Turkey, oh my goodness, what is going on here with these cars? Whoa. Some funny physics right there as they drive over each other. That's going to give Luke 12 an opportunity to start shelling them with some damage, but at this range,
Really hard to find too much. Only gets about 50 or 60 damage in on Team Turkey, but I'm reminded of an old Pansy quote. I'm not going to say it, but old school PUBG fans will know. That's all I'm going to say. I remember the early days in PUBG where the physics was a little bit more wonky. It's not about that. I know it's not. I'm going down a different road. But I do remember very early on, first time Miramar was getting played, colliding in vehicles and just getting sent absolutely to the moon. That happens. It's a lot of fun. I miss those days, to be honest. Yeah. The players don't, but I do. USA up towards Everest. They're just going to be driving up the hill, getting some information using this. This is like old school PO stuff here, just coming up to the top and checking out what's going on. Maybe if they stop, maybe they're just driving. Okay, they're not going to. Okay, yes. I was going to say I fully expect them to stop up here and do some reconnaissance. Yeah, just chill in the north face of this mountain. And they should be able to hear Chinese Taipei also inching up behind them there on the south as Vietnam begins to make their dash, going through the short bridge to the west of Yaz. And not too many teams ahead of them, just Denmark over there to the west, holding on to the compounds on the other side of the street, as Vietnam should have an easier path. And now looking at the map feed, Korea actually did reinforce their southern houses, going for a 2-2 split with 2 players in Severny, 2 players at the houses right to the south of that. Denmark has made their way. A long drive finally finds themselves in the circles. Japan's up around their gas station in a split towards this warehouse, it looks like, for Vietnam. Warehouse is open. It's pretty far on the eastern edge, so normally a powerful position if it's towards the center of the northern circles is not. So unless there's some hard shifts for Vietnam, this is just a staging ground. Brazil on the outer edge potentially might be gunning similar positions. We'll see, but Vietnam is super spread out. Yeah, Vietnam really fanning out on this eastern edge means that they might be vulnerable here to Brazil if Brazil can sniff out this position. Dude, look at Kino, man. He is engaged, dude. He has got his game face on over there at the camera. I didn't look. I looked at the player cams and he was like looking like he was ready to rumble. Love to see it, man. Denmark, they are in a great position right now, sitting at rank 5. You know, it's only about 10 or 20 points to find themselves all the way up in second place. Certainly is some potential here for Team Denmark in their first ever PUBG Nations Cup here in 2023. As Vietnam just continues to roll in. Now they are consolidating a little bit over here, and that's good for them because Brazil is hot on their tail. Haven actually taking a forward position towards these rocks. Is going to try and find an angle. Oh, duck shoes. This is bad. He spun out. Oh, the help though. Denmark's Gustav put some serious damage into Sparking. And Sparking can't really hold that angle any longer, or he risks getting knocked. And that may have just saved Duck Shoes' life. I am back. क्या सीन चल रहा? Duck Shoes is in a really dangerous position right there, but luckily for him, all of it. पर इन्हें तो मूव करना जल्दी स्टार्ट किया था. किया तो था, but अभी तक पहुंचे नहीं है. Like now, अटक गए. Our position here to the south. Oh, emergency pickup हो रहा है. Let's go. First time India taking emergency pickup. Way to go, and I'm wondering exactly where they're going to try and drop in this circle because that center circle, the next wave, there's not a lot of real sector. Maybe if you go for the hills or the crashed planes, but there's going to be a lot of teams with eyes on you. Yeah, if they can see that the crashed plane is empty, it should be okay. Vietnam chasing down the party members of Korea out of Severny. They're just going to be up and over the hill. Japan, hello. Whoa. They are just slaughtering Denmark. 2 players down in the drive-by. And they're going to take this dip once again outside of the shooting range. This time able to find some points out of it. Brazil hot on the heels of Vietnam once again. Vinny going to be leading the way. Sparking going to be the turret there in the other car. But for now, looks like they're not going to be potentially jousting. Just a little bit out of range, but Korea, they heard that. They know that Japan's back in the same hidey hole that they were in last time over here on this kind of shelf position right above shooting range. And let's remember how dangerous this can be if frag grenades start raining in. You can see Anonix jump peeking. Oh, he saw 3 bodies right there. Frag grenade immediately comes out, pulls the pin, throws the nade. Let's see what he can find. Oh, they're clustering over there by the vehicle. Oh. He gets 2. He gets 3. Heaven! Japan is eliminated. Korea gets 4 Why is it always Japan, bro? Unbelievable. Japan just laughs. They can't do anything. Why is it always Japan? Getting wiped so... A little bit too far out there, but those 4 points for Korea are absolutely all that they really need potentially
Now they're going to try to take the fight to Canada. Keenan takes a bunch of damage, has to prone down. Soul and company trying to keep their friends in the back alive, trying to keep this hillside clear. And for now, they're going to do so. And now, now Canada's revealed their position to the late entry of the United Kingdom. Might be able to hit this flank and hit it hard. Soul looting those bodies over there, picking up some upgraded gear. As Japan really didn't have a lot of time to use much of their utilities, so Korea, even though they have only 3 men, should have a lot of stuff back in their inventory. Fully loaded as Vinegar goes down. UK continuing to press on this Canadian position. First blood fired here. Curious to see whether Canada decides to try and reinforce. Borderline clutch HydraFlick. Say go for Finna, but VAR just immediately flushes them. Yeah, this is great stuff here from the UK. Really gives them a little bit of extra breathing room here on the edge of the circle. Gives them some safety to regroup, kind of rethink, get prepared for their next rotation. Meanwhile, Canada scrambling to get to safety, and they are able to do so for now. And this also gives you the ability to keep your vehicles a little bit safer for the UK because you've got that cover of the buildings. Honestly, a really nice timing maneuver there. Meanwhile, Germany is going to go back to going out wide, going out to the edge. Safe to on that western side for them to go. India, on the other hand, by the way, if you're curious where they ended up on their emergency pickup, they went to the coast. They're on the rocks, way out there. So trying to play north to south. And not a bad idea, to be honest. I don't mind playing that position myself. There's a decent amount of cover usually to work with. So we'll see if they can make something of it. Got team Vietnam right now with a nice spread to the west here of shooting भाई range. बात कर रहे हो तो दिखा भी तो अच्छा उधर चले गए भाई बिना गाड़ी के Next phase about to pop, about 10 seconds left on that one. Vietnam the closest team to catching up to Korea, but that gap is widening after Korea wrecks Japan. Oh, zone भी उनकी तरफ ही बना है. Great shooting, 4 more points. Circle's going to center up over here on the north side. Korea's got some way to go. Germany's pulling up. And the Dacia start making their way in, and they only really need a couple more points. Thailand नहीं move करेगी भाई, Germany है. Really reinforcing it and setting this thing out of grasp from these other teams. But let's see, Canada coming in on the top. Germany या तो अंदर घुसेगा या तो मरेगा. Going to take some shots. I was going to say, not only do they have a way to go, they've got a lot of teams that are going to be either in similar trajectories or already planted. A widespread Vietnam may be disastrous here. This could be huge for Vietnam if they could take players down from Korea. Seoul already banged up. The sprays from Duck Juice does a little bit of damage to Loki. No knocks yet. Can Korea get out of this with all 3 still intact? Germany might just deliver some cars to India. Both Seoul and Loki just 1 or 2 bullets away from getting shut down right there, but they're able to Nothing new survive, about that. cross that road. I mean, there was so much damage coming in from Team Vietnam, and Denmark was close as well. Precarious position, but Korea able to salvage it. No more knocks, just an Onyx down as Turkey and Canada continue to battle over here. Some knocks coming through. China also with some smokes trying to cover. They are dead center on this circle, fighting for this position. And Clib, during all this, working very close to Team Vietnam. Aisaki sniffing this out, gets Kino with a frag. And that's like, if you're Team Korea, you're watching that and going, oh man, there's nothing we can do about that. Can we steal this kill? Is there anything we can do? Not too much right now, but maybe Clib. He's got some heroics, got some special moves inside of him. We'll see. He's got that Groza and a Car 98, the level 3 gear. Aisaki, though, is just better. Oh, Denmark takes is also Clip out. down. Vietnam is going to find some more points. Vietnam adding another kill to their total. 124 points in total on the board as Korea works their way up to this top shelf. And that fight gave them the opportunity to make this rotation. That's smart stuff here from Korea. I mean, this fight was over in a heartbeat. This was just... भाई ये तो बहुत ही crazy कर दिया था कोरिया ने. I feel like the opening shots here just kind of clustered Team Japan as they run for cover. They knew it too as Anonyx's frag catches 1. Now the follow-up there from Evan, just so good. Japan eliminated in a moment. That fight was over before it started. Exactly. It really was. We talked about that position last time they hold up there. I mean, if you get pounced on like that, there really isn't too much you can do. No, there's not. It's a tough spot to play from. हाँ अभी तो टाइम है सरवाइव करेंगे अभी तो. Do what they can here. China. Germany 2 U-turn मार गए ना. Probably got a knock. Brazil there. Get a res. Grenades are out here against the United States. उन्हें पता है ना उन्हें या तो इंडिया के अंदर घुसना पड़ेगा या तो फिर
ये थाईलैंड भी ऊपर पीछे कवर देगा ना उनको. Instead, just one bullet away. Chinese Taipei just trying to push this, but the blue is coming. They really need to work past USA. Time to fight Thailand. Brazil and China going toe to toe. Ix left very low HP, 1 HP in fact. We give them economy. First, but it's too late. Molotov gets him, sparking also with the AUG, able to spray down and get some kills. Sparking there almost ended the round here for China by himself. They were bumping into each other in that smoke. It was literally point blank. Shrimzian, one hit. Zenon trying to find it, cannot find the knock. Grenades are out now. Haven trying to come in. LFP1 about to bleed out. Looks like he's on second knock. And Brazil trying to come in and finish what they started, but it's just Haven left. He's stuck to the backside. Are they going to be ready for it? Can he get the last one? He can. Haven holds the spray down, and the Chinese team goes out in 13th. Beautiful movement there by Haven to line up that shot. Had to jump through the car seats and then line up the greatest angle to mow down both of those Chinese players. Love to see it there as Luke 12 here from Australia is going to start taking down the remnants of a Chinese Taipei that's battered and bruised from their battle with the USA. Now, the USA was eliminated, but Chinese Taipei is certainly paying the price as Germany and Australia start to close in and take these pot shots. That need a little bit too far. Loki trying to get away from this position. Man, the Koreans are survivors right now. It's unbelievable. And there goes Salman Chinese is Taipei. knocked again. Firepower, Abika and its Kriz are going to end their round. Thailand ही knock कर रहा है ना? कौन knock कर रहा है? Knocks onto India from afar, but not able to claim any of the points as there's plenty of safety on these rock ledges. एक रेस हुआ है ये तो अब भी knock. They're going to be out of the circle soon, but और कौन बचा है? It is going to be a kill though to have an every point. Translucent is gone. Puts Korea further and further ahead. वो तो बहुत दूर था, वो तो पहले से इतना दूर से खेल रहा था. Vietnam going to have to come through with a big game here in this one. If they are going to catch Korea them, भी they're अभी going to यहाँ have to hope that पे Korea they've doesn't continue spotted. to rake in points. Korea's already got the most kills. भाई I think Korea is going for them. Vietnam has to have a really big win here. They can't. On the first Erangel of the day. हाँ उनको कुछ जोन में जाना ऊपर से Thailand. But the Koreans, it feels like every single time they get into a situation that's precarious or dangerous, they find a way out of it, whether they're getting shot on transfers or rotations, or whether they're getting caught out with knocks. I mean, they still have 3 players up, and it's just incredible the tenacity we're seeing from this crew. They've just been playing really smart here today. I mean, after that 20-point game, which was brilliant, they were taking great fights, covering space like I've never seen in an event like this. Just there's very little they've done wrong here today. I mean, even go back to the beginning, the small amount of loot they had as Thailand dispatches some of the Indian squadron. That's Salman going down. Oh man, Loki got that one. I thought it was Thailand for a moment. That's another kill in the bag here for Team Korea. But this is so smart. This is so smart. They know that India's, completely screwed. And they know that Thailand is going to be the ones doing the damage, and they can take more points. It hurts. Heal battle it hurts a lot, and the circle's good for them as well. Korea doesn't have very far to move. I mean, just everything is going their way. It seems like destiny here. But this is just them playing smart. This is them recognizing the situation, recognizing that India's trapped, and there's not much they can do, and knowing that they can put themselves in a position to steal points, and that's exactly what they did. बात ये भी हो रही है बिना नॉक के पुश बहुत. Team Vietnam during all of this very quiet. On the eastern front, not too many fights they can find. Luke 12 finally eliminating Brazil. UK doing a bit of battle here with Team Turkey, who's had a bit of a quieter day 3 after an explosive day 2 here at PNC 2023. Top 10 kiya apne India ne. Blood knocked for Australia. The Mad watching to see if anybody's going to go for the res. You got Germany harassing the Australian team as well, and Korea's getting knocked, but Vietnam in trouble. This is really important. Vietnam, again, needs to have a big game here, but their all-star Himas already knocked in some great shots from MX. He's going to get duck juice as well. Hisaki trying to get down here, trying to save some of his players. Might have got spotted momentarily on the top of that smoke, but Emick really doing a great job at range with that SLR. Yeah, luckily for Vietnam, there's nobody at close quarters. As Argentina now starts to mow down UK. This is the other team that's also on the tail here of Korea that needs a big game to start to close the gap, but they're also taking a ton of damage. Reeboks gets another knock on a Himas. Actually, no, the flush, excuse me. As they lose their star player, Vietnam now down to 3 men, and Loki gets another kill, this time on Thailand. I mean, with these DMRs, she's just getting point after point after point for Team Korea. 8 kills in total on the game. Brutal. And they're scavenging these. Yeah. No, I mean, they're just harassing.
from range right now, and they're just so accurate. They're so confident. They're so dialed in. They're hitting, you know, it's like everything looks like beach balls to them. DraftKing, he can get one more hit. There it is. इंडिया टॉप 10 और टॉप 5 होता तो हाइप होता. अरे हम बोल रहे थे हम जीत गए. This door, I think he should be angling for it. He can break it open just enough, but doesn't feel like he can quite get close enough. Doesn't feel like he maybe has the spacer. Maybe the hope. Korea on the other side of that. Grenades down below the Mad. Splashes behind him. Germany trying to get down this hill, trying to barrel down on top of him. Yeah, it's Chris right on top of him. Gonna retreat a little bit because his smoke is blocking the vision. Takes a ton of damage. Does get knocked there by Tivo. UK getting in the mix of this fray. The Mad popping off. Gets Koa and Mika there. From Team Germany, Turkey catching a little bit of life right now. 3 men up. Germany's down to 1 man. It's Brexco, and he's just going to go for it. He's going to try and survive. वैसे तो इकोनॉमी देते ही है यहाँ पे kills भी दे दिया हमने. Not much else he can do at that point. There was no hope to get those reses, and the UK is going to feast potentially on Turkey. Some good shots there. We're going to keep them back for now. Thailand lost a player trying to do more. Korea is trying to harass the backside of Thailand as they're trying to get up this hill. Rossiter Jr. flanked out by them. Loki going for the shots. The circle doesn't do much in the way of being super interesting in terms of its movement, just kind of centering up more or less. Tanadol comes up short. The Rossiter Jr. is going to take down Seoul there. Evan and Loki still on their feet. Oh, and Team Vietnam taking a ton of damage. That nade from MX is right on the money. Duckju's the only player up here for Team Vietnam. He's going to have to do some Berezes here in this shed. And Team Vietnam desperately needing a big game here today. The time is ticking. Yeah, the next blue is not far out. And Argentina isn't going to let him get away with it easily. Loki is absolutely tearing teams apart by himself right now. Just nuts with that Mini 14. I mean, that Mini 14 is getting so much damage. He's stealing kills, he's getting knocks, he's getting flushes. Whether it be India or Thailand, just at massive range. Just look at how many frags he's got. Yeah, they haven't been using them because they're so far away from everybody. They're just taking pot shots in heaven now, going for some kills. Flores during all this gets a headshot on Fex. If Loki gets one grenade inside of this shack, this is disaster for Thailand. It goes too far. It bounces over. I don't think he quite has figured out that they're inside of it. He should with the next one. They're going to shut the door. He's got to find the window. He just misjudged it. Expecting them to be behind. Not able to get the damage he wanted. 2K 180 The process of elimination should have a pretty good idea. They're both in the shed now, though. And yeah, he's just prone waiting for it, man. He's waiting. No more frags. Even Smoke going to get closer up. A good gaming mouse under 3K. All right, Vietnam starting to fight back here against Argentina. They've been up against the ropes for what feels like the past couple of minutes, but these frags are pretty good. A lot of damage coming in. Honey Badger also getting mixed up. ये बढ़ सकता है. With Germany able to eliminate them from the lobby. Brexco finally dragged down as Cloris pushes up. LA on very low HP, finds the feet. Sheesh, nice spot. Does Cloris. That's one more knock. 2 players now up. How in the world? I don't know how they turn this around. How? How did they get out of there? I thought they were dead to rights. I thought there was no way. I mean, this grenade from Cloris. Oh, it bounced out. It didn't go in. If that goes in, the other one doesn't do it either. I mean, it bounced to the outside, and Vietnam has been eliminated. Last 4 teams. 2 players up for Korea. Loki's been getting so much done. 2 for the United Kingdom. 3 for Argentina, 3 for Thailand. Vard taking a ton of damage right there. UK had the last chance to start to close the distance, but they need a win here. Korea's still alive. On the second to last map of PNC 2023. And Korea's not even playing this safe. They're going for kills. Yeah, they're closing in on this. They hear the action between the United Kingdom and Argentina. Loki and Heaven. They're running, they're getting ready to cross the road. They're moving with some swiftness here. They want to catch these kills. They want to clear the UK and secure the victory in the bag. And here comes Heaven, he gets MX. Oh my goodness, 2 more kills. Loki and Heaven combined to wipe Argentina. Now they're going to take the fight to the UK. This is an absolutely stellar game for South Korea. Playing this so smart. Picking on the backsides of teams, but now they're out in the open. Tanadol hits a headshot. He's got the knock to follow. Heaven has been taken down. Loki, the lone survivor, the lone player here for South Korea. Going to see if he can sneak out any more points. He is an expert at this. Again, so many times across Thailand looking good. Unbelievable career that Loki has had. The guy that you quietly could also pretty close. An argument for being one of the best to ever play this game. Certainly one of the best support players. But I doubt they can win this thing. Even if they win this, to ever play this game.
this Loki match. is definitely up there. UK has the best chance to compete internationally, against looking Korea. to find this first PNC. Loki just surrounded by the bodies of his enemies. फिर And भी you're बहुत absolutely lead है right. भाई, बहुत Paper lead है Kid, this नहीं guy, a यार, legend कोरिया in जीत his रहा है own मेरे right. हिसाब से तो. A critical part of the success for Team Korea, not just in this game, not just today, but across his entire career. UK 10 needs to win kills this in total. game, and then Now next game Loki Korea needs to biding get his out time, first, and then waiting UK for needs to the close in with a UK 20 and kill Thailand to win. meet in the middle and start fighting so he can पता नहीं भाई. scavenge like a vulture from the sidelines. With all those corpses at his feet, able to restock a lot on meds, 6 first aid kits to be found as he slowly works his way in the circle. Stand it all though, he finds him, he's up against the blue. Loki's gonna have to move a little bit faster than that. Trying to dodge and weave to get to this tree. He's down below the side of the hill. There's a res coming through. Tanadol, I don't think can quite see the foot. Loki's going to get the heal off. He's got a blue zone bag, so he's able to survive a little bit longer. Tanadol keeping his eye firmly on him, and that's going to be it. Nice. Loki does steal a kill before he goes down, though. Oh my UK का एक बंदा ले गया वो. Loki just getting every possible कर गया वो. value. Gets Honey Badger before he goes down in the last frame of his life. As Korea solidifying their position in 3x, rank this 1, could be and for dangerous. UK to keep their dreams alive, Bard needs to win a 1v3 heroics, पीछे but से आ रहा है, Rossenden not aware. Jr. is at his back, GG. paper thin. Yeah, I mean, GG. it's gonna have to be a win, but I don't think there's much you can do. Yeah, indeed, it's gonna be a win for Team Thailand. 5 kills, but still keeping themselves at the top of the leaderboard. And like we've been talking about all day, every point matters. And now they are up into 4th place. A phenomenal performance here from Thailand throughout this event. Steady as she goes. Some wins. They've been safe. They've been cautious. But those kind of maneuvers have been what have been profiting to achieve max points in last match. Quietly one of the best teams in the world here competing at PNC. Confidence चाहिए bro for इनको. Team United Kingdom, Third party करो. you can see a little bit of frustration right there with the way this one went. 1v1's like Korea just from the नहीं हो रहे sidelines. तो After थर्ड killing पार्टी में Japan, जैसे they move all कोरिया the way up कोरिया to the कर रहा था ना north. जैसे They fight at पोजीशन खुद को ऐसा range, पोजीशन and कर they रहे हैं जैसे rack उनको up 11 points kills in total free in that points बहुत lobby. मिल रहे हैं. Not to mention the वो placement of course points they got dominate by भी कर रहे हैं Loki but वो just points being an बहुत collect भी कर रहे हैं absolute इधर उधर से. survivor. I mean, the जैसे इंडिया के Koreans, points collect they कर were रहे हैं. able to wiggle their way out of so many situations, whether it be themselves driving up to the north to avoid the fire of multiple teams, including Vietnam, who was trying to chase their tails for that first place. And that PNC trophy might finally be coming home to Korea on their home soil here in Seoul. It's going to take a miracle, if I'm just being honest, for one of these teams to beat them at this point. That was the nail so far into the coffin that it may already be over. We'll have to see, though. But it's still a phenomenal performance here on this final day from the UK, by the way. They are putting up outrageous amounts of points, and they are climbing that leaderboard really, really quickly. But Korea, just the game sense is so smart. Sensing the weakness of Japan and pouncing instantly on it, knowing that all they need is these kill points. Doesn't matter. The rest of the way, they played it even more brilliant, just harassing the edges of the circle, making every shot count. And that's what has got them into this winning position. Peak level PUBG I mean, you चल go रहा है back भाई. after that 30 kill win, or not 30 kill win, 20 kill win, excuse me, the 30 points that they were able to accumulate. You go to the Kendi, they had no loot. They were in a bad part of the circle, and they showed the same tenacity that they showed here on Erangel. Just able to get every possible inch of value. I mean, Loki, even with his dying breath, stealing one more kill from Team Thailand is incredible. I mean, United Kingdom, they put together an astounding day. Multiple wins with double-digit kills. Dynamo actually used to play PUBG with 8 PC. more kills, but it just goes to show how strong Korea has been. Not just today, but over the course of this entire tournament. They still get the most points in the lobby at 16. crazy expect नहीं कर रहे And as you अभी said, अभी Paper, कोरिया it feels जीत like रहा the है nail that's in for the sure. coffin. Just a masterclass performance from South Korea on their home soil, coming into a PNC where they never won a chicken dinner in this event in their entire history, which is unbelievable. But day 1 they got one, day 2 they got one, and now day 3 they're just gaining even more momentum on top of the world in one of the most competitive fields of PUBG action Korea we've got ever the max seen. points. Yeah. Even though they finished It's just a special moment here in Seoul, South third. Korea. And these players, well, they know it. Their confidence is through the roof. The way they're playing, I can just see it. I mean, I can just sense it that Seoul is completely dialed in as the IGL. He's calling a brilliant game. Loki is as sturdy as ever.
Kevin is slotted in so nicely here, a little bit shaky on day one. Again, I talked to them afterwards and they said he just isn't used to the way they calm. And now it seems like he's fitting in quite nicely. Anonix is Anonix. Just one of the all-time greats. इसके बाद कोई टूर्नामेंट है अगले साल से होगा. अभी इंडिया में होने वाले 2 टूर्नामेंट्स हो रहे हैं PUBG के. एक सोलो हो रहा है, एक स्क्वाड हो रहा है. सोलो वाला 19 से रजिस्ट्रेशन ऑन हो रही है. Man of the match is going to go to Rossiter Jr. I'm thinking खेलूं या watch party करूं. A couple kills, 3 knocks, but really just, you know, again, sturdy, solid, safe play from Thailand has profited them a ton of points. Guys, they're doing a great job in this event. Quietly, they're in the top 5. Solo तो मैं खेल लूंगा यार, दिक्कत नहीं है मेरे को. It's kind of incredible what they've been able to Grind put together. करेंगे थोड़ी It feels सी. like every single game they're getting a little bit of damage in, a couple of points, sometimes a couple of placement points on top of it. Just captain consistency right here in this Obviously lobby खेलो of खेलो 16 खेलने का मन है teams. मेरा watch party से. You know, maybe the USA, the United Kingdom, Vietnam, Korea put together these highlight reel performances. Yeah, so I'll play. I'll participate in the solo tournament. You see tournament. it right there, not even top Not 5, sure top how 4, I'll perform, but I'll try my 122 best. points. But Korea, with this massive lead, it's going to take a miracle from the United Kingdom. Yeah, it'll be fun to play repeat a PUBG performance stream करते time. Honest, there are very kind few of esports games in वाले scenario PUBG में. esports history that can accumulate that many points in the entirety of it. There's been a few, and that again, this all requires. मैं आज तक सिर्फ एक सोलो टूर्नामेंट खेला और वो मैं जीता हूँ. Back in 2018. बहुत अच्छा मैच था उस. But to get 33 points I was on in fire. one game, there's in an international Last game PUBG chicken dinner esports निकाल के event, जीता there's था. only been a handful. That's just the truth of it. It's a less than 1% chance here that Korea loses. Yeah, and the competitive field here as well at PNC 2023. We had the legends. That was the all these only different solo tournament I countries had of all played. these different regions coming together to share one of the grandest stages that PUBG Esports has ever been able to put together. And to be able to have a performance like that one, you know, 33 points, even assuming that Korea gets 0 with a competition this still with this many stars on stage, it would be unbelievable. I mean, Korea, they are so dialed in. Loki picking up 5 जिंदा करो kills, उस जोश को वापस. catching Honey Badger right there. Just tremendous stuff. ऐसा एक स्कॉट टूर्नामेंट भी जीता था ना थाईलैंड में हुआ था फाइनल्स हां 2019. Feels like for days. भाई थाईलैंड नहीं, हम तो फिलीपींस भी जाने वाले थे. हमारी टीम फिलीपींस के लिए भी क्वालिफाई हुई थी. कोविड ने जीजी कर दिया हमारा. कोविड की वजह से नहीं जा पाए. It's truly special. टिकट तक आ गई थी भाई हमारी. हम एनिग्मा बूट कैंप में थे 2 महीने से. एनिग्मा नहीं, सॉरी, एंटिटी बूट कैंप में थे 2 महीने से. हम लोग जस्ट मुंबई से निकलने वाले थे फिलीपींस के लिए. हमारी टिकट हमारे हाथ में. 7 दिन में हमारी फ्लाइट है. हम लोग रेडी है, जोश फुल ऑन है. Letting the pressure get to them. No, that never happened here today. Coming into today, they're the top team. They did not let their foot off the gas. They did not let the pressure get to them. घोसली को लेके जाने वाले थे. They're doing this in front of their home crowd, you know, in front of this entire stadium that is trying to will them to win. None of that fazed them at all today. It has been one of the best days I have ever seen from a team coming into their final day with that lead and making sure that they kept that lead and secured it. Yeah, and it's not even them playing conservatively after picking up a 30-point win. I mean, they are just feasting on the sidelines. You know, they play edge like they did in that game, and they find so much value. You look at their position in the circle after they clean up Thailand में तो हम लोग भी पिटे ही थे यार. They're really going to have a hard go of things from there. But at least we had 35 points. 4 points. And given their position on the leaderboards, I mean, that 4 points, it might be enough. But they find a way Would to you like to enter the scene again? more No. kills. Right. No, not really, just bro. the game sense, the play calling, the shots. I'm done with this Everything scene. is on point. There is no aspect of Korea's game where they are lacking today. It is some of the best PUBG action I have the opportunity, ever seen. Yeah. But and even though the UK in some ways bro, I'm done with the scene. having a better day in terms of like total points, There are better players out there. I want them to have the they chance. weren't in first place coming into today. So, you know, even though they're having a great day, South Korea is just having one of the most impressive. If we force you to enter this scene, bro, there is no scene only. Performances we've seen in PNC, top to bottom here, they are in the driver's seat, and it is almost impossible that anyone's going to be able to knock them out of it. The Loki fans have got to be thrilled with what he just did in that last game. That was the exclamation point on this tremendous 2023 performance. It's going to be our trophy. So much support for the Korean crew here from the fans. It would be monumental for these guys to win here on their home soil. Live from Seoul, Korea, PNC 2023 coming in. Team Korea never winning a chicken dinner, and potentially at the end of this weekend, being crowned champions would be a tremendous story for a country that has been so strong, but as you said, has struggled on the international stage to bring home
a championship dirty place prize to be for years. in India at least. After 2019, it looked like South Korea was going to be the India dominant really needs region you. in No, yet no, no. another India does not esport need me. here in PUBG esports. But since then, they have yet to find an international title. This could be the moment. This is the final game. We are going to go into it. We are going to see if South Korea can hang on and claim the 2023 PNC trophy. We're going into it. It's Erangel. सी की कोई बात ही नहीं भाई, कोरिया को ट्रॉफी पकड़ा ही दो अभी. India needs more exposure and new crack players. First we need crack players, then exposure की बात करो. Exposure होता है तो 2023, the crowd is cheering. we only look bad. As Korea looks to run a victory lap here on Erangel. Plane path coming in, straight south to north, bisecting the map into. Fair play. All eyes. It's fair. It's a fair plane path. Yeah, everything's in play, but all eyes are going to be on Korea because I don't think they're going to shy away from anything Where's in India this match. moving? I think they're just going to continue to keep this Novo? momentum going, keep playing with the confidence that they got, No, they're not and really moving put on towards a show for their home fans. And I was curious if there was a They world will where the either UK get hot early drop points them, or get eliminated early. to maybe try to just end this, If they because you continue literally going can't south. give Korea any points. Right. Literally 1 point, and like the percentages go even further down Same the path toilet. ब्राजील Like, के साथ ले रखे हैं. if Korea gets रक्सियल any points in बहुत this आगे जा game, चुका है. it's basically over. Like, it literally, even Where are it they gonna probably land, is bro? kind of already over, but truly every point they get just There's makes it nothing more there and more भाई. so. क्या लूट करेंगे वहाँ पे You know, वो? I was curious. I was looking at the play path to see if anyone, particularly the UK again, because they're the closest, was going to try to hot drop them, just try to see if they can shut them out early. But ब्राजील आगे है तो वो पहले लैंड करेगी प्रॉब्लम गाड़ी लेके. एक्सियल जो है ना ब्राजील के एकदम बाजू हाँ ब्राजील के एक आगे एक्सियल को गाड़ी मिल गया है. ब्राजील के पास भाई 3 गाड़ियां हैं ब्राजील के पास. ब्राजील ने सारी गाड़ियां उठा ली आगे से और इंडिया वहीं लैंड कर गई है. वहाँ पे लूट भी नहीं है. गोलियां चल रही है ऑलरेडी. भाई शॉटगन लेके ड्राइव बाय हो रहा है यहाँ पे. Oh my god, dude. No. I'll go for the tire sparking. You only got 4 more bullets. Close it on him. Man. Oh no. Oh no. He gets some. Oh, he gets some. That's a lot of fun. Nice pickup there for Team Brazil. And these points matter. They're only 3 points behind Australia now for 9th place. And going back He to took the UK, damage just from kind that of getting tree as Korea their well. drop. I think that's a smart decision because say Tubhi you long hot range drop shotgun Korea, se say mar you gaya. wipe them, but you lose 1 man. Suddenly you're kind of in a tough spot because Vietnam's right on your heels. They're 3 points behind you overall in the standings right now. Coming into this, Thailand, Argentina, they've been able to show that they can put up really big numbers. Clip nahi meme. I think if you're the UK, you like Korea, have this Where did you get win, this and that's t-shirt? not being an It's not uncompetitive super dry, thing. super You still try to get expensive, as don't many buy it points on the worth board so nahi that hai. you lock down rank 2. I don't know, I think I got and it you for come like home with a silver trophy 3,000 because 4,000 Korea, rupees. I बिल्कुल mean, the worth day it they भाई put ये. together, it's been phenomenal. But for the UK, they don't have a इससे lot अच्छा of breathing blue room orange right की now खरीद लो भाई. in 2nd place. Yeah, and think about this. I mean, you know, the UK winners of 2022, and if they can get 2nd place in 2023, I mean, firmly establishing themselves as the best region in PNC history, no doubt about it. Kamukau has a machine gun, didn't need a lot of bullets because Puchils didn't have much else, and Thailand here, another team that's in contention for a potential 2nd place spot. Who knows? Having a loss like that this early is devastating. Yeah, losing one of their best players this early is very painful. By the way, the UK started today with 59 points. Was it really that low? Yeah, they've put up 63 points so far today. Holy crap. That says a lot. But Korea has put up almost 60. So it's like these two teams have literally just been farming these lobbies. What's up, It UG? does feel that way. You think back on the wins that Korea's अरे, ये क्या had, कर रहा even है? the lobbies that they don't win, like the last one, Xavier still भाई, racking open up में the most सांप. points. And then the UK, what, they had 2 dubs. I think it was 13. ओए निकाल दिया and भाई. 17 points apiece as Xavier with some Good nice work. stealthy movement. The He's able to PP catch Bison. Shrimsy, PP Bison. That thing can Info load up तो a है lot कि यहाँ of पे और guns. कोई नहीं है, नहीं तो openly A नहीं lot घूम of रहा bullets early Yeah, on. it's a gun that shoots guns. Oh man, that'd be strong. We Borderlands now. All right, Fimi gonna be coming in and finishing भाई off. बहुत It's early Chris. नहीं. A lot of players getting भाई ये let out early नजर आ रहा है here on the जिन last teams को map of पता है the कि day. कुछ नहीं Last होने map वाला. of PNC 2023. वो लोग अभी Ooh. ऐसे ही भगा So रहे like, एक दूसरे को. that's great. Like what he's doing there is just in case somebody like कोरिया drives का at देखना this, कोरिया एकदम they can, टाइट you know, गेम not प्ले only they can करेगा put it ये in वाले his गेम में. car,
but keeping it on the ground while they're looting. Yeah, just pick it up and you can grab it. UK के पास chance ruin ऐसा है ना somebody's कि day 20 if they're kill trying to ruin निकाल yours. दिए. Oh, the United Kingdom looks like their MO here to try to farm some points is going to be to gatekeep these teams coming across the bridge. Right now, Translucent, Salman. नहीं कोरिया है भाई, Oh, 99% कोरिया win है भाई. Salman seems like he might have an idea. It's either him or Translucent, I think, that spotted this one out. Bhai, chalo, this is the only moment yaar India get onto the bridge. Yeah, they see Vard. 3 man, let's go. So UK not going to be successful. 3, 2, 1 against India. 3, 2, 1. But I like this plan. I mean, on the military island, you have Denmark, Bhai, you have kaun Germany, goli you have kaun chala Brazil, you have India. One or two of those teams are probably going to try and take this Eastern Bridge. And if you're able to farm one or two teams, get a couple more points, you're really solidifying your position there in rank 2. And also, going from this bridge into the circle on the eastern side, it's not a very far way to go. It's barely past farm. So I like this move. Very smart by Team UK, although they do get found out. Why not? Just try to get points. Countdown starts from 20. You want to lock down that silver medal. 19, 18. I'm all about this. I love what the UK did here. Totally fine with it. Now they're just going to be able to go into that circle. Everybody's kind of centering up so far. So there's a lot of teams stuck on Sosnovka Island still. We've got Brazil, India, Denmark, and Germany. So a lot of space left open in this current circle. Everybody else trying to get center as much as they can from their drop spots, except Korea and Australia and Argentina. But Argentina was in Severny. It makes sense. They're taking time. Korea really going to loot up and make sure they got everything they want, everything they need. India win 37 balls with 10 wickets. They're going to have a full loadout with all the time in the world to loot. Yes, Naya, and then coming into the circle as well, as you said, everybody very centered up around Pochinki. Korea's going to have so much area to play with on that northeastern side, so that should they decide to stick around there. Vietnam in need of points as well. Could still end up with yet another second place finish at PNC if they can have a run in this final game. And certainly the history of Vietnam, just absolutely incredible at this event. And they continue to show us, you know, I talked about UK maybe being considered the best, but Vietnam absolutely going to be up there as well. Time and time again, top 5 finishes every single event so far. And all they need is probably a few points, and honestly, I don't think Bhai, this is the only time many worlds where they don't end up in the top 5 again. Chat पे पकड़ के भरो जो भी आया ये. To make that happen too. Just feels like everybody from this country steps up on the biggest stage when they need to. As Argentina squaring away here with Waikiki a little bit there. Reinforcements probably going to come in, but actually Waikiki going to do his best to escape while he still has his tires intact here on this UAZ, working his way up the hill. Make sure he builds a little bit of momentum before that. As Flood Mini 14 going to try and cause some covering fire to give his teammate a break in Australia. Mostly able to get away, but yeah, I think Dacia's there. It's slow, man. They don't have too much torque. Fire it up. It's hard to get them up these hills. There's no car in the game that gets up that hill. Maybe the motorcycle. Mountain bike for sure. Not a car, but it's not a still, it could get you up there, maybe. Absolutely. Yeah, I've ridden on that thing a lot, man. That's my go-to on vacation. Panzerfaust and a mountain bike. There you go. There you go. Angela noti ho rakhe. Some shots in the back. A lot of damage done. Waikiki out. Seat swapping to try to get a knock potentially in the box. Going to be able to escape. Get this heal off for Argentina, who's on the south side of the mountain now. Australia on the north. So they have split out. Australia is, again, all the room in the world. I'm from Loria. This first circle, very forgiving as far as PUBG circles go. Loria se hai bhai, especially here on Erangel, just so much area to play around with. It's one of the reasons why I was so surprised so many players actually got picked off this early, because really every single area on the map was kind of playable to loot early without having to lollygag too much coming in, right? I mean, think about how long Korea spent over there in Yasnaya, and they still have a very easy entrance into this one. And for teams like this on the military island, it's a little bit more complicated, with Germany right now trying to gatekeep. Going to be doing a little bit of bridge camping with Denmark, trying to work their way from the military base onto this. Now Gustav going to be the first one across. They're going to let him pass to try and bait Kino and beam me in. Yeah. UK, what can UK do is Vietnam. Again, I mean, Germany's had a slide today. Came into the day at 5th. Now they're down to 8th. And they're trying to turn their fortune around. It's been a really rough day for Germany. Baro, chat bharte raho.
That's definitely the worst day they've had by a wide margin. So we're looking to see if Germany can have a strong finish, but Gustav is wise to whatever's going on here. Kino takes some damage on the backside. Kowo cooks a grenade, gets shot between the slats of the stairs, and he was not able to find the mark. And Gustav going to see if he can get the flush there. Able to find that frag. That's a very tough angle, especially with those stairs in the mix. My goodness, what a throw. I mean, Kowo was wise to it and he backed off. That was one of the best throws that I've seen in terms of a frag being calculated right there. Yeah, if Kowo hadn't moved, he was dead. Angela, मैं बता रहा हूँ सारे गुस्से में यहाँ पे मेरे को पता था जो हिंदी समझ में आती है. Clip now has a pretty decent angle. That grenade just went in between those rails. Another grenade is out. That one's too far under. It's not going to be nearly as close as Clib would like. Now that one's right on the money. Yeah, finally, third time is the charm there for Clib. Is able to get it. Kowo with a spray there on Gustav, not able to find a lot of damage. And the return fire there from Gustav is massive. Kowo actually is going to push this position. He's charging forward, but 1 or 2 bullets away. And once again, the nades come through. Denmark eliminates Germany. Germany right now going to be sitting at rank 8. On the day, as they did not get the strong finish that they were hoping for, but still a very impressive showing here at PNC. And for Denmark, at one point today, think about it, State, they were in second, and now they're all the way down in 6th. But again, anything's possible in this last game. So much to play for. Every team is going to be going for these points. LFP1 was in a parachute and almost got knocked. Instead, he's, oh my God, that's so dangerous. I was expecting some fall damage there on LFP1, but भाई वहाँ तो नहीं पकड़ा जाएगा वो. भाई वो वहाँ नहीं पकड़ा जाने वाला. Fire to buy him time to get into a little आगे दिखाओ. nice little area to be in. I don't even know if T-Bone can find a sightline on him. During all of that, Kane taking a headshot of damage. I'm not sure exactly from who. Okay, it's Hamas who is just on point. Him and Glory's getting a ton of damage in. Nice covering fire there on his teammate in the buggy. One of the most exposed vehicles to drive around here on Erangel. Big point, going the way of Vietnam. Still eyeing that second place spot. We're going to keep a close eye on those races for some of those positions. Underneath Korea, Flood, oh no, oh no, oh no. Oh, just barely. And H-Win with some nasty shots on that parachute. H-Win's had some really good moments in this event himself. USA in general, even though they're in 7th place. But this is the only moment. Impressive games. Squad wipe दिखा दो. Maybe not the result they wanted for sure, but definitely still a lot of really awesome moments that we got to witness. Undoubtedly. Give it a highlight reel together of their PNC 2023, despite only being in 7th place. I mean, feels like when they pop off, they really do pop off. Yeah. मैं तो देखूंगा. Exactly. When they were hitting hard. I want to see the winning moment. भाई तुमने 3 दिन invest किए, तुम winning moment तो देख के जाओगे ना. Out in that shack out in the middle Trophy of that lift तो देख के जाओगे ना. Not ideal. Even though phase 2 did end मोबाइल up पे going देखोगे वो ठीक है. southwest, that is not the spot you want to be in. You were, as Turkey, playing with fire. Now, you never know. We've already seen it today where teams can kind of just hang on and scrape out points. Saw with Korea earlier. You can't drive this across the water, my friend. No. I just want you to know, but you can swim under it, and that's okay. And it's usually relatively safe to actually swim under this bridge. Really think about it, even though India's in no real danger. I don't think Gustav's seen him. Bandit So this is fine. Yeah, but I mean, even the pub lobbies, we're playing in solos. It is a really safe path to go if you're swimming right underneath that bridge. I believe a round of applause here for Team Salman India for swimming their का भी शौक debut रखते हैं. performance in PNC. We love to see it, their first international event. And even though I know it's not the result they wanted, we really appreciate having them here. We really love having India here. So thank you so much, India, for being a part of this event. And we hope to see you back in the future. I'm sure we will. I mean, what we heard from the pro players before the event even started about India and the scrims is that they absolutely have the skill. They have the potential, but, you know, they're just getting their feet wet here in the first ever PUBG Nations Cup. I am sure very good things are to come from that country here in PUBG esports. Yeah, I really think so. I mean, again, like you and I were talking about a lot on day one, that there was a lot of people saying that this India team was nothing to be, you know, think that they were easy, I guess I should say. They weren't. They were really doing good in scrim, so hopefully, you know, with this experience underneath them, they can do something now. And Onyx out ahead of Japan, but Japan had the exact same idea at the exact same time as Korea.
Let's see if this is going to amount to much of a fight. Yeah, let's see if Japan gets. Slot है. तो भाई एक साल है अपने टीम को प्रिपेयर करने के लिए. एक साल. भाई फोड़ सकते हैं फिर. बार हर महीने में तो टीम चेंज होती है. एक साल विदाउट एनी रिटर्न्स कोई इतना 100% देगा ही नहीं. हाँ कोई और उठाओ, कोई और को बोलो भाई पैसा दे. नहीं जिनको ये गेम पसंद है एटलीस्ट वही लोग दे दें. जिनका पैशन है ये गेम. भाई ये फिर एंड में इतना पैशन वाले लोग खेल ही रहा था. With that maneuver, he's revealed the position of the off-angle player for Japan. भाई मैं चार प्लेयर्स को गोद ले लूं. Trying to pick them apart. Imhak stuck inside. अपने घर बिठा दूंगा 4 पीसी देके. Soul isolates and takes him down. Now Pure Boy up there. Trying to do what he can. Loki gets the flush on it. Imhak right now, and for South Korea, it's all about breaching this stairwell and trying to stop Japan from being able to hold on. Pure Boy going for the res. China also getting mixed in on this. They do not want Korea to get more points, and also China, they want to move up the ranks themselves. Yeah, absolutely. I mean, they take whatever points you can get here. Third party this fight. But the problem is that nobody on Korea has been knocked. So great. China came in here, took a position. That's not that bad considering the lay of the land with so much field in this particular circle. You know, you need to take whatever cover you can get. But not able to capitalize in terms of points. And Korea's Loki able to do some more damage to Run AX. Korea would love to displace this final player. A beautiful nade there by Loki. Perfectly cooked. Just wasn't able to find any players from Japan. They weren't in that exact area, but I mean the ricochet and the cooking on that one, perfection. Is this the final? Yeah, the final match. Excuse me here. Yeah, Pure Boy did get final rezzed. map. Yeah. Pure Boy got rezzed. Oh, they're getting shot very low. Unforgiven बहुत low था. And where's that shot? और ये भी उतरने के chances हैं. This is difficult now. There's still another player here who I think is gonna have an angle. Oh no! Land it, please land it. Not like this. Not like this. Clip coming in. Not like this. Sprays down. Almost gets two translucent on 1 HP. The DMR is going to seal the fate there of Team India as they're dispatched from this one. But again, a great debut performance for them. I'm sure there are very good things to come from that country here in future PUBG Nations Cup. This is not the last we're going to see. An appreciative. Not the last we're going to see. Let's go. Korea. Showing their respect and their admiration for the Indian players coming in here and playing in this event. Again, we would love to see back. All right, China now on the move. They're going to leave this compound. They're going to let South Korea kind of see if they can finish this out. Soul's going to hold the window, make sure no one can leave. Stuns are, frags are coming in. But for now, you know, you can just kind of wait. You can either just wait them out, or I don't know what you're going to do here as Korea. Eventually, you're going to want to push up these stairs. But look at that folding shield right at the top of the stairs. It's going to block you from coming in there. That's so cute. For whatever reason, I hadn't noticed that until you mentioned it. But yeah, that folding chair, folding shield, perfectly. Imagine just sitting up there with the DDS on the chair. You can like jump off the top of the buildings and whack people with the chair. Oh, I would love that. Be sick. All right, Vinny able to dispatch Beamy there. Gets a nice kill for Team Brazil. Only 4 points behind Australia to crack top 9. They would love to get some more kills here on Team Denmark. Clib going to go for a nade himself. Oh, that one's really good right on Haven. Just a bit of damage, though, as it wasn't cooked. That was Haven's own grenade. Oh, was it his own? Yep. Oh, I was a little bit confused by the switch there. I guess he wasn't able to slot it in. Yeah, it just kind of bounced back at him. Must have hit one of those beams, the I-beams up in the top of the building. I'm not sure. Here we go. Round 2. Fight. Okay, that one went in. Yeah, it didn't come close enough. I never knew that spot existed. Nade karne ka. And Onyx, meanwhile, just knocked to H-Win. I think he's dead to rights. Yeah. That's the level of detail we miss. You called it earlier. The victory lap continues. And this feels like they are on top of the world right now. And China, here they go, coming in on Vietnam. X-Left with a DMR comes in on the road. Able to get one knock, but Hymas fights back. Isaki also is going to be able to take down X-Left. The confirmation comes in. Monster goes down. Crazy 1-1-2 as well. Hisaki working his way on the outside. Going to try and find Shoei's on 1 HP, and China is eliminated here. Vietnam picking up a ton of kills. And behind all of that as well, Korea also finally cleaning up Team Japan. And that's huge for Vietnam. Now they're within 1 point of the UK, 1 point away from second place. So trying to do what they could. But now Vietnam doing what they can, and Korea 170 points. How many more can they get? Because this
This is their tournament. They have done it. Now we just await the final moment, and they are just going to keep trying. I mean, no. PUBG के hours. नहीं मेरे 3000 ही घंटे भाई. Yep. 3000 ही घंटे मेरे तो. Vietnam now being watched by them. 4000 I think, close to 4000. Korean players on stage can feel this arena shake every time they pick up a kill, every time they wipe a team. They want to do some fan पर मैंने service 2019 में ही बंद कर दिया था खेलना for फिर. the hometown crowd. As we start to get into a skirmish here with Vietnam at about 200 meters range. Circle closes in. Centering up over here on the west side, Chinese Taipei, they've been so good defensively over the course of this entire event. The only team to be able to hold on to a compound in this one. tournament में 15 point, As Vietnam and Korea continue to rotate through, and Onyx going to find that shed. Korea trying to improve their position here in this long-range skirmish. Will you play Valor today? नहीं यार, अभी I will leave guys. बुलावा आया है after a long time. I'm going to Potato's house, so I have to drive for 1.5 hours and. Yeah, दूसरी city में जाना है अभी मुझे. So I'll leave once this match is over. Oh, 250 meters seems pretty good. Might be a little bit shorter than that, but we'll see where this one lands. Up and over. Ooh. Oh my goodness! He got him! Sweet! No way! Funny shot! Korea! Unbelievable! Hey, Korea is trained, bro. He's going for the front players now. He's not going for the flush. He's going for the ones that are coming at him. Almost got Haisaki with that one. Oh, he hit him. He hit him with the second one. How are they doing this? South Korea just on cloud 9 right now. Loki looking to find more damage, gonna pop a tire. Oh wait, they hit too accurately. That went really far. Yeah, that's about max range, about as far as it can go. Loki's gonna see if he can fight back. Now Korea wants to prevent Vietnam from getting any further up the leaderboard. Trying to finish the job. These grenades, though, really good. Ooh. Almost getting the knock onto Loki. Another one that should be good. Yeah, he's got him. Loki has been knocked. The vehicle explodes away. Soul trying to cover the angle. He's got Haisaki down. A 1-for-1 so far, but Soul takes a bunch of damage from Glory's. Has to prone down in the field. Yeah, we'll see if Hymas can find him here with a frag grenade. Doesn't have an exact read on where Soul is. First aid is going to pop. That one goes a little bit wide. Second frag should be coming in. Also wide. Just kind of sandwiching Soul here. He takes a bit of damage. Ooh, they're all close, but no cigar. Already. Trying to get a res. Oh, finally, they track him down. Vietnam here, they need decent position points, and they're bordered at the beginning of this fight. Is somehow, some way, with this slight hill advantage they have, and Onyx can't do anything. Get shot in the back by Nurens. Having the last player alive for Korea. But at the end of the day, they do get a res. Loki is back up now. Here come the mollies. Vietnam is expending everything they have. They try to pick Soul up. Doesn't matter. Himas shoots him off the back. Duck Juice trying to spray into the smoke, trying to finish the job. That grenade, if it's on the mark, might be good enough. It's just a bit wide. Korea, for the second spot. Footwork still alive, but for how much longer? Yeah, these smokes are starting to dissipate, and once they do, I mean, I guess there's 1 or 2 more here for Team Korea, but it feels like time is running out. Hopefully for them, Chinese Taipei, Pongster are getting in the mix on this, and shelling Vietnam is going to give them some breathing room to rotate out, as Loki and Heaven would love to stay alive and get some more damage done to this lobby. Link beige rive and at least hum last time par itni year bod Indiane at least participate to Kia heart. अब PUBG स्ट्रीम्स के DC लिंक भेज रहे थे, एटलीस्ट हम लास्ट हैं, पर इतने ईयर बाद इंडिया ने एटलीस्ट पार्टिसिपेट तो किया. हाँ, अपॉर्चुनिटी मिली थी. Rain fire down with these DMRs. Oh no way, Vinny's still alive. मैं कहाँ भेजूँ this. लिंक पर? You have got to be kidding. Vinny's out in the blue behind Team UK. Not like this, but he doesn't have enough help. Discord, yeah, in fact, send it with the same name. Hears or senses it somehow, some way. But that phase 6 blue is just too devastating. I'll invite you. Korea's still in this. Gonna get placement points out of all of this anyway. Vietnam trying to get into the center of the circle. They've got all 4 up. Okay. Yeah, Tuck Juice now coming in here with his teammate. They're trying to hunt Korea. They really want to clean them up. Vietnam desperate for points right now. They have 5 kills already. Some frags coming in. They look pretty good. Actually, no, a Molotov and a flashbang. So Heaven, he's blinded. Loki comes in. Loki actually able to get the headshot there on Clories before getting taken out. Is done. And finally, South Korea's eliminated. But at 172 points with 5 kills in this lobby, they are destined to be the champions of this event as UK, Vietnam, and Argentina fight for that podium finish. No doubt about it. Badger using that deep clip to make sure that Taipei can't really do much, but the first knock is there. Var jumps up and over.
taking Leo down. Nice piece of work from him, but here comes Pongsker grenade right in towards the UK positions, but isn't able to connect the follow-up. Right down on top of them. Savior backed off, but Zennon's grenade finds Fex. A lot of damage done in the back lines. Laza out here trying to take Vietnam out. They are almost all but done. UK gone. If Vietnam can stay alive, if Vietnam can find 2 more points, they have 1 player left. Timas on almost no health somehow survived that. Schofield lets loose with a molly, but it's too far. But Vietnam is gone. Second place will be going to the UK. Argentina with 4 men at the last team in the top 4 to try to find some points. Unless Argentina potentially close distance on Vietnam or UK. They would love to do it, but it's going to take a miracle with only 7 players left in the lobby. I take it back. There's a world where Argentina could actually jump up to second place. I don't know if it's theoretically possible or not. Maybe they get every kill. We'll wait, but it's pretty likely. I might have spoken a little too soon. We'll see how well Argentina can do at the end of this. Turkey trying to do what they can. Yeah, they'll get it. Surpass Australia. Points add होंगे अगर वो जीतते हैं तो. Who knows? I just want to point out that drafting right now is a ton of damage. Absolutely hunting for that top 3 finish is Team Argentina, but Chinese Taipei, they were able to secure that compound against the United Kingdom, and they have a great vantage Third position point के लिए fight है, on both नहीं second Turkey position and के लिए Argentina. They Argentina step out fight too कर far सकता. from cover. They're going to be in the crossfire of multiple players from Chinese Taipei. You can see Ale Third position तो कोई नहीं आ रहा. covering fires to his teammates, but this is really the terrain that Argentina is working with, and they need second position जा सकते हैं लोग इसी. to close the distance on the UK, 9 to close the distance on Vietnam. Circle is going to shift down towards Chinese Taipei. Like they might be able to squeeze out a win here, but only 3 players, so missing a little bit of extra firepower with Leo. Long time टर्की का जो किल है ना कौन उठाने वाला वो देखना out of this lobby, अगर वो किल hoping that the rest of his squad can scoop up a win here and end on a high उन्हें बस 2 kills चाहिए, 2 points चाहिए और win चाहिए. I thought Schofield was flushed at some point, but apparently it was just a knock as we're going to be going into this replay. This is Chinese Taipei defending their compound here against the UK, something they've been so fantastic at all event. Grenades perfect from Zennon. Right on the money, just bouncing them right in. The UK, though, may have done enough to claim second place. Argentina may have something to say, but it's going to take, I think, every kill here for Argentina. Yeah, Argentina fighting for top 3, Turkey fighting for top 8 right now. As both these teams have the potential to make some movement here with a win and a couple of kills. It's going to be tough. Making rotation in. Has some good guns, but at this range, it's tough to make something happen against a position like Zennon's. Chinese Taipei, as long as they have this compound in the circle, are going to have a really good high ground advantage. And Savior, it allows them to do this. They have the vision, they have the information. Savior working the flank, able to find a little bit of damage with the spray, but does show his hand. He's got some grenades in the bag. Could, if he could get a little bit closer, go for them, but no. Doesn't feel like it's going to be safe. DraftKings flanks out to try to kind of outmaneuver Savior here. He's going to be driving in his general direction, being tracked from the roof. Is the players of Argentina by Zennon. Turkey trying to do what they can to scramble into this next circle. Phase 7 blue is going to be encroaching on them so quickly. Oh, what a shot there from LA. Yeah, LA gets the knock there. Will he be able to get the flush? Zennon steals it away, and LA actually gets knocked there for the trouble. Code Margo coming up big for Team Turkey. भाई वो watch party कर रहे हैं वहाँ से. Rybox doing some damage. Grenades. Just look like stuns to me. Turkey are gonna have to really just hunker down underneath the smoke. Argentina with very limited Taipei वहाँ पे बैठ के बोल रहे हैं देखो कैसे struggle कर रहे हैं. Second spot के लिए. Has 2. I think this is all that Argentina's got. First one a little bit wide. We'll see if the second one's good. Keep in mind, Turkey, they are clustered. Yeah, they're just trying to hold down the angles on the edge. Trying to just spray them down when they come through. And it's Emic's job to make sure that Chinese Taipei can't get involved in this fight as best as he can. DraftKing, that's a... What in the world is that spray? Unbelievable. 4x from that range. Absolutely disgusting. Can he find more? Almost gets the one onto the mat as well. Those are just stuns. Just trying to keep them pinned. Just trying to find that last angle on top of the mat. See if he can finish what he started. Argentina, they desperately want to win here. He's going to get the confirmation kill there on a Schofield. He goes down. Turkey running out of room.
Only a couple of seconds left here in this phase. Keep in mind, Chinese Taipei, they're working closer in from the sidelines. Drafting a ton of damage already. 5 kills, 700 damage in the bag. Would love to add to that lead and try and close the distance on Vietnam and the UK. MX with it, Groza able to get Savior. That's a big win. He's out of bullets though. He's got to switch over to the mini. He has no more 7.6 in the bag. He's got plenty of 5.5. Now he's just going to spray it down, trying to see if he can really increase their chances of potentially winning this game. He's going to see Hunger, I believe. Might have just saw a shoulder or an elbow there. I believe those are going to be smokes coming out. Code Marco's got Rybox. That forces MX to try to come back, see if he can help out. My word, DraftKings, what a tournament he's had. Argentina is still with 3 players up. They're going to be going for the res behind this hay bale. The Mad with a knock there onto Ali, and the pressure is on DraftKings. Holding down the fort here for Team Argentina. Is able to take down 2. And Argentina is climbing the ladder. Chinese Taipei, they're going to try and take advantage of this opportunity, though. Argentina has so many players down. All right, here we go. 3v4, but 2 coming on in. Zennon knows they've got 2 players. Somehow Emic is going to get 1, but Zennon's got another. Can he find the final player? Emic, he's trying to do what he can. He's the last one alive. So little health, and he's done. He's out. Chinese Taipei is going to find the final game here at PNC 2023. A strong finish for them, no doubt about it. चिकन डिनर निकाला ना यार, obviously अच्छी बात है. They have done it. ऐसे अपना belly मटका रहा था भाई वो. Bro, at least they're happy यार. Let's go Korea. I wonder what Team India is thinking right now. Let's go! Real champions, bhai. Korean game, Korean ground, Korean winners, man. भाई बाकी टीम्स कहेंगी हम तो अगली बार क्वालिफाई नहीं करें, वो खेलेंगे नहीं भाई. अगली बार स्लॉट ही मिलना चाहिए भाई. Last year ज़्यादा crowd था. Scripted था guys, scripted था guys. Scripted था. Korea! अभी एक recent tournament की clip देखी है, वो ट्रॉफी उठाने जाता है, टूट जाती है ट्रॉफी. कोई आधी हो जाती है ट्रॉफी भाई उसमें, लेकिन वो चिपकाई नहीं होती है, पार्ट्स में बस लगा के रखी होती है. ट्रॉफी उठाने के लिए भी मुश्किल हो सकता है. चलो भाई 5. नहीं नहीं भाई, हाँ उठा नहीं पा रहा है वो. भाई हाथ शेक कर रहे भाई, जान निकल गई है. नहीं रहने देते गाइस. कोई कुछ नहीं कर रहा है. I mean, the emotions have just got to be through the roof. They've got to be so happy. And here comes Bella for the interview with the winning team. चलो हाइड्रा कल खेलते हैं. कोई ट्रांसलेटर. Okay, see you bro. Bye bye, GG's. चलो कुछ अच्छा नजरिया दिखने मिल रहा है. मैं भी जाता हूँ अभी. 한국팀 매치 10일부터 8번 우리 1위를 지켜냈습니다. 너무 축하드려요. Wow, they kept their By big day for Korea, Korean players. starting from match 11. So these guys are the winners. 우리 감독님 먼저 우리 선수들 고생 너무 많이 했잖아요. 먼저 한마디 좀 해주시죠. I want Coach Sonic to give, the guys a thank you. So let's hear from him. 말로만 우승하자고 맨날 얘기했었는데 오늘 समझ नहीं आ रहा, बट सुन के अच्छा लग रहा है. 국가를 대표하는 자리에 저희가 우승할 수 있어서 좀 많이 고생했고 정말 자랑스럽습니다. They said he kept on telling them they're gonna make it, but now he's so proud of his players. Okay. 와, 우리 헤븐 선수 또 PNC 첫 출전하자마자 우승까지 성공을 했어요. 그 소감 한번 듣고 싶습니다. To Heaven joined Team Korea, and this is his first PNC, but he got the trophy winner place. I want to hear how that was been like for him. 제가 지금 커리어에 우승 커리어가 하나도 없는데 이번에 한국 대표로 나와서 네이션스컵으로 우승 커리어를 하나 만들어서 정말 기쁩니다.
He's so glad that he finally got the nation PNC title in his career. 자, 우리 박격박 씨, 로키 선수한테 다 물어보고 싶어요. 로키 선수, 17번째 매치 끝까지 살아남아서 사실 우리 팀 한국에 우승을 확정을 해줬어요. 그때 그 기분. I want to hear from Loki. He made like the last kill in match 17 as he was going away, and that secured their throne. So I want to know how he was like. 일단 기분이 너무 좋고요. 제 20대를 펍지에 다 갈아놓고 있는데 제가 펍지를 하게 되는 가장 원동력이 되는 것 같고 가장 재밌어서 오래 하게 되는 것 같아요. 제가 언제까지나 할 줄 모르겠지만 이 순간을 꽤 오랫동안 기억할 것 같습니다. 감사합니다. He's poured his 20s into PUBG, and this was the moment that drove him like through his career. He doesn't know how long he'll play, but you know he's gonna keep this forever in his heart. 우리 서울 선수. यार हमारे यहाँ किस चीज की कमी है? कमी तो बहुत चीजों की है. 선수부터 잠깐 물어봐도 될까요? 네, 죄송합니다. 우리 이노닉스 선수 세 번째 PNC. India is last. What the fuck? Are you surprised? You look surprised. 소감 들어보고 싶습니다. This is Inonix's fifth, third. But I am surprised actually getting 15 points only, bro. Yeah, just 15 points के लिए मैं भी surprised हूँ. I mean the blunders were so big. Yeah, the blunders are a surprise actually for us also, guys. मेरे को नहीं लगा था कि इतना. Wait, I was really happy that Salman and team were going. I was okay, मतलब यार अभी तो 100% Havoc जाती तो भाई. हाँ, मैं सोच रहा था Havoc जाए वो भी अच्छा रहता है because Havoc has some experience, but I was still happy for Enigma to qualify for the main event because they looked very good, man. But anyway. But Korean people तो बहुत खुश हो गए यार. उनका ही घर पे उनका ही टीम, उनका ही डोमिनेशन, उनका ही सब कुछ, ट्रॉफी भी उनका, सब उनका. गेम भी उनका. भाई. भाई 15-20 किलो की तो ट्रॉफी होगी भाई. बच गया, खर्चा बच गया. फ्लाइट में 20 किलो का और 4,000 रुपए देना पड़ जाता है इनको. होम ग्राउंड में सब शेयर होते हैं. अरे ऐसा कुछ नहीं होता यार. ऑफ कोर्स वो वाइब, पॉजिटिव वाइब होती होगी, बट हर बार नहीं होता ये. अरे बट यार जिस तरीके से घुस के पेल रहा था ब्रो, क्या वही कोरिया का स्किल दिखता है भाई. दिखाया ब्रो, गेम में ही दिख रहा था ना. The winners of PGC 2023. So watch out, right? 와, 정말 너무 축하드립니다, 여러분. 와, 대한민국. लड़की खुद ही खुश हो गई. 지금까지 우리 팀 한국 PNC 2023 우리 우승팀을 만나봤습니다. 이어서 저희 PNC 2023 हाँ, फट जाती होगी, एक्सपेक्टेशंस होती होगी ना क्राउड की तुमसे होम ग्राउंड में. लड़की को पूछना चाहिए उल्टा कि भाई कोरिया का गेम है, कोरियन कंट्री में है, कोरियन टीम भी है, तो मैं लगी थी कि कोरिया नहीं जीतेगी. All scripted baby. भाई अपने टीम इंडिया का है सलमान. I want to see सलमान man. I think वो लोग जानबूझ के नहीं दिखाएंगे because जब दिखाएगा तब तक गालियां पड़ेगा. बाय बेला. सही है बॉस. चलो यार चलते यार. It's time for me to leave. I gotta go. I am hungry, disappointed, and excited for what's coming next. So yeah, a lot of emotions. Chalo, bye bye. Flick. Bye bro. See you next time. Yeah. Bye. कौन सी सिटी जाना है? मैं भरूच जा रहा हूँ अब. चॉपस्टिक्स. अरे यार तुम सालो रेसिस्ट कहीं के. Alright boys, GG, well played to Korea. Congratulations on the win. It's a big win. Great gameplay, great showcase of the skill. Team India
आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, nothing to worry about. Alright guys, see you all later. मिलते हैं, याद से भेज देना हैदराबाद. Yes sir. चलो take care everyone. See you all tomorrow. Hopefully I'll stream early. नहीं actually शायद थोड़ा सा लेट ही करूँगा कल, बट हाँ मिलते हैं, कल मिलते हैं. Okay? It was fun. Fun 3 days of doing the watch party. मज़ा आ गया. मेरे को चाहता था और थोड़े दिन कंटिन्यू हो यार. मज़ा आ रहा था मेरे को देखने में गेम्स. Why don't you wear headphones? I was wearing headphones yesterday. I usually wear headphones, but sometimes I feel like wearing in-ears, so I wear in-ears. Alright. Take care guys, take care. Enjoy your rest of the evening. See you tomorrow. Hopefully soon, but mostly late. Bye-bye. टिप्सी में लाइन पे हाइप में बैठा हूँ आज शाइन में करूँ जो लाइन पे क्राइम नहीं स्लाइम ये टाइप है मेरी अलग पीली मारे सड़कों पे पूरी रात फैली पड़ी हर जगह मेरी पूरी बात झूठे यारों से मैं दूर ये करे मेरी काट करूँ मैं किल मेरे ट्रिगर पे हाथ पूरी गैंग मेरे साथ करूँ स्वैंग पहनूं वैंग लेके घूमूं मैं सियाज स्मूथ चले बीट ऑटो ट्यून करे हिट जैसे करा हो रियाज मेंटेन करूँ क्लास कैंपेन करूँ वे प्लेन जेन लेनी 4 मुलसेन लेनी कार 15 की उम्र से बना 12 में 16 की उम्र से सुट्टा जला रहा मैं 17 में खोया फिर मिला 18 में 19 में कटा तो बना बेचारा मैं 20 से 21 में खुद को सवारा है 22 से 23 में भरा पिटा रहा है 24 में बोले वाह क्या गा रहा है 25 में देखो किस्मत का नजारा ये क्राइम नहीं प्राइम ये टाइम है टिप्सी में लाइन पे हाइप में बैठा हूँ आज शाइन में करूँ जो लाइन पे क्राइम नहीं स्लाइम ये टाइप है मेरी अलग फाइन है डाइन पर वाइन नहीं पीता हूँ हाई मैं करूँ म्यूजिक का नशा छाई में करे ये वाइब बोले भाई जल्दी से एल्बम तुला पीली मारे सड़कों पे पूरी रात फैली पड़ी हर जगह मेरी पूरी बात झूठे यारों से मैं दूर ये करे मेरी काट करूँ मैं किल मेरे ट्रिगर पे हाथ